Good evening everyone. Let's start with IOQM marathon session for number theory. Same as the previous two sessions, I'll be taking the first 10 questions followed by Rajat sir, who will take question number 11 to 21 onwards. So here is the first question with us. Compute the last two digits of this series. So what you should realize is that this is not a geometric progression. This is every next term is being raised to the power 2020. Hence, what you can see over here is that if I am able to calculate the, just a second. If I am able to calculate the last two digits of this number, then I can very easily just raise that to the power 2020 and calculate the last two digits of the next number. What this will require is that I need to know the last two digits of every power of 9. See, for this we can make a table for n and 9 to the power n. If n is equal to 0, any number to the power 0 will just leave last two digits as 0, 1. When I keep raising the power in a linear series, n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. What we'll find is that the last two digits of 9 change as follows. It becomes 0, 9. Then 9 square becomes 81. Last two digits are 81. Next power 9 to the power 3 is 729. So last two digits happen to be 29. Now the next number over here does not require me to find 9 to the power 4. I can just simply multiply 29 by 9 and get the unit digit as 1. The unit digit keeps alternating between 1, 9, 1, 9, 1, 9 and so on. 29 times 9 will give us 2 times 9 is 8 plus 8 is going to give us 6. 6 times 9 is 54. Hence 4 becomes the tens digit. For 9 to the power 6, the digit over here will become again 4 times 9 is 6, 36 plus 8, 4. What ends up happening is that for the next few numbers, the unit digit will keep alternating between 1 and 9. The tens digit will now become a palindromic sequence. It starts with 0, 8, 2, 6, 4. It will then go back in this order 6, 2, 8 and then finally 89 times 9. The voice is being delayed. Okay. We are rectifying the problem. We are just rectifying the problem. The class will, I'll resume teaching once the voice comes out to be. Okay, I'll resume with the question. See, all these values can be calculated by hand by multiplying by 9. Is the voice coming properly? Because you guys are my reference over here. Is the voice still lagging? The voice is not coming, okay. No, later than the video. Okay. The voice is coming on time probably. Still lagging. You can click live on the video and skip to the latest point. Okay, fine. I'll continue with the question. See, the 10th power of 9 will be found by multiplying 89 by 9 and that results in 1 and 8 times 9 is 72 plus 8 is 0. So eventually we come back at this value 0, 1 which was already available in the list before.
every 10th power of 9 is going to again keep cycling back to the value it was, for at least for the last 2 digits. So this way we can see that every number that is of the form 9 to the power 10k has 0 1 as last 2 digits. Whenever I write mod 100 or mod n, what I basically mean is that on the RHS or on the LHS, both numbers have the same remainder when divided by that number. So when I divide by 100, the remainder for both of these numbers is going to be the last 2 digits of those numbers. Hence I am using the notation mod 100. See, now all the powers in this series for 9 are actually divisible by 10. Hence we have a bunch of 0 1 0 1s all throughout this number. And what we effectively have to do is just multiply 0 1 by 2020, because those are the number of terms in this list, and the last 2 digits of this result is going to be 20 only. Hopefully this was understood. Let's move on to the next question. Here we need to find the largest positive 2-digit factor of this difference. See, this question requires you to realize that when we are having an expression like a to the power b to the power c, it needs to be considered in this manner. A is being raised to the power that b to the power c is, and this is most of the times not equal to a to the power b the whole power c, because this a to the power bc. So over here we have 3 to the power 2 to the power 2011 instead of 3 to the power 2 the whole power 2011, and here the same for 2. So 3 and 2 both have the same powers, and this power is having a lot of factors. So how many ever factors this number has, 3's power and 2's power, the below expression can be converted into expressions like this: 3 to the power a plus minus 3 to the power b, 2 to the power b are always factors of this particular expression. Whenever, this b is also a, whenever a divides 2 to the power 2011. I'll just demonstrate this. See, 3 to the power 2 to the power 2011 can be rewritten as 3 to the power 2 times 2 to the power 2010, and this 2 can be taken out as the power. So we are left with 3 to the power 2 to the power 2010 the whole power 2. Same can be done for 2 to the power 2 to the power 2011, which can later be written as 2 to the power 2 to the power 2010 the whole square. Now these two numbers are being put in a difference. So we effectively have x square minus y square, which has factors x plus y and x minus y. If we keep doing this, eventually we'll get factors of this kind: 3 to the power 2 to the power x plus minus 2 to the power 2 to the power x, where x will lie all the way from 0 all the way till 2011, but for 2011 we'll only have the minus factor, not the plus factor. So among these there is this one number 3 to the power 4 plus 2 to the power 4, which gets us pretty close to the largest 2-digit number. This becomes 81 plus 16, which is 97. This is my proof for the fact that 97 is a 2-digit factor of this particular expression. I can write 97 as the answer if I conclude that 98 and 99 both never divide this particular number. How I'll do that is, for 98 and 99, my arguments will be 99 is divisible by 3, but this expression cannot be divisible by 3 because this number is not divisible by 3, and 3 to the power a very large number is very much divisible by 3. For 98, I'll use the idea of mod 7. I'll try to figure out, in mod 7 does this expression ever become 0? So the idea I'll use over here is the different powers of 2. So for example, 2 to the power n mod 7, 3 to the power n mod 7,
and this when expressed as a table of n will give, when n is 0 both of these are 1 mod 7, when n is 1 this becomes 2 and this becomes 3. For n equal to 2, 2 square is 4 which is still 4 mod 7, 3 square is 9 which is 2 mod 7. For 3, 4, 5 and 6, what we'll find that the powers of 2 keep cycling between 1, 2, 4, 1, 2, 4, because 4 times 2 is 8 which is 1 mod 7, multiplied by 2 again 2 mod 7, then 4 mod 7 and then back to 1. For 3 the story is a little bit different. 2 times 3 is 6, 6 times 3 is going to be equal to 18 which is 14 plus 4, hence this is 4 mod 7. 4 times 3 is 12 which is 5 mod 7, and finally over here for the power 6, 5 times 3 is going to be 15 which is 1 mod 7. See, the only place where both 2 to the power n and 3 to the power n are equal are when both the powers are multiples of 6. What I'm basically trying to say is 3 to the power n minus 2 to the power n is equal to 0 mod 7 only if 6 divides n. This symbol that I am using is for showing that a number divides the other number, or n has a factor 6. We can very easily see that a power of 2 does not have a factor of 6 because it is not divisible by 3. Hence, the two candidates above 97, 98 and 99, both of these can never divide the expression in the question. Hence, 97 has to be the answer. There is no other way to get to the value 97 apart from noticing that 81 plus 16 adds up to give 97, and 3 to the power 4 plus 2 to the power 4 is a factor of this particular expression. Alright, let's move on to the next question. You can go through the question. Okay. What you need to do is, you need to realize over here that factorials, 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24. The first factorial for which you get zeros in the end is 5 factorial, and all factorials beyond 5 will have terminal zeros. What Richard is doing over here is that he erases the zeros to the right of the last non-zero digit. So for 5 factorial, the last non-zero digit is 2. If he ever encounters a 5 factorial on the board, then he removes 0 and we are left with 12. Similarly, for 6 factorial, he will see that this is 720. He will remove the last 0 because 2 is the last non-zero digit. Now what is happening is that there are two numbers written on the board, n factorial and n plus 1 factorial. After dividing by a power of 10 or removing the zeros, he is left with two numbers a and b, which are both of these numbers respectively. If one of them happens to be 4 times the other, we need to find the sum of all the values of possible n and then find the last two digits of this. So there are two scenarios. See, first of all, a is equal to n factorial upon 10 to the power k. Simultaneously, b is equal to n plus 1 factorial upon 10 to the power l. Now, there are certain situations where k and l are the same number. Those situations are when n plus 1 does not introduce more zeros. Obviously, see, n plus 1 factorial will have equal to or more than the number of zeros that a has. The only scenario where n plus 1 factorial could have more zeros than a is when n plus 1 itself is divisible by 5. It is divisible by some power of 5. Notice what happens. If we are considering the two numbers 4 factorial and 5 factorial, 4 factorial when multiplied by 5 gives us 5 factorial, and because of the 5 in the 5 factorial, we get an extra 0 over here. So what we need to effectively solve for is two cases. Case 1, a equal to, b equal to 4a. Despite dividing further by a 10 or not dividing, b becomes 4 times of a. If this is the case, then we can substitute the values in here inside this equation and we can get n plus 1 factorial upon 10 to the power l is equal to 4 times n factorial upon 10 to the power k
and when this is simplified, we get n plus 1 is equal to 4 times of 10 to the power L minus k. Now recall my arguments that L must be greater than or equal to k simply because this number can only have more number of zeros or exactly equal number of zeros as the previous number. So this expression effectively becomes 4 times 10 to the power some number s, where s is some whole number. So from here we can easily see that the value of n plus 1 is readily found. N plus 1 is equal to, when s is equal to 0, or simply we don't have an extra 0 over here, then n plus 1 is equal to 4. The other scenario is 40. The next scenario is, and after that we have 4000 appearing. But 4000 will be rejected because the value of n that comes out to be is greater than 1000. We want the value of n to be less than 1000. So corresponding values of n will become 3, 39 and 399. You can check this for yourself that in place of 39 factorial, when you multiply by 40, what ends up happening is that 40 comes with a 0 of its own and a 4. Increasing the power of 2 in this factorial expression does not add zeros. Increasing power of 5 specifically adds the zeros that we want. The second case that we can analyze, you must remember that these are the solutions we have found so far. The second case will be 4a equal to b. Yeah, 4a equal to b. Over here I'll replace this with 4 times n factorial upon 10 to the power k equal to b's value will be n plus 1 factorial upon 10 to the power l. Now when I simplify this out, what I find is 4 times just a minute. 4 times, I think we have done an error over here. Oh, these are the same equations. Okay, sorry, my bad. 4 will come over here. This is case 2. 4 comes up over here. And what we have is 4 times n plus 1 is equal to 10 to the power L minus k, and n plus 1 then becomes 10 to the power L minus k or 10 to the power s upon 4. Now in order for me to have n plus 1 as an integer, 10 to the power s upon 4 must be an integer, must belong to the set of integers. Hence s must be greater than or equal to 2. And the corresponding values of n plus 1 becomes, when s is 2, n plus 1 becomes 25. When s is 3, n plus 1 becomes 250, and the next number will be 2500. For these, the corresponding values of n will become 24, 249 and 2499 and so on. This and all other numbers along this list will be rejected. So effectively what the numbers we have are 24, 249, and previously we had found 3, 39 and 399. When I add all of these numbers up, I'll find 4 carry over 3, 3 plus 2 plus 1 will give us 1, and carry over of a 1 will give us, carry over for 2 will give us 714. The last 2 digits of 714 will be 14, and that's the answer. Hopefully this was understood. What we did was we just took 2 cases of A and B. Either B is 4 times of A or A is 4 times of B, and we are done. Alright. Let's move on to the next question. Question number 4. This deals with LCM of a lot of numbers. What you need to see over here is that the LCM of all the numbers from 1 to 50 can be very easily calculated. The answer for this expression is straightforward. We need to look for the largest power of 2, 3, 5, 7, all the prime numbers that appear in this list. So the largest power of 2 that appears over here on its own is 32. So we have 2 to the power 5 multiplied by largest power of 3 that will appear
is 3 to the power 2, which is 27. So I'll just write 3 to the power 2 over here. Sorry, 3 to the power 3. To this, we will multiply 5 to the power of 2, because see, the numbers that are multiples of 5 to the power 2 are twice in this list. Both 25 and 50 are multiples of 25. Along in this list, we have 7 square also, 49, and then beyond 7 square, all the prime numbers are existing in singular powers. So this is the entire list. So it's actually useful for us to write down all the prime numbers that are less than 50. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 43, 47. See, I might have missed one or two I might not have missed any number over here. Alright. The largest power of 2 that we require is 2 to the power 5, 32. 32 must be available in the the list on the left side, the numbers from n to 50. For 3, the number that must be available is 27, because if 27 is not part of this list, then we won't find 3 to the power 3 as a part of our LCM for the LHS. For 5, we have the option of settling at 50 itself. If the number 50 is there in the list on the LHS, we will be sure that 5 square is there as a part of the LCM of the LHS. For 7, the requirement is 49. For 11, see, for 11 there are 4 options: 11, 22, 33 and 44. If any one of these numbers is a part of this left list, then we'll be sure that the LCM contains 11 to the power 1 in it. So we'll have to, the largest number that we can accommodate from here is 44. For 13, the value will be 39. For 17, the value will be 34, because 17 square, 17 times 2. For 19, the value will be 38. For 23, it will be 46. From 29 onwards, the numbers will be the numbers themselves: 29, 31, 37, 41, 43 and 47. The calculation might be a little bit lengthy over here, but the idea is very, very simple. We just want the largest multiples of the largest powers of all the prime numbers. So for 2, 3, 5, 7, 11, they are multiples of them, except for 3. And in this below list, 27 is the smallest number that exists. So hence 27 and all numbers above it must be a part of this LCM. Hence n is equal to 27 will be the answer. Okay. Let's move on to the next question. Now this also requires a lot of trial and error and rough work to be done. First, what you need to do is you need to evaluate 7 factorial. Now, if this was a question in combinatorics, you would have required to anyways evaluate 7 factorial, figure out 7 factorial as a product of powers of prime numbers, and then using those powers, you could use Beggar's method and get done with the question. But here it's asked that we want to minimize the maximum value among x, y, z. So we want an unordered solution of x, y, z, and among those unordered values, we need to consider how to minimize the maximum value inside them. So first of all, 7 factorial is made up of powers of 2, 3 and 5 and 7. So the numbers that contribute towards 2 are 2, 4, 6 and that's it. So we'll have 2 to the power 4 times 3 square times 5 to the power 1 times 7 to the power 1. That means the 3 numbers x, y, z that are made, among them, one of them surely will contain 7 as a factor. So let's just consider that one number over here. There are 3 cases now with us. This 7 can go solo. There is no factor that is along with 7. If 7 is equal to z, then xy happens to be how much? 2 times 2 cube times 3 square is 720. So this becomes 720. That's what we expect, right? If you remove 7 from 7 factorial, we'll left with 720. Now the square root of 720
goes close to 27. Square root of 720 is approximately 27. So if we are able to make two numbers whose product is 720, the two numbers will be around 27. The number that allows us to do this is 30 times 2 to the 24. 30 times 24 allows us to make the product smallest. So one of the values xy can be made smallest only in this manner. There is no other product of two numbers that can help us do that. The second case that we'll take is case 2, z is equal to 7 times 2. So far the smallest value of the maximum numbers among x, y, z we have found is 30. If z is equal to 7 times 2, then the product xy is made up of 360. Now these numbers can be converted or distributed into the following. We have 5 times 2 times 2 as one number, and we can multiply the remaining into 3. So 2 times 3 square. This becomes 18 and this becomes 20. This is as close to the square root of 360 that you can get, which is 19. So one number is less than 19, the other number is greater than 19, and this over here will be the smallest value of the maximum value of xy that we can get. So hence our answer so far is 20, which is better than 30, but there is still another case to analyze. Case 3. Now case 3 right off the bat is a no-brainer, impossible case. Z becomes equal to 7 times 3. If z is 7 times 3, the maximum value is already 21. Whatever we do with xy, xy will now equal 240. However, we are able to factorize 240 into two numbers. Both numbers can be made to be less than 21, but the maximum value among these numbers is already 21. Hence, the last figure that we had figured out, 20, will be the answer. All I did was I just realized that there are three numbers. One of them has to be divisible by 7, and that number could be just simply 7. It could be 7 times 2, or it has to be 7 times 3. The next possibility would be 7 times 4, which is 28, which is still larger than whatever we have found over here. So we can stop our search and 20 will be the answer. Alright. Moving on to the next question. Now here this does not require a lot of lengthy calculation. You can read through this question and recall what you might have done. There are 5 numbers A, B, C, D, E, 5 positive integers who are in a strict ascending order. And when two different numbers are chosen from this set, 5C2 is 10. We expect 10 different sums, and there are 10 numbers over here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So these are the 10 different sums that are possible, and for our benefit, all these 10 numbers are arranged in an ascending order. Now if this was not given in an ascending order, it would not be very tough. All you would have to do is figure out the smallest number among them. Among all the pairs that are possible among these 5 numbers, you must realize that the smallest two, A plus B, is the smallest pair, smallest sum. Because I can show this using proof by contradiction. If there was some other sum that was smaller than this, then when you put it beside this, you will realize that A is smaller than any of the two numbers or equal, and B is also smaller than or equal to any of the two numbers. And hence A plus B will be the smallest sum over here, and D plus E, the largest two values, will add up to give the largest sum. And all the sums are available to us. So 165 is actually equal to A plus B, and 207 is actually equal to D plus E. Now if this question was asked in IOQM, your task should not be adding up all of these numbers. You should use a concept that is introduced in 10th NCERT in the statistics chapter, where you use the concept of an assumed mean. I'm just demonstrating a strategy to get to the final mean quicker than simply adding up these values. You will not have access to a calculator. The fastest way would be using a calculator, but since you don't have access to a calculator, what we can do is we can assume
mean to be 180. Okay, and then we'll record the deviations from 180 that exists. So 165 is 15 less than 180, 170 is 10 less than 180, 175 is minus 5, minus 3, plus 2, plus 7, plus 10, plus 15, plus 20 and plus 27. So deviation from the mean expected value is by this much for each number. Minus 10 and plus 10 will cancel off. Minus 15 plus 15 will cancel off. Minus 5 and minus 3 will become minus 8. This becomes 9. So we cancel this off and we get a 1. The two numbers that are remaining over here are 20 and 27. They add up to give us 48. So this means the sum of all these numbers, sums of all pairs is equal to 10 times 180 plus 48. Now this number is much more useful rather than having the actual sum available with us. Now when you are looking at this particular expression, there are two numbers a, b, b, c and so on in each of these numbers. So the total count of the numbers that are available over here will be 10 times 2, which is 20. Out of these 20, there are 5 unique integers inside them. So hence, when I divide 20 by 5, I find that the result 4 should match with the number of times each of the numbers a, b and c appear. For example, there will be a number of the form a plus b, there will be a number like a plus c, a plus d, a plus e. Then there will be a number like b plus c, b plus d, b plus e. For both a and b, you can notice that there are 4 sums that contain a and there are 4 sums that contain b. Effectively, all of a, b, c, d and e appear 4 times. So hence, a plus b plus c plus d plus e times 4 is actually this sum, 10 times 180 times 48. And I can divide by 4 and also use the fact that a plus b is 165 and d plus e is 207. So 165 plus 207 plus c times 4 is equal to 1800 plus, oh sorry, there is a plus over here, plus 48. When I divide by 4, I get 450 and this becomes 12. The sum over here becomes 372 plus c is equal to 462 and c evaluates to 90. Now if you wanted, you could painstakingly calculate all the values over here. All of a, b, c, d, e could be calculated, but the question just asks us to find the value of c and that is 90. Hopefully this is clear. Let's move on to the next question. 2024 numbers are written in a line. Now this is a really simple question. What I'll do is, all the 2024 numbers could be expressed as A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. The reason I'm writing many numbers over here is because 7 consecutive numbers add up to 77. That means the first 7 numbers must add up to 77. Sum equal to 77. Now just to differentiate over here, I'll use a different color, blue color. The sum of the next 7 numbers starts from A2 all the way up till A8. Notice that both of these sums contain the common value of A2 to A7 being added. I'll just for now assume the sum of these numbers is sum equal to x. Alright. Using the assumption that the sum of the numbers from A2 to A7 is x, what I'll find is A1 plus x equal to 77. Also, A8 plus x is equal to 77. Now, equals added to equals are equals and equals subtracted from equals are equals. I can just use that axiom and directly say that A1 is equal to A8, because when I subtract both of them, both of these cancel and A1 minus A8 equal to 0 or A1 is equal to A8.
Now this is not only true for A1 and A8. If I just shift this calculation slightly, you will find that A2 is equal to A9 and A3 is equal to A10 and so on. Effectively what ends up happening is that A8 further is equal to A15 and this is further equal to A22. Eventually you will find that all the numbers of the form A7k plus 1, all of these are equal to A1 and A1 is given to us in the question. All of this is equal to the value 7. The question, because it gives only such limited information, A2024 is also of the form A7k plus 1. All you need to do is calculate and like present it over here. A2024, sorry, instead of 2024, I'll just use 2024. When I subtract 1 from this, I get 2023 and this particular number is divisible by 7. When I divide it, I find that this is 7 times 289. 2023 is such a number that it's 7 times 17 square and 2024 is not that kind of a number. You can factorize 2024 very easily from 45 square minus 1, but this number is 7k plus 1, hence A2024 is equal to 7 and this ends the question. There is usually a very tiny trick that is involved in figuring out most number theory questions. The next question here also just requires a tiny analysis and like conforming to the notation that is given over here, we need to consider that 132 is a base A number, 43 is a base B number and 69 is a plus B, a base A plus B number. If I expand these out, I'll find that A square plus 3A plus 2 plus 4b plus 3 is equal to 6 times a plus b plus 9. Hopefully base system is known to most of you. If you don't know, simply the number 1729 that we frequently keep like reading or listening to, the value of this number is known from its notation. This is 1 times 10 to the power 3 plus 7 times 10 square plus 2 times 10 to the power 1 plus 9 times 10 to the power 0. This is the base system of notation that allows us to give a value to this collection of numbers. Now if I swap the position of 1 and 7, you know very well that the value of this number changes, but someone who is not aware of a base system might just think, okay, these are a collection of numbers, 7129 must be the same as 1729. That's where they will be wrong. But we could also have a base system that does not have the value 10 over here. We could very easily replace this number 10 with any integer as long as we have sufficient number of symbols. For example, if we are using base 2, then the only symbols that we'll use are 0 and 1. You can read a little bit about base system. There will be few more questions that will keep using base system, and you can use these questions themselves as a source of your revision for base system or source of the preliminary knowledge for base system also. 132a, when we read it as a base 10 number, it is 1 times 10 square plus 3 times 10 plus 2. In place of 10, you just replace it with this a. Wherever there is a capital A or B, I have replaced it with a small a or b. Hence, I get a quadratic in A and a linear in B. Once I cancel out the terms, I get a square minus 3a, because 6a comes over here, and minus 2b minus 4 equal to 0. This is the equation that I need to solve for a and b. Now, it is also given that a and b are consecutive positive integers. So, there are two cases. Case 1, a equal to b plus 1. If this is the case, sorry, I'll replace b with a. So, I'll write b is equal to a minus 1. If this is the case, then substituting over here gives me a square minus 5a. Since b is a minus 1, there is a minus minus plus that happens. So, we have a square minus 5a minus 2 equal to 0. In this particular quadratic, we will never get integer solutions. No integer solutions. That's simple because the discriminant over here is 25 minus 8, which is 17, which is not a perfect square, hence no integer solutions. The second case,
case 2 gives us b is equal to a plus 1. b is the larger among a and b. If that is the case, then we have a square minus 5a minus 6 equal to 0, and once you factorize this, you get a minus 6 times a plus 1 equal to 0. Voice info. Just is my voice coming properly now? The value of a over here is 6, and correspondingly the value of b will be 7, and we are asked to find a plus b. This becomes 13. This is the final answer. Hopefully the voice is coming properly now. Okay. Yeah, a is 6 and b is 7. The next question, question number 9, you can go through this. Okay, hopefully the voice is coming properly. Find the largest 2-digit value of n such that n times n plus 1 times 2n plus 1. Now this is the expression that is the expression for sum of, there are two ways to take while solving this question. Method 1, which is a pathway that I am not going to explore, which you can explore on your own over here. Sum of first n perfect squares, 1 plus 2 square plus 3 square and so on, all the way up till n square, is equal to the value, is equal to which value? Is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. So if we want the numerator of this expression, to be divisible by 18, then we require this entire expression to be divisible by 3. It's really easy to go and check for which values of n will you have this expression divisible by 3, and which values of n it is not divisible by 3. Alright, so that is one method to do. You can explore this method. I'll use the other method over here, method 2, where I list all the values of n mod 9, because we want to solve this expression if whether it is divisible by 18 or not. One thing to note over here, that this particular expression is always divisible by 2, because n into n plus 1 are two consecutive numbers. One of them is going to be even, one of them is going to be odd. Hence this number is always divisible by 2. For mod 9, what you can do is you can list out the values of n could be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 cycles back to 0. N plus 1 for the corresponding values of n will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 0. 2n plus 1 will be again an arithmetic progression in mod 9. For 0 it will be 1, for 1 it will be 3, 5, 7, 0. Notice that 4 times 2 plus 1 is 9, which is equal to 0 mod 9. 5 becomes 2, then 4, then 6, then 8. The product of these three numbers must be divisible by 9. Then I can reject that value of n. Notice that if I have a 0, then their product becomes 0. So the product is 0 over here. Product is not equal to 0 over here. The product is not equal to 0 here, not 0. It is 0 over here. It's not 0 over here, not 0 over here. Further, 1, 2 and for 1, 2 and 3 it's again not 0, and for here it is 0. So there are certain values of n that allows us to have certain values of n that allows us to have the product of these three numbers not divisible by 18. Not divisible by 9, hence not divisible by 18, because all the numbers are going to be divisible by 2. So in the list of 2-digit numbers, 99, 98, 97 and so on. 99 is a number of the form 0 mod 9. Hence 99 is rejected. 98 is a number of the form 8 mod 9, which results in a number that is divisible by 9. Hence this is rejected. For 97 that is not the case. This will be the answer. If you go along this method also, you will find success fairly quickly, because all you need to do is that you need to figure out which what are the mod 3 values of all the perfect squares.
and from there you will find a pattern, and every few numbers will be divisible by 3, every few and then you will find numbers that are not divisible by 3 a lot. So out of them 97 will be the largest such 2-digit number. Alright, someone is saying not coming from method 1. See, for 1 all you need to do is check a square mod 3. Okay, the values of a square mod 3 are 1 and 0. If a number is divisible by 3, it will be 0 mod 3. The square of a number will be 0 mod 3. If the number is not divisible by 3, it will be 1 mod 3. And using those values, you can notice that there is effectively a sequence of 1 1 0 1 1 0 1 1 0 that is being added. Up until this point it is not divisible by 3. Over here it is divisible by 3. Then further it is not divisible by 3. From this point onwards it is divisible by 3. The next two values it is going to be divisible. Then you can see that we have just these instances where 3 ones add up and we get the number divisible by 3. That is where you need to be cautious. So 98 and 99 both result in the expression being divisible by 3. Hence times 6 is divisible by 18. But for 97 that's not the case. Alright. Question number 10. You can go through this question. Here again the expression over here must be read as 7 to the power this long sequence of 7s. It actually doesn't matter how many 7s are there in this list. The value of k will still be the same value. Why is that the case? Because if we want to look at the unit digit of 7, 7 to the power n mod 10, if you try calculating this for different values of n, for n equal to 0, the result is 1 because 7 to the power 0 is 1. 7 to the power 1 is 7. 7 to the power 2 is 49, which gives us 9. 7 to the power 3 becomes 343 and then 2401. So for the fourth power we get 1 back in the list. So this means that every fourth number in 7's power will result in the same number reoccurring again and again. So when we talk about 7 to the power a, we could just as easily say that 7 to the power a is equal to 7 to the power a mod 4, because every fourth number gives the same result. A mod 4 is any number that is away from a by a multiple of 4. This is equal mod 10. Now this is very important to understand such kind of an expression. 7 to the power a is the same as 7 to the power a minus 4. It's also equal to 7 to the power a minus 8 and so on. So what I in turn need to do is I need to find 7 to the power n mod 4, because the power of 7 contains a power of 7. 7 to the power n mod 4 will be calculated as 1. 7 to the power 0 mod 4 will be 1. 7 to the power 1 will be 3 mod 4, and 7 to the power 2 is 49, which is 1 mod 4 again, 48 plus 1. Hence this has a periodicity of 2. So effectively what ends up happening is that 7 to the power a mod 4 is the same as writing 7 to the power, I'll write b over here, 7 to the power b mod 4 is the same as writing 7 to the power b mod 2. Just a second. Okay, 7 to the power b mod 2. That means it matters that whatever is the power beyond this 7, whether this number is an even number or an odd number. So we know for a fact that 7 raised to the power any number will still remain an odd number. Hence the next list of numbers that we want is 7 to the power n mod 2, and this is always 1. Hence we'll go to 7 to the power 1 mod 4, which is 3. We'll go to the third position, 7 to the power 3 mod 10, and 7 to the power 3 mod 10 is exactly 3. The value of k hence is 3. You can check this for yourself again. See, there is an odd number over here. So 7 to the power an odd number needs to be considered. 7 to the power odd number is always 3 mod 4. So hence the number over here is going to be a multiple of 4 plus 3. 7 to the power 4 results in a 1, so we can just remove it. 7 to the power 3 is 343, which has unit digit 3. Hence this expression will always have a unit digit of 3, and then the number that contains 3 sevens will be 777,
This can be factorized out as 7 times 3 times 37, because 111 can be factorized as 3 times 37. 37 is the answer to this question. Hopefully this was understood. The questions that I have presented over here are all really simple if you just catch a hold of the idea that is required to solve it. Okay, and most questions in number 3 are of this manner. Some will have a lot of calculation. I'll hand over the next few slides to Rajat sir so that he can continue with question 11 onwards. If there is any issues with the mic or audio, please let us know through the chat. Right? हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? कैसा चल रहा है बच्चों सेशन? मजा आ रहा है? कॉम भी हो चुका है, अलजेब्रा हो चुका है. नाउ वी आर स्टार्टेड विथ नंबर थ्योरी. 10 क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं. सो बच्चों, आज भी एनर्जी हाई रखनी है, एंथुसियाज्म हाई रखना है. जबरदस्त सवाल करने वाले हैं. अगर आपके पास पीडीएफ है तो आपको पता चले गया होगा कि आगे जो सवाल हैं वो कैसे हैं. द लेवल ऑफ प्रॉब्लम इज रियली हाई, रियली नाइस. जो 5 मार्कर प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअल 5 मार्कर्स हैं, जो 3 मार्कर्स हैं वो एक्चुअल 3 मार्कर्स हैं. कुछ 2 मार्कर्स ऐसे भी हैं जो 5 मार्कर जैसे हैं. वी विल स्टार्ट डिस्कशन. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे फ्रॉम माई क्लासरूम ऑल्सो, फ्रॉम माई वर्कशॉप ऑल्सो. इज माई वॉइस कमिंग प्रॉपरली बच्चों? आवाज स्लो आ रही है क्या? राधे राधे बच्चों, राधे राधे. ओके, चलिए अगले 10 सवालों की तरफ चलते हैं, 2 मार्कर वाले पार्ट पे. ओके ओके बच्चों, अब देखिए ये कुछ प्रॉब्लम इजी भी है. जैसे ये वाला प्रॉब्लम है काफी आसान सवाल है, लेकिन 2 मार्कर के लिए तो बहुत अच्छा सवाल है. सो व्हेन ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड द नंबर 66 बाय द रिपीटिंग डेसिमल 1.ab and so on, which is 1.ab bar, where a and b are digits, he did not notice the notation and just multiplied 66 times 1.ab. Later he found that his answer is 0.5 less than the correct answer. तो जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था, करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था उसका? 66 इंटू 1.ab बार, मगर उसका आंसर 0.5 कम आया है, राइट? सो माइनस 66 इंटू 1.ab, ये उसने 1/2 दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, राइट? तो उसको देख लेते हैं. 66 कॉमन, 1.ab बार माइनस 1.ab कितना हो जाएगा? इसको ऐसे फील करो कि 1.ab ऐसे चल रहा है सिलसिला, और अपने को 1.ab माइनस करना है, तो 0.00ab बार आ जाएगा, राइट? सो दिस इज 0.00ab बार विच इज 1/2. एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 0.ab बार बाय 100 लिख लेते हैं इसको. 0.ab बार बाय 100 ऐसा लिख सकते हैं ना. ये तो सिंपल नोटेशन है. यहाँ से पॉइंट हटाया, डिवाइड बाय 100 कर दिया, और 2 डेसिमल शिफ्ट कर दिया आगे, तो ये कट जाएगा 50 टाइम्स, और ये 33 और ये 25. So basically we are getting this point AB bar which is 25 by 33. और बच्चों आपको पता हो कि 25 by 33 is nothing but 0.75 bar. And finally we get AB as 75. तो ये सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों. आई होप ये सबका क्लियर है. If you have understood this problem, just write down Udan. If you have not understood, just write down Ben. I will try to explain it again. I hope ये सिंपल है, सबको क्लियर हो गया है. Yes? चलें बच्चों आगे. Someone is asking what is Udan. So again let me tell you what is Udan. Udan is basically understood and noted, and ban is basically bouncer and noted. So whatever happens with you, if you have understood, you just write down Udan. If you have not, write down ban. Next problem.
The number n can be written in base 14 as ABC, can be written in base 15 as ACB, and can be written in base 6 as ACAC. A is positive. Let the base 10 representation of n be k. Find k by 25. ये भी अच्छा सवाल है वैसे. देखिएगा, तो बेस 14 में अगर अपन ABC को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? 14 स्क्वायर इंटू A प्लस 14 इंटू B प्लस C. So 196A plus 14B plus C. Now some of you are spamming continuously the answer, but बच्चों आंसर तो ऑलरेडी PDF में दे रखा है ना. मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि अगर आप आंसर रख रहे हैं, मतलब बार बार स्पैम करे जा रहे हो, तो आप ऐसा मत सोचिए कि दूसरे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि बच्चा कितना होशियार है, इसको कितना क्वेश्चन देखते ही आंसर आ गया. क्योंकि सबको पता है कि सबके पास PDF है आंसर की, उसमें है. तो आंसर स्पैम करने से कोई मतलब नहीं है. आप लोग ध्यान से समझिए और चैट बॉक्स को हो सके तो जितना अपनी नज़रों से हटा के रखोगे उतना फ़ायदा है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलरली ऐसी आ जाती है कि आवाज़ नहीं आ रही, वीडियो लैग हो रहा है, इस तरीके की दिक्कत है, तो आप ज़रूर बताइए मुझे. और कोई जेन्युइन डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा. बट स्पैम और वो जो लास्ट टाइम चल रहा था गेमिंग के तो डिस्कशन हो रखे थे, पता नहीं के ड्रामा भी डिस्कस हो गया था बीच में तो इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करते हैं. क्योंकि अब देखो 1 सितंबर आ चुका है आज, राइट. 3-4 दिन की कहानी हो रही है. तो बच्चों ध्यान से फोकस करिएगा. PDF कहाँ से मिला? तो PDF किसी के पास अगर नहीं आया बच्चों, वापस बता देता हूँ मैं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, या फिर आप गूगल करिएगा तो आपको LN IOQM मैराथन 2026 टाइप करना है. एक जो वेब पेज आएगा वहाँ जाइएगा, वहाँ रजिस्टर करिएगा तो आपको जितनी भी मैराथन हुई हैं, आज तो आई थिंक ज्योमेट्री की भी PDF मिल गई होगी, राइट. बताइएगा मेरे को ज्योमेट्री मिल गई क्या? तो बाकी मतलब चारों मैराथन की जो हम लोग प्रॉब्लम यहाँ करने वाले हैं उन सब की PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी. यू कैन इजीली डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें सारे प्रॉब्लम्स है और उनके आंसर की है. चलिए, सो ये हो गया बेस 14 में बच्चों. फिर बेस 15 में देखते हैं ACB बेस 15 विच इज 15 स्क्वायर A प्लस 15C plus B. So this is 225A plus 15C plus GO की अभी तक नहीं मिली है क्या? कोई बात नहीं बच्चों, मैं बोल देता हूँ, अभी मिल जाएगी आप लोगों को ना, शाम तक मिल जाएगी. सो और एक और टर्म है ACAC बेस 6 में. तो ये हो जाएगा 6 क्यूब A 6 स्क्वायर C 6A और C. So this is 216A plus 6A, so 222A, and 36C plus C is 37C. Now ये जो तीनों की तीनों वैल्यूज है आपस में एक ही नंबर को बता रहे हैं, एक ही नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे. So this 196A plus 14B plus C is equal to 225A plus 15C plus B is equals to 222A plus 37C. ये तीनों आपस में इक्वल है बच्चों. इनमें अपन एक काम करते हैं, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं और एक बार इन दोनों को ले लेते हैं. इन दोनों को जब लेते हैं तो ये थोड़ी इजी दिख रही है, तो इन दोनों को पहले ले लेते हैं. 225A minus 222A is nothing but 3A, and C 3A plus B is equals to 37 minus 15 कितना होगा बच्चों? 22 होगा. सो 22C. ये रिजल्ट मिला अपन को, इसको अपन साइड में रख देते हैं. अच्छा, इससे अपन काफी इंपॉर्टेंट बातें कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों. देखो क्वेश्चन में जब भी बेस वाला क्वेश्चन होगा, विल हैव टू थिंक कि भाई एग्जैक्टली सिचुएशन कैसी है. सिचुएशन में हमको देखना पड़ेगा कि ये जो डिजिट्स हैं इनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है. तो बेस 14 में ABC को यूज किया गया, तो ये सारे डिजिट्स 13 तक हो सकते हैं. बेस 15 में यूज किया गया है इस ACB को, यानी कि ACB सब मैक्सिमम 14 तक जा सकता है. मगर यहां देखिए ट्विस्ट है कि AC बेस 6 में यूज हो रहा है, तो आप यहां से ये क्लेम कर सकते हो कि A और C जो है वो मैक्सिमम 5 हो सकता है बच्चों, और 0 से तो बड़ा होगा, और A जो है वो 0 भी नहीं हो सकता.
उसने मना करा है कि a हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो एक तो ये बात चमक जाए आपको कि a और c 0 से 5 तक, जैसे अपन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ते हैं बच्चों, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं अपन, तो हमारे डिजिट कहाँ तक होते हैं? 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेस 14 पे अगर आप लिखेंगे किसी नंबर को तो वो 13 तक जाएंगे उसके डिजिट्स। बेस 15 लिखेंगे तो 14 तक जाएंगे, और बेस 6 लिखेंगे तो 5 तक के डिजिट्स होंगे, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, a और c तो बाउंड हो गया 0 से 5 में, लेकिन b के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो b जो है वो बेस 14 में भी आ रहा है और बेस 15 में भी आ रहा है, तो b एटमोस्ट कहां तक जा सकता है? 13 तक जा सकता है, ठीक है ना। तो ये अपने को बातें पता चल गई। अब अगर यहां से देखा जाए कि भाई हमको पता है कि a और c 0 से 5 तक हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू एक बार के लिए मान लीजिए मैंने 0 रखी, अगर मैंने c को 0 रखा ना तो 3a प्लस b 0 आ जाएगा बच्चों, तो फिर a और b दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस स्टेप के बाद अगर इफ c becomes 0 then 3a plus b will become 0 which will not give any solution, right? क्योंकि डिजिट्स का सम है तो फिर a और b दोनों ही 0 होने पड़ेंगे, नेगेटिव तो होगा नहीं, और उसने मना किया कि भाई नेगेटिव नहीं हो सकते, a को पॉजिटिव रखना है। सो नो सॉल्यूशन इन दिस केस। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर c को हम 1 रख देते हैं बच्चों यहाँ पे, इफ वी पुट c इक्वल्स 1 देन इट इज पॉसिबल कि ये इक्वेशन पॉसिबल हो। लेकिन अगर हम c को 2 रख देंगे ना बच्चों, यहां देखने वाली बात कि इफ यू पुट c इक्वल्स टू 2 देन दिस इक्वेशन बिकम 3a प्लस b इक्वल्स टू 44। अगर आप यहां पे a की मैक्सिमम वैल्यू भी पुट कर दोगे विच इज 5, इफ c इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 देन 3a प्लस b इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 44। But again, in this case also there will be no solution. Are you getting my point? Because a की maximum value is what? 5, 5 3 is 15 and b की maximum value is 13. So 15 plus 13 वो हमेशा 44 से छोटा ही रहेगा। तो ये c, so no solution in this case also. तो इसका मतलब अपन ने c को फिक्स कर दिया है बच्चों कि c की एक ही वैल्यू हो सकती है, that is c has to be 1. सो c इज 1, c 1 फिक्स हो चुका है बच्चों। बाकी अब 2-3 वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल रह गए, बाकी तो कर लेंगे अपन। तो हमारे पास c का वैल्यू 1 आ गया। अब अपन आ जाते हैं, अभी अपन ने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया था, अब अपन आ जाते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। 225 माइनस 196 से कितना आएगा बच्चों? 29a, ठीक है। और 15c माइनस c आ जाएगा 14c, और b माइनस 14b आ जाएगा कितना बच्चों? 13b। और चूंकि c फिक्स हो चुका है, c का वैल्यू 1 आ चुका है, तो अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? 29a माइनस 13b, 29a माइनस 13b इज इक्वल्स टू माइनस 14, और वो वाली इक्वेशन है 3a प्लस b इज 22, 3a प्लस b इज 22। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। We'll simply solve these two equation, we'll get the values of a and b. तो इससे वैल्यूज बताइए क्या आ रही है बच्चों, आप लोग कमेंट में बताइए। व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर ए बी एंड सी? फास्ट, थोड़ा सा फास्ट काम करना है बच्चों, 2 मार्कर जल्दी खत्म करने। आ गया सबका? तो a का वैल्यू आपका आ रहा है कितना? 4, b आ रहा है 10, c आ रहा है 1। चलिए, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आ गया है, फैंटास्टिक। रितिका जैन, दैट्स करेक्ट। आर्य ही, दैट्स करेक्ट। प्रखर 4 and 2 कहां से आएगा भाई? 4 and 10 आएगा ना, a 4 आएगा, b 10 आएगा। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, ये खत्म हो गया, इसको आगे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो निकाल लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट k मेनी इंटीजर्स n आर देयर इन 1 2 3 अप टू 2022 सच दैट क्यूब रूट ऑफ n इज अ फैक्टर ऑफ n, फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स ऑफ k। क्वेश्चन आपको चमक गया क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो टर्म है ना क्यूब रूट ऑफ n का GIF, दिस इज अ फैक्टर ऑफ n। क्वेश्चन में ये चीज लिखी हुई नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं कि दिस रिप्रेजेंट्स GIF,
सो दिस थिंग रिप्रेजेंट्स, कोई बात नहीं, प्रकार टाइपो हो गया होगा, दिस थिंग रिप्रेजेंट्स GIF, ओके। सो अब देखिएगा बच्चों की क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 2 से लेकर के क्यूब रूट ऑफ 7, ये सारे ही वैल्यू 1 देते हैं, इन सब का GIF जो है 1 देगा। फिर क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 9 से लेकर के क्यूब रूट ऑफ 26, इन सब का GIF 2 देगा बच्चों। तो 1 तो सभी का फैक्टर है, 2 इन नंबरों में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अप टू 26, इन नंबरों में कितने नंबरों का फैक्टर 2 है वो निकालना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिस थिंग हैज टू बी ए फैक्टर ऑफ n, राइट। तो ये तो 7 नंबर तो यहां से आ गए, ये 7 नंबर अपन काउंट कर लेंगे। यहां से कितने नंबर आएंगे बच्चों, यहां से हमें वो नंबर निकालने जो कि 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल वाले नंबर कौन कौन से हैं, 2 से डिविजिबल वाले नंबर है बच्चों 8, 10, 12, 14 अप टू 26। तो इसको डायरेक्टली कैसे काउंट कर लेंगे, 26 माइनस 8 बाई 2 प्लस 1 कितना होता है, देखो ये 18 बाई 2 9 प्लस 1 10 होता है क्या, चेक करो। ये चमका क्या आपको, मैंने कैसे लिखा, अगर आपको नहीं चमका तो आप लोग AP बना लो ना, AP से चमक जाएगा। देखो 8, 10 अप टू 26, तो TN जो है वो हो जाएगा आपका 8 प्लस N, मतलब आपका लास्ट टर्म भी आपको पता है 26, 26 लास्ट टर्म TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, D इज 2। तो ये n कैसे निकाल पा रहा हूं मैं, देखो ये मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया होगा, 26 में से मैंने 8 को माइनस करा और ये जो 2 है इसको घटाया और ये जो माइनस का 1 है इसको जोड़ा, तो यहां से n आ जा रहा है ना, देखो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो 26 में से 8 को घटाया, इस 2 को डिवाइड करा और ये माइनस का 1 को इधर ले जाकर के प्लस 1 कर दिया, तो यहां से n आ गया बच्चों। तो यहां से n आ गया 10। अब ये काम मैं बार बार करूंगा इसलिए मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आगे के टर्म्स में अपन ये बार बार लिख लेंगे डायरेक्टली, राइट। तो ये हो गया। उसी तरीके से मैं आपसे बोलूं कि क्यूब रूट ऑफ 27 से लेकर के क्यूब रूट ऑफ 63 तक ये सभी का वैल्यू आएगा 3, लेकिन टोटल नंबर्स कितने आएंगे, मतलब आपको वो वाले नंबर्स निकालने हैं इन नंबरों में से 27, 28, 29, 30, इन नंबरों में से वो वाले नंबर्स पता लगाने हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, क्योंकि उनका एक फैक्टर 3 आना पड़ेगा ना। ये जो इनका GIF का वैल्यू जो 3 आ रहा है ये आना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालोगे, वापिस से इसी लॉजिक से निकालोगे। तो लेकिन अगर अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दें तो 63 माइनस 27 बाय 3 प्लस 1 कर दें। अब इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है बच्चों, 63 माइनस 27 प्लस 1 बाई 3 करके बताओ कितना आ रहा है। चमक गया क्या, सबको आ गया, ये आ जाएगा 13। तो अपन को पैटर्न दिख गया बच्चों। पैटर्न मैंने शुरुआत से बोल रखा है, कॉम्बी जब हमने करा था कि IOQM इज ऑल अबाउट पैटर्न ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो पैटर्न चमक गया तो क्वेश्चन खत्म है। अब अपने को दिख गया कि 7 नंबर ये हैं, 10 नंबर ये हैं, 13 नंबर ये हैं, फिर जिसका क्यूब रूट जिसका GIF 4 आएगा वैसे नंबर 16 हो जाएंगे, जिसका GIF 5 आएगा ऐसे नंबर 19 हो जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन अपने को जाना कहां तक है, 2022 तक। तो अपन 2022 से जस्ट छोटा क्यूब रूट नंबर देखते हैं, तो कौन सा नंबर आता है, कौन सा नंबर आता है, याद है क्या आपको? देखो 12 का क्यूब होता है 1728, राइट। 11 का क्यूब याद है किसको, कितना होता है 11 का क्यूब, और 13 का क्यूब वो होता है 2197 आई थिंक, देख लेना बच्चों इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक 2197 आपका 11 क्यूब 13 क्यूब हो जाता है, और 11 का क्यूब हो जाता है 1331। तो अपन देखें कि इतने नंबर कितने आएंगे, 11 वाले और 12 वाले तक निकाल लेते हैं बेसिकली अपन, है ना। मतलब 1332 से लेकर के 1727
ये नंबर कितने होंगे बच्चों, ये देखो आप 1332 से 1727 तक कितने नंबर्स होंगे? सेम फॉर्मूला लगाते हैं तो 1727 माइनस 1332 और इसका वैल्यू आएगा 11 और +1 कर देंगे, इतने नंबर आ जाएंगे बच्चों। फिर उसके बाद है ना 1728 से जब अपन शुरू करेंगे ना, 1728 से लेकर के अपन को जाना है 2022 तक, तो ये तो 2197 तक है, लेकिन अपने को जाना है 2022 तक। इन सबकी वैल्यू 12 आएगी, इन सबकी वैल्यू 12 आएगी, तो अपना इसका वैल्यू हो जाएगा 2022 माइनस 1728 बाय 12 प्लस 1। बच्चों इनको कैलकुलेट कर लेना, जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नोट कर लीजिए बच्चों तेजी से। ये 1331 से होगा, बिल्कुल। आप किसी एक बच्चे ने सही पॉइंट आउट करा कि सर 1331 होगा ना, क्योंकि 11 वैल्यू ले रहे हैं अपन इसकी, और 1330 तक तो जो चल रहा है वो चलेगा ही, 10 चलेगा उससे पहले तक। अब इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो तो आपका पैटर्न लास्ट वाले का कितना आ रहा है ये निकाल लेना बस। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहां तक कितना आ रहा है और यहां तक कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करो, जोड़ो, आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले या पूरा सॉल्व करूं, बोलो। यहां तक आई थिंक 37 आ रहा है और ये 25 आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 + 10 अप टू 37। इसको तो अलग से जोड़ लेना और उसमें 25 और जोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ओके, an arithmetic sequence of exactly 10 positive integers has the property that any two elements are relatively prime. Let the smallest possible sum of the 10 numbers be k. Find k by 40. देखिए, we have 10 positive numbers, right? a plus d, a plus 2d up to a plus 9d। इस तरीके से हमारे पास 10 नंबर्स हैं। अब वो कह रहा है कि एनी टू एलिमेंट्स आर रिलेटिवली प्राइम। इस तरीके से ये 10 एलिमेंट्स होने चाहिए कि इनमें से कोई भी आप दो चुनते हो तो वो रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो देखिए, कोई भी दो चुनने के लिए और वो रिलेटिवली प्राइम हो, तो उसके लिए अपन अगर एक सिचुएशन ये देखें कि मान लेते हैं कि 2 डज नॉट डिवाइड्स d, मतलब d जो है वो 2 का डिवीजन नहीं है, तो एटलीस्ट one of a plus d and a plus d, a plus 2d will be divisible by 2। मतलब a plus d और a plus 2d, a plus 3d, a plus 2d, a plus 3d, इनमें से कोई ना कोई, इन दोनों ही सेट्स में से कोई ना कोई एक तो 2 से डिविजिबल होगा। ये चमका क्या आपको भाई, d जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो d ऑड है। तो अगर a ऑड हो गया तो ऑड प्लस ऑड क्या हो गया, इवन, और अगर a इवन हो गया तो वैसे भी a इवन हो गया। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम फॉर दिस a plus 2d and a plus 3d ऑल्सो। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक एलिमेंट्स 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, जो हमारी कंडीशन को वायलेट कर देंगे बच्चों, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो जो 10 एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी 2 एलिमेंट्स में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, प्राइम नंबर्स हो। तो यानी कि इसका मतलब है कि देयरफॉर d शुड बी डिविजिबल बाय 2, राइट? 2 शुड डिवाइड d। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया। उसके बाद हम बात करते हैं कि इफ 3 डज नॉट डिवाइड d, अगर 3d को डिवाइड नहीं करता, देन एटलीस्ट one of
a plus d, a plus 2d and a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d. At least one from this set and at least one from this set will be divisible by 3. क्योंकि मतलब आप ऐसे देख लो ना, इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, इनका सम जो है 3 से डिविजिबल है, ये 3a plus 3d है, ये 3a plus 12d है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, वापस से चीजें वायलेट हो जाएंगी, बिकॉज हम चाहते हैं कि उन 10 नंबरों में से कोई भी दो कोप्राइम हो सारे, मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स d। सेम लॉजिक बच्चों, सेम लॉजिक से हम 5 के लिए भी एक क्लेम कर पाएंगे कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स d। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर अपन 5 के लिए लेंगे 4 5 a plus d, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d and a plus 5d, a plus 6d, a plus 7d, a plus 8d, a plus 9d। इनमें से कोई ना कोई, इसमें से एक ना एक एलिमेंट और इसमें से एक ना एक एलिमेंट जो है वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। इस सेट में से और इस सेट में से कोई ना कोई एक 5 से डिविजिबल 100% होगा ही होगा। तो इसका मतलब वापस से वो वायलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको d को 5 का भी मल्टीपल लेना पड़ेगा, लेकिन ये काम अब 7 के लिए नहीं होगा बच्चों। क्योंकि 7 के लिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो चलो 10 एलिमेंट्स थे, तो शुरू के 5 और लास्ट के 5 में हमने ब्रेक डाउन कर दिया, बट 7 के लिए या 11 के लिए या 13 के लिए हम ये नहीं बोल पाएंगे ना, ऐसा जरूरी क्लेम नहीं कर पाएंगे हम। तो फिर ये इसका मतलब है कि जो d है, अगर d 2 से 3 से 5 से तीनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब d 30 से डिविजिबल होगा, तो d की लीस्ट वैल्यू 30 आ जाएगी। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ d इज 30, मतलब d शुड बी मतलब मींस 30 शुड डिवाइड d। मैं यहां पे लिख देता हूं 30 शुड डिवाइड d। 2 से 3 से 5 से डिविजिबल है तो 30 से डिविजिबल है, तो 30 शुड डिवाइड d। तो d की लीस्ट वैल्यू 30। अब अगर आप d की लीस्ट वैल्यू 30 ले लो, a को 1 भी ले लो आप, है ना 1, तो आपका टेक as1, तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा ना वो बनेगा 1, 31, 61, 91 एंड सो ऑन। अगर आप इसके सारे 10 एलिमेंट्स लिखते हो तो आप चेक कर सकते हो कि इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा, कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे नहीं होंगे जो कि जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर हो, मतलब वो आपस में कोप्राइम ही होंगे। इनमें से आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाओगे तो वो हमेशा आपको कोप्राइम मिलेंगे। देयर विल बी 10C2 पेयर्स, 45 पेयर्स, बट ऑल दिस 45 पेयर्स विल बी कोप्राइम विद ईच अदर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? नोट कर लें बच्चों, इसमें क्या पूछा गया था कि लेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ 10 नंबर्स। तो सम क्या हो जाएगा बच्चों? इन सारे नंबरों का, ये 10 नंबरों का सम क्या हो जाएगा? a plus d, तो 10a plus 45d, सम 10a plus 45d, तो 10 1 plus 45 into 30। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। 1360, उसको चाहिए था 1360 by 40। कैलकुलेशन देख लेना, वैसे तो सही लग रही है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसा ही कुछ तो आंसर होना चाहिएगा। चेक कर लेना बच्चों, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। उड़ान, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। उड़ान है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question says let the sum of positive integers n for which there exists a unique ordered triple of non-negative integers a, b, c such that 2a plus 3b plus 5c is 200 and a plus b plus c is n, b k, find k by 10। ये अपन थोड़ा सा कह सकते हैं कि 2 मार्कर से थोड़ा सा लेवल ज्यादा होगा इसका, 3 मार्कर, इवन 5 मार्कर भी कह सकते हैं, राइट? तो देखिएगा बच्चों इसको कैसे किया जाएगा, बट ये एक बार अगर आइडिया चमक जाएगा तो इसलिए 2 मार्कर में रखा है, क्योंकि आइडिया अगर चमक गया तो खत्म है क्वेश्चन, आइडिया नहीं चमका तो फिर ये 5 मार्कर की कैटेगरी का है। देखिए वो कह रहे हैं कि यूनिक ऑर्डर्ड ट्रिपल ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यूनिक ट्रिपलेट चाहिए उसको एबीसी, जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो, उन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स n का सम चाहिए, राइट?
और यहाँ पे जो ए बी सी के बारे में जानकारी दे रखी है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है. सो लेट्स टेक दिस टू इक्वेशंस, 2a प्लस 3b प्लस 5c, दिस इज गिवन टू अस एज 200, एंड a प्लस b प्लस c, दिस इज गिवन टू अस एज n. व्हाट बेस्ट वी कैन डू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं ऊपर वाली से, तो 2a गायब हो जाएगा, 3b माइनस 2b आ जाएगा b, 5c माइनस 2c आ जाएगा 3c, 200 माइनस 2n. तो यहां से b का वैल्यू कितना आ गया देखो, 200 माइनस 2n माइनस 3c. बेसिकली व्हाट आई ट्राई टू डू इज, मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा b की वैल्यू को c के टर्म्स में और a की वैल्यू को भी c के टर्म्स में निकाल लेते हैं, मतलब a और b को c के टर्म्स में निकाल लेते हैं एक बार के लिए. तो b तो आगे c के टर्म्स में, a भी आ जाएगा. अगर इस b की वैल्यू को उठा करके मैं इस वाली इक्वेशन में डाल देता हूं तो मेरा a प्लस 200 माइनस 2n माइनस 3c प्लस c, ये n है बच्चों, राइट. तो यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो, n प्लस 2n हो जाएगा 3n, और c माइनस 2c, c माइनस 3c इज माइनस 2c, उधर जाकर के प्लस का 2c माइनस का 200. देखो ऐसा कुछ तो हो जाएगा क्या, चेक करिए बच्चों. b आ गया 200 माइनस 2n माइनस 3c और a आ गया 3n प्लस 2c माइनस 200. इस तरीके से वैल्यू आ गई, राइट. इसमें अपन अब देखिए, अपन को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि दे ऑल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जीरो भी हो सकता है, तो जीरो भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, b शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, c शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. if a is greater than or equal to 0 and b is greater than or equal to 0, then what we can do, इन दोनों को 0 से बड़ा कर देते हैं. अगर हम इसको 0 से बड़ा करते हैं तो यहां से हम c की रेंज निकाल सकते हैं, दैट इज c विल बी लेस देन 200 माइनस 2n बाय 3. ये c के बारे में पता चलेगा, c का मैक्सिमम वैल्यू ये आएगा. और उसी तरह ये जो a है ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहां से हम c के बारे में ये बोल सकते हैं कि c इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 200 माइनस 3n बाय 2. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यहां तक सबको चमक रहा है. c इससे तो बड़ा होगा, c इससे छोटा होगा, और c के बारे में एक जानकारी और है कि c जीरो से भी बड़ा है. तो c की इन तीनों बातों को एक साथ लिख लेते हैं अपन. एक तो बात यह है कि c 0 से बड़ा है, दूसरी बात यह है कि c 200 माइनस 3n बाई 3 से छोटा है, और तीसरी बात कि c जो है वो 200 माइनस 3n बाई 2 से बड़ा है, 200 माइनस 3n बाई 2 से बड़ा है. ये बातें पता चल गई बच्चों. अब अपन c का और बढ़िया वाला बाउंड भी निकाल सकते हैं. यहां से देखो, एक तो c की मैक्सिमम वैल्यू ये है 200 माइनस 2n बाई 3. अगर c की मैक्सिमम वैल्यू ये है और c 0 से बड़ा हमें चाहिए, तो हम इसको भी 0 से बड़ा कर दें कि c की मैक्सिमम वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, राइट. सो दिस 200 माइनस 2n बाई 3 should be greater than or equal to 0. So from here what I get, n is less than or equals to 100. तो n के बारे में अपर बाउंड पता चल गया. उसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ, अब देखो c जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए. मतलब ये c की मिनिमम, एक तरीके से अगर समझ ले कि अगर ये पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, तो इस ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो जो मिनिमम है ना वो मैक्सिमम से हमेशा छोटी होनी चाहिए, राइट. तो इसका मतलब मैं एक और बात ये भी बोल सकता हूं कि 200 माइनस 3n बाई 2 इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200 माइनस 2n बाई 3. Now when we simplify it, this will become 600 minus 9n less than or equals to 400 minus 4n. So this will become 200 less than or equals to 5n. So from here we will get n is greater than or equals to 40. तो बच्चों n के बारे में मस्त सा लॉजिकल बात पता चल गई कि क्या, कि 40 से तो बड़ा होगा, 100 से छोटा होगा. n 40 से बड़ा होगा, 100 से छोटा होगा. अब आगे की कहानी समझते हैं. हमें चाहिए यूनिक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ए बी सी. अब बच्चों इसमें अपन एक केस वर्क करते हैं. एक केस ये ले लेते हैं
कि इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए अगर n जो है बच्चों, अगर n 67 से बड़ा हो गया, 66 तक तो सॉर्टेड है, 66 पे भी ये पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अगर n 67 या उससे बड़ा हो गया ना तो ये नेगेटिव होने लग जाएगा, c की वैल्यू ही नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन हमको लेनी क्या है, c की वैल्यू पॉजिटिव, c की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, मगर ये नेगेटिव होने लग जाएगा अगर आपने n को 67 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, मान लिया n को 70 रखा आपने, तो ये ऊपर आ जाएगा कितना, -10/2 यानी कि -5, c -5 से बड़ा होना चाहिए, जबकि हम कह रहे हैं कि c 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि अपन फिर उस वाले जब n 67 से बड़ा होगा तो फिर हमारा लोअर जो रेंज होगा ना, वो लोअर बाउंड वो 0 हो जाएगा, ये हमारे लिए कोई मायने रखेगा ही नहीं, इसका फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा बच्चों, इसका खेल ही खत्म हो जाएगा अगर n 67 से बड़ा हो गया तो फिर हमारी जो रेंज आ जाएगी ना, अगर n 67 से बड़ा हुआ देन हमारी जो c की रेंज आ जाएगी, c विल बिलोंग्स टू 0 टू दिस 200 - 2n/3। ये वाली बात आपको चमक रही हो तो बताइए बच्चों। C will belongs to this and C is a non-negative integer। तो अगर मान लीजिए C की वैल्यू को 0 होना है तो 0 पता है कब हो पाएगा, अगर C इस रेंज में है तो इसका इस पर्टिकुलर GIF का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो 0 पता है कब आएगा, अगर इसकी वैल्यू 0 चाहिए यूनिक, क्योंकि हमें यूनिक इंटीजर चाहिए ना C, अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू की इससे अगर हमें वैल्यू 0 चाहिए, क्योंकि 0 पॉसिबल आ सकती है, तो उस केस में जो 200 - 2n/3 है 1 से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 1 नॉट इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, इस पर्टिकुलर रेंज का GIF का वैल्यू 0 होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में फॉर ए यूनिक C दिस 200 - 2n/3 दिस शुड बी लेस देन 1 से स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए, 1 के बराबर भी नहीं हो सकता है बच्चों। जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो तो यू विल गेट n 200 - 3 which is 97 greater than 2n, so you will get n is greater than 98.5, so you get n as 99 और 100। n की दो वैल्यूज बच्चों यहां से आती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यूनिक ऑर्डर ट्रिपलेट चाहिए तो C की यूनिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपने मान लीजिए आप बोलते हो कि सर 67 से बड़ी ले लेना वैल्यू, क्या दिक्कत है, आप मान लीजिए 67 से बड़ी मैंने यहाँ पे n की वैल्यू एक बार के लिए 70 ले ली, तो 70 जब आप यहां डाल रहे हो n का वैल्यू, तो 200 - 140 60/3 is 20, तो C का रेंज कितना बड़ा हो गया, C का वैल्यू 0 से 20 तक आ सकता है। यूनिक ऑर्डर ट्रिपलेट कहां आया, C की वैल्यू कितनी सारी हो गई उस पर्टिकुलर n पे। हम चाहते हैं कि फॉर एनी पर्टिकुलर n we have to find all positive integers n for which there exists a unique order triplet of non-negative integers ABC such that these two equations are true। तो इसका मतलब है इस चीज को, इसका मतलब है कि this thing has to be 1, then only you will get a unique value of C that is 0। okay, so n has to be 99 or 100। now you can verify also at n equals to 99 also you will get a unique triplet of ABC, and n equals to 100 also you will get a unique triplet of ABC। so for n greater than or equals to 67 we are done here, n की दो वैल्यूज मिल गई। now let's come to the lower bound। अब छोटे वाले बाउंड पे आते हैं। हमको n को 40 से बड़ा रखना था, हमने यहाँ पे निकाला है कि n की वैल्यू 40 से बड़ी है, 100 से छोटी है। अब अपन 40 से बड़ी वैल्यू पे ट्रायल ले लेते हैं कि भाई क्या सीन होता है। अच्छा, 40 से बड़ी वैल्यू पे जो हमारी रेंज आएगी वो वाली रेंज अब ये वाली हो जाएगी, क्योंकि 0 से तो बड़ी रहेगी। जब भी आप 40 से 67 के बीच में लोगे ना, फॉर n लाइंग बिटवीन 40 एंड 67 से बड़े वाले के लिए तो अपन ने प्रूव कर दिया कि देयर इज ओनली वन ट्रिपलेट दैट इज मींस उसमें n का वैल्यू 2 आ जाएगा, 99 और 100, और C की वैल्यू 0 रहेगी। और अगर हम n को इस वाली पर्टिकुलर रेंज में रखते हैं तो हमारा जो रेंज आएगा इस बार वो आएगा ये 200 - 3n/2 से बड़ा और 200 - 2n/3 से छोटा। अब वो 0 वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा जैसे आप n की वैल्यू आप एक बार चेक ही कर लो ना, n की वैल्यू एक बार 66 ले लो तो ये आ जाएगा 198 आएगा ना, तो 198 माइनस हो गया तो कितना बचा, 2/2 1, तो C 1 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या मैं यहां से ये बोल दूं कि मेरा C का जो रेंज होगा वो 200 - 3n/2 से 200 - 2n
बाई 3 रहेगा। बोलो बच्चों ये चमक रहा है क्या? थोड़ा सा भारी पड़ सकता है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया कि ये 2 मार्कर इसलिए क्योंकि आइडिया चमकना थोड़ा सा, मतलब बहुत सारे बच्चा जो प्रैक्टिस करता है, नंबर थ्योरी पढ़ता है, आइडिया चमकता है उसको। तो अगर आइडिया चमक गया तो बस कैलकुलेशन है, आइडिया नहीं चमका तो भाई साहब ये 5 मार्कर है कंप्लीट। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, छोटा मोटा सवाल नहीं है। तो 200 माइनस 3n/2 से 200 माइनस 2n/3। एक बार अपन हिट एंड ट्रायल शुरू करते हैं। चेक फॉर n इक्वल्स टू 40। n का वैल्यू 40 एक बार डाल के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो हमारा जो रिलेशन है ये रहा, n का वैल्यू अपने 40 डाल लेते हैं, है ना। और 2a प्लस 3b प्लस 5c 200 भी मेंटेन हो जाएगा और n का वैल्यू 40 भी अपन डाल के देख लेंगे। तो हमारा जो c है वो किस रेंज में आ रहा है, देखो n का वैल्यू 40 डालते हैं तो c हमारा बिलोंग कर रहा है 4 3 कितना 120, तो ये हो गया 80/2 40, और ये कितना हो जाएगा 80, 200 माइनस 80 इज 120/3 इज 40। तो 40 से 40 यानी कि एक यूनिक सी आ रहा है 40, यूनिक सी आ रहा है बच्चों, देख लो। हटेगा नहीं क्या? ठीक है जो भी है। और उसके बाद अपन चेक करते हैं, फिर आ गया चेक फॉर n इक्वल्स 41। n इक्वल्स 41 पे चेक करो बच्चों इसको, तो c का वैल्यू किसको बिलोंग कर रहा है, देखो 41 इंटू 3 इज व्हाट 123, 200 माइनस 123/2, 200 माइनस 123/2, और 200 माइनस कितना है वो 2n है, तो 82/3। इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करो, यहां से क्या वैल्यू आ रही है, देखो 200 माइनस 123, मतलब बेसिकली पता है कितना हो जाएगा ये 80 से थोड़ा छोटा, तो मान लेते हैं 77/2। कितना होता है 77/2, 3 2 3 या 6 टू 38.5, 38.5 से, और ये भी देख लो एक बार कितना आता है 200 माइनस 80 इज 120, तो 118/3, 3 जा 9 और बचा 2 3 9 जा 27 पॉइंट समथिंग, 39 पॉइंट समथिंग। तो इस केस में c की इंटीग्रल वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 39, c इज इक्वल टू 39, यूनिक वैल्यू आ गया 39। तो इसका मतलब n इक्वल टू 41 भी चल जाएगा, n इक्वल टू 40 भी चल जाएगा। अब अगर आप n का वैल्यू n का वैल्यू 42 लोगे ना तो नहीं चलेगा बच्चों, यूनिक वैल्यू नहीं आएगा। सो 99, 100, 40, 41 ये कुल मिला के 4 वैल्यूज आएंगी। आप एक बार n का वैल्यू 42 चेक कर लेना खुद से, तो जब आप 42 डालोगे तो ये जो रेंज आएगी उसमें c की ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगी, इंटीग्रल वैल्यूज ज्यादा आ जाएंगे। तो फिर इसका मतलब है कि फिर देयर विल बी नो एनी फर्दर सॉल्यूशन। अब बोलो बच्चों ये वाला बाउंसर है पूरा, ये आया किसको चमक गया ये? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड and how many of you have not understood? Just write down, honestly write down Udan and Ben. If there will be more Ben, I will explain it again. Some Udans are there, but some Bens are also there. लोअर बाउंड मिल गया था लेकिन अपर बाउंड नहीं आया था। ओके यशराज का उड़ान है, वेरी नाइस। और भी बहुत सारे बच्चों का उड़ान है। ओके आई न्यू कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बाउंसर जा सकता है बच्चों, बट आई ट्राइड कि बहुत इजी लैंग्वेज में मैं इसको समझा पाऊँ।
ये डाइफेंटाइन इक्वेशन बना करके हम करते, बट मैंने और ज़्यादा केस वर्क करके मैंने इसको एकदम कोशिश करी कि जितना अच्छे से आपको चमक जाए उतना अच्छे से कोशिश करी मैंने चमकाने की। बट लेट मी अगेन टेल यू, थोड़ा सा स्पीड से बताता हूँ। सो बेसिकली वी हैव टू इक्वेशंस, इन दोनों को आपस में सॉल्व किया तो ये कुछ तो रिलेशन आ गया b+3c का वैल्यू, तो यहाँ से मैंने b का वैल्यू c के टर्म्स में निकाला, फिर इसी वैल्यू को मैंने उठा करके एक इक्वेशन में डाल दिया। मैं यहाँ भी डाल सकता था, मैंने यहाँ डाल दिया, वो अपनी चॉइस है। तो मैंने जब इसमें डाला तो मेरे पास a का भी वैल्यू आ गया n और c के टर्म्स में। जब मेरे पास n और c के टर्म्स में वैल्यू आ गया, a का भी और b का भी, क्वेश्चन ने बोला है कि ABC आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि a b c तीनों 0 से बड़े होंगे। मैंने तीनों को 0 से बड़ा कर दिया। c, जब मैंने इसको 0 से बड़ा करा, इस b को 0 से बड़ा करा, तो c का वैल्यू ये आ गया। अभी तक तो देखो बेसिक अरिथमेटिक है। जब मैंने इस a को 0 से बड़ा करा तो c का वैल्यू ये आ गया कि c इससे बड़ा होगा। अब इसके बाद की कहानी में बहुत सारी कहानियां जो है जो थोड़ी सी समझने में मुश्किल हो जाती है। अल्टीमेटली मैंने फाइनली ये निष्कर्ष निकाला कि भाई c के बारे में ये बातें पता चल गई कि c 0 से बड़ा होगा, c इससे छोटा होगा, c इससे बड़ा होगा। तो c में 3 बाउंड लग रहे हैं बच्चों। अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि किस n की वैल्यू पे कौन सा लोअर होगा, कौन सा अपर होगा, और किस n की वैल्यू पे कौन सा लोअर होगा, कौन सा अपर होगा। तो उसको देखने के लिए हमने ये करा कि तो यहां से हमने ये देखा कि अगर n 67 से बड़ा होगा तो उस केस में ये वाली चीज जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि n अगर 67 हुआ तो 201 हो जाएगा। 200 माइनस 201 विल बी नेगेटिव। तो c को तो 0 से बड़ा लेना ही है, तो नेगेटिव वाला हमारे लिए क्या ही फायदा देगा रेंज देने में। तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे पूरी तरीके से, और फिर हमारे लिए जो रेंज हो जाएगी c की वो 0 से 200 माइनस 2n/3 हो जाएगी। अगर n 67 से बड़ा होगा तो c हमारे लिए इस रेंज में लाया करेगा। लेकिन हमको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, यूनिक ऑर्डर ट्रिपलेट चाहिए, तो ये जो रेंज देनी चाहिए अपन को, जो वैल्यू जैसे मैंने यहां पे भी निकाली ना, तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, यूनिक c आना चाहिए। मगर जब मान लो मैंने एक बार n को 67 से बड़ी वैल्यू यहां पे डाली, मान लो 70 डाल दी, तो ये आ जा रहा है कितना आ रहा था 70 पे 72 जा 140, 60/3 20। तो c की रेंज ही बहुत बड़ी आ जा रही थी 0 से 20, मगर क्या उसमें यूनिक वैल्यू ऑफ c मिल पा रही है? 21 वैल्यूज मिल रही है, 0 से लेकर के 20 तक 21 वैल्यू मिल रही है c की। यूनिक ट्रिपलेट थोड़ा मिल रहा है। यूनिक ट्रिपलेट लाने के लिए ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू है ना, दिस थिंग हैज टू बी लेस देन 1 से छोटी हो, ताकि 0 और इस वाली 0.999 तक की वैल्यू के बीच का इंटीजर अगर अपने से पूछा जाए तो अपन 0 उसको क्लेम कर पाए, क्योंकि c का वैल्यू 0 हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो वैल्यू है 0.9999 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसको 1 से छोटा करा बच्चों। जब मैंने इसको 1 से छोटा करा तो मुझे n का रेंज मिलेगा कि n 98.5 से आप बड़ा लोगे ना, जब भी n को 98.5 से बड़ा लोगे तो हर बार c की यूनिक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी आपको, दैट इज 0। क्योंकि उस केस में ये जो ओवरऑल वैल्यू है ना 1 से छोटी आएगी, और उस 98.5 से दो इंटीजर्स बड़ा है, 99 बड़ा है और 100 बड़ा है। अच्छा, ये 100 क्यों लिखा मैंने, ये बाउंड भी मैंने यहाँ पे सिखाया कि एक तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है जो ग्रेटेस्ट वैल्यू 200 माइनस 2n/3 वो भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली मिनिमम क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही है ना। तो जब मैंने इस मैक्सिमम वैल्यू को 0 से बड़ा करा तो n की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 100। दूसरी कि c जो है वो इससे तो बड़ा हो मगर इससे छोटा हो, c की मिनिमम वैल्यू और c की मैक्सिमम वैल्यू, तो जो मिनिमम है वो मैक्सिमम से छोटी होनी पड़ेगी। बहुत बेसिक सा लॉजिक है ना, कि जो मिनिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू से छोटी होनी पड़ेगी। तो इसको जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की रेंज निकाली तो n की वैल्यू आई 40 से बड़ी। तो n 40 से बड़ा होगा, n 100 से छोटा होगा, इसलिए जब 98.5 से बड़ा हुआ तो 100 पे आकर के रुक गया बच्चों। तो 99 और 100 दो ही वैल्यू आएगी। और अब 67 से बड़े के लिए अपन ने n की वैल्यू 67 से 100 तक के लिए ये वाला केस यही खत्म हो गया, और इसका आंसर अपने पास 99 और 100 आ गया। लेकिन अगर अब n को 40 से 66 के बीच में देखना है तो अब हमारा लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू क्या आ जाएगा, 200 माइनस 3/2, 200 माइनस 2n/3, ये हमारा लोअर और ये अपर आएगा बच्चों। क्योंकि अब 0 भी गायब हो गया ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 0 से भी बड़ी आ रही है। आप एक बार n की वैल्यू हाईएस्ट डाल लो, यहाँ पे 66 डाल लो, तो ये c का वैल्यू 1 आ जा रहा है बच्चों। तो फिर जो छोटी है, मतलब 0 और 1 में छोटा, मतलब ज्यादा बड़ा कौन सा होगा ताकि प्रॉपर बाउंड आ पाए,
वो 1 आएगा ना, इसलिए मैंने यहां से यहां तक की अब सी को बाउंड करना शुरू करा, और फिर मैंने एक बार एन का वैल्यू 40 लेकर के देखा तो ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, यूनिक वैल्यू आ गई 40। एन का वैल्यू एक बार मैंने 41 डाला, 41 डाला तो ये 38.5 से 39 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो उसमें भी यूनिक वैल्यू आ गई 39। लेकिन जैसे मैं 42 डालूंगा, आप लोग एक बार चेक करना चाहो तो 42 डाल के देखो, जिसको नहीं चमक रहा है कि सर ये दो ही क्यों आंसर होंगे, 40 और 41 ही, 42 क्यों नहीं होगा। सो 42 डाल के देख लो बच्चों, 42 इंटू 3, जो सी की लोअर वैल्यू आएगी और अपर वैल्यू आएगी, उसमें जो वैल्यूज होंगी सी की वो यूनिक नहीं आएंगी, वो ज्यादा वैल्यू आ जाएंगी, ज्यादा इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएंगी, और हमें ज्यादा इंटीजर सी के वैल्यू के चाहिए नहीं, हमें तो यूनिक सी चाहिए। अब बोलो बच्चों, अब किस किस को चमक गया? अगर चमक गया तो फटाफट से एक प्यारा सा उड़ान लिख के बता दो बच्चों, पूरी ताकत से उड़ान लिख के बता दो अगर आपको चमक गया। अब कमॉन 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 गाइस, फैंटास्टिक, सो मेनी उड़ान्स। 197 होगा, नोट 97। हाँ हाँ ये ठीक है यार। अब उड़ान आ गया बच्चों, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही क्लासिक सवाल था, बट वो 2 मार्कर में आपको लगा कि फर्जी सा होगा, छोटा सा, बट क्लासिक सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो सवाल है थोड़े से इजी वाले हैं, अब हो जाएंगे फटाफट से, अभी थोड़ा अपने को टाइम लग गया। ये इधर कैसे आएगा? इधर कैसे ला सकते हैं इसको? आ गया क्या? आ गया ठीक है बहुत बढ़िया। सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ द वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 100। तो ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, पॉजिटिव डिविजर्स निकालने। तो किसी एक को x मान लो, मान लेते हैं कि 3 की पावर 2024 कुछ तो x है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3x, फिर 3x प्लस 9x, फिर 9x प्लस 27x, फिर 27x प्लस 81x। कैलकुलेशन करनी है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं बच्चों, ये तो हो जाएगा। तो x कॉमन 1 प्लस 3 4, फिर x कॉमन 3 प्लस 9 12, फिर एक और x कॉमन तो x क्यूब हो गया, और 9 प्लस 27 कितना होता है 36, और एक और x कॉमन, तो कुल मिला के x 4 बार कॉमन आ गया, और 81 प्लस 27 कितना होता है? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं बच्चों। x की पावर 4 पता है कितना बन जाएगा? x आपने इसको लिया है 3 की पावर 2024 को, तो 3 की पावर 2024 का 8096, और 4 होता है 2 स्क्वायर, 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, 36 क्या होता है बच्चों 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और 108 क्या होता है पता है क्या किसी को? 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, आई थिंक 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो देखो 3 की पावर्स क्या हो जाएंगी, ये 3 4 5 6, तो 6 और जोड़ोगे इसमें तो ये बन जाएगा 3 की पावर 8096 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 8102। देख लेना सही है ना, 8102। और 2 की पावर्स कितनी हो जाएंगी? 2 की पावर 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 2 की पावर 8। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए कुल मिला के, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या फॉर्मूला होता है? 8102 प्लस 1 8103 इंटू 8 प्लस 1 9, और इसका भी आपको क्या चाहिए? मॉड 100। तो 8103, तो 3 का रिमाइंडर दे देगा, 3 9 27 हो जाएगा, तो 27 इसका 100 हो जाएगा, 27 इसका आंसर हो जाएगा।
गॉट इट एवरीवन? चमक गया सबको? नेक्स्ट, इट इज अ फैक्ट दैट 3/17 इज 0.1764, ये वो फलाना ढिमकाना। तो इसमें देखो इस टाइप की क्वेश्चन में हमको ये देखना होता है कि पैटर्न कहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ है। तो 17, अब देखो वापिस से 17 17 17 17 कहीं दिख जाए, ये देखो दिख गया 17 176 176। तो साइक्लिसिटी देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो साइक्लिसिटी कितनी है बच्चों? 16 की। हर 16 के बाद रिपीटिशन हो रहा है। तो क्वेश्चन आप पढ़ो एक बार ध्यान से कि 3/17 ये दे रखा है, क्रिएट ए न्यू रियल नंबर बाय राइटिंग ए डेसिमल पॉइंट, देन यूज द 3 की पावर k minus 1th digit past the decimal of 3/17 as the kth digit past the decimal of the new number. Let the value of this new real number written as a fraction lowest terms be m by n, find n by n, n minus m. तो आपको बेसिकली पता है क्या करना है बच्चों, आपको 3 की पावर, मान लीजिए क्या कह रहा है वो, 3 की पावर k minus 1th डिजिट निकालना है। मान लो अगर k को आप 1 ले लेते हो तो इसका अगर फर्स्ट डिजिट है तो वो 3 की पावर 0 वाला डिजिट हो जाएगा, है ना। तो 3 की पावर 0th डिजिट क्या हो जाएगा 1, देन 3 की पावर 1th डिजिट, 3 की पावर 2th डिजिट, 3 की पावर 3th डिजिट, 3 की पावर 4th डिजिट। ये सारे डिजिट आपको निकालने हैं इसमें से, मतलब फर्स्ट डिजिट, देन थर्ड डिजिट, देन 9th डिजिट, देन 27th डिजिट, देन 81st डिजिट। तो जो नया नंबर बन रहा है, मान लेते हैं कि वो जो नया नंबर बन रहा है वो कुछ तो n है, तो वो कह रहा है कि डेसिमल के बाद उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो इसी सीक्वेंस का फर्स्ट डिजिट होगा, तो वो 1 हो गया। फिर जो सेकंड डिजिट होगा वो इस सीक्वेंस का थर्ड डिजिट होगा। इस सीक्वेंस का थर्ड डिजिट क्या है 6। जो थर्ड डिजिट होगा, इस नए नंबर का जो थर्ड डिजिट होगा वो पुराने सीक्वेंस का 9th डिजिट होगा। तो 9th डिजिट देख लो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 8 है। फिर जो इसका 4th डिजिट होगा वो पुराने सीक्वेंस का 27th डिजिट होगा। तो पुराने सीक्वेंस का 27th डिजिट, अब अपन बार बार 27 तक की काउंटिंग तो करें नहीं, हमको ये तो पता चल गया ना 16 डिजिट के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो 16 के बाद अब जो 17वां डिजिट होगा वो वापिस से 1 होगा, 18वां डिजिट जो होगा वो वापिस से 7 होगा। तो 27वां डिजिट क्या होगा, 16 मतलब 27 माइनस 16 11th डिजिट होगा। तो इसका 11th डिजिट कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1683। अब जो इसका 5वां डिजिट होगा बच्चों वो 81st डिजिट होगा। और 81st डिजिट का मतलब है कि आप जब उसके 16 की साइक्लिसिटी पे चेक करोगे तो 81 कौन से नंबर पे आता है बच्चों, फर्स्ट नंबर पे आता है ना, क्योंकि 80 तक तो पूरा डिविजिबल हो गया, 16 5 जा 80 हो गया। तो 81st डिजिट मींस फर्स्ट डिजिट ऑफ द प्रीवियस नंबर। तो वापिस से बताए 1683 के बाद जो 81st डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट ही है 1। अब ये देखो इसकी भी साइकिल रिपीट हो जाएगी। अगर उसकी साइकिल 16 की थी तो इसकी साइकिल 4 की आ रही है बच्चों। ये बन रहा 1683 1683 एन 1683 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ रहा है नंबर। तो बेसिकली हमारा जो एन है वो 0.1683 बार है। जो हमसे पूछा गया है ना हमारा क्वेश्चन, एन उसका वैल्यू 0.1683 बार है। तो ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था इसलिए 2 मार्कर में रखा गया है। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन। मान लेते हैं कि लेट वो करते ना, याद है अपन, मतलब एन जो है 0.1683 बार, तो दिस विल बी 1683.1683 बार, राइट। अब इसमें से इसको उड़ा दो, इसमें से इसको घटा दोगे तो यू विल गेट 9999 एन इज 1683. So your finally n will be 1683 by 9999. इसकी वैल्यू देख लेना, कुछ तो कट कुटा के आ जाएगी। वो कह रहा है कि when it is written in the fraction form और in the lowest form, इसकी lowest form में वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 17/101 आ जाएगी, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो देख लेना
और उसने कुछ तो n माइनस एम पूछा है, तो 101 माइनस 17, ये देख लेना क्या आंसर आएगा इसका। आई थिंक ये क्लियर हो गया बच्चों सभी को, राइट? इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन बच्चों? इज दिस अंडरस्टूड? जस्ट राइट डाउन उड़ान, दिस इज सिंपल, राइट? नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करिए तेजी से। इसका डिफरेंस कितना होता है? 84, आंसर 84 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ ऑल पेयर्स पी क्यू ऑफ ट्विन प्राइम सच दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ व्हाट विल से डायफेंटाइन इक्वेशन। सो ट्विन प्राइम का मतलब चमक रहा है क्या आपको? ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है? ट्विन प्राइम मतलब वो जिसमें दो का डिफरेंस होता हो, जैसे 3, 5, 5, 7 लाइक दिस, 11, 13, ऐसे जितने भी प्राइम होते हैं ना वो ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। तो हमको ये पता है कि भाई ट्विन प्राइम से तो कितना ही डिफरेंस हो सकता है उनका, दो का डिफरेंस होगा। तो एक बार के लिए अपन केस ले लेते हैं कि लेट q माइनस पी जो है वो 2 है, तो q जो है वो p प्लस 2 ले लेते हैं। भाई p और q दोनों ट्विन प्राइम्स है ना, तो दोनों का डिफरेंस 2 का होगा, या तो p माइनस क्यू 2 होगा, या तो p माइनस क्यू 2 होगा, या फिर q माइनस पी 2 होगा। इन दोनों के अलावा और कोई केस होगा नहीं। तो अब ये क्वेश्चन इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए q की जगह p प्लस 2 रख दोगे तो 2p प्लस p 3p प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू p क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ p प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 2018। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा खोल लेते हैं इसको। सो 27p क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू b, तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 9p स्क्वायर, तो 27p स्क्वायर लिख दूं मैं इसको। प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 इक्वल्स टू p क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ p क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3p स्क्वायर इंटू 2 6p स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3p इंटू 4 12p प्लस 2018। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 देखिए क्या बन रहा है, 27p क्यूब प्लस 27p स्क्वायर प्लस 12 और 8 कितना हो गया 20, इस 3p क्यूब प्लस 6 2 जा 12p स्क्वायर प्लस 12 2 जा 24p और 8 2 जा 16, सो 2018 प्लस 16 2034। ठीक है, 2034 और ये 20 भी उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बाकी सबको इधर ले आओ। तो 27 माइनस 3 इज 24p क्यूब, 27p स्क्वायर माइनस 12p स्क्वायर इज व्हाट 15p स्क्वायर, एंड माइनस 24p is equals to 2034 minus 20 is what 2014। ये हमारी इक्वेशन है बच्चों। अगर आप LHS को देख रहे हो तो LHS जो है जस्ट राइट डाउन की, जस्ट ऑब्जर्व कि LHS is 0 mod 3 but RHS is not 0 mod 3, so in this case there is no solution, right? क्या 27p स्क्वायर नहीं 54 होना चाहिए? किधर, एक सेकेंड, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 हाँ 54 होना चाहिए, यस। तो 54 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 54 और उधर है 12, तो 54 माइनस 12 कितना होता है? 54 माइनस 12 कितना होगा बच्चों? 42। But again the logic remains the same because this is also divisible by 3, this is divisible by 3, this is divisible by 3, so LHS is 0 mod 3 and RHS is not 0 mod 3, so there will be no solution in this case.
if you are taking the case when q is equals to p plus 2. Now in the next case we will take p equals to q plus 2. So the next case will be p equals q plus 2. अब वापिस से सेम तामझाम करना है बच्चों और p की जगह q plus 2 डाल देना है अपन को. तो आई थिंक ये आप लोग कर लेंगे. सॉल्व इट एज प्रीवियस वे. तो आप पूरे इक्वेशन में p की जगह पे q plus 2 डाल दोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा. कि सोल्यूशन क्या आ रहा है इसका 3,5 आ जाएगा. आई थिंक 5,3 आ जाएगा. 5,3 विल बी द सॉल्यूशन. देख लेना बच्चों, p की जगह 5 q की जगह 3 डालोगे, सेटिस्फाई कर जाएगा. ट्विन प्राइम निकालना है, मतलब अब कैलकुलेशन वाला पार्ट जैसे मैंने यहां दिखाया, यहां तो वैसे नो सॉल्यूशन आ गया, बट अगले पार्ट में सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगी. सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है ना, 2 वेरिएबल होता तो टेंशन थी, तो सिंगल वेरिएबल है तो मैनेजेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिट्टू बढ़िया है, सिट्टू मजे में. नेक्स्ट क्वेश्चन 19. फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 315 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इवनली डिवाइड्स 315 क्यूब माइनस n क्यूब. ये डिविजिबिलिटी वाले प्रॉब्लम्स नंबर. देखिए बच्चों, मैं आपको एक बार बता दूं बहुत केयरफुली, अगर आप लोग PYQs देखते हो, अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑब्जर्व करें पिछले 5-6 सालों के देख लेना, तो नंबर 3 का वेटेज इवन ज्योमेट्री से ज्यादा है, अलजेब्रा से ज्यादा है, कॉम्बी से ज्यादा है. नंबर 3 का वेटेज सबसे पीक पे रहता है. सबसे ज्यादा सवाल नंबर 3 का ही पूछा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे मतलब नंबर 3 के 10-12 सवाल आ जाते हैं. बाकी 20 सवालों में बाकी के 3 टॉपिक बढ़ जाते हैं. मतलब ऐसा है कि 6 तीनों से आगे, या किसी से 2 से 6 और 1 से 7 आ गया तो 10 सवाल नंबर 3 का है. तो नंबर 3 मतलब किंग है ओलंपियाड का. तो ये आपका जबरदस्त होना चाहिए. इसीलिए बच्चों बहुत ताकत लगाओ, बहुत मेहनत करो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो. जो मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इनके 60 सवालों के जवाब याद कराने नहीं आए, 60 आइडियाज देने आए हैं. हर एक बैच, हर एक जो क्लास हम मैराथन की ले रहे हैं, एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है कि 60 आइडियाज आपको दे करके जाएं जो आपको IOQM में अल्टीमेटली हेल्प करे बच्चों. तो आइडियाज उठाओ, जो हम लोग यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं. हम लोग भी आपके सामने फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहे हैं, हम लोगों ने कोई करे हुए सवाल नहीं है, तो पता नहीं कौन सी टीम बना करके और ये PDF बनाती है और हम यहाँ आकर के लाइव सॉल्व करते हैं इनको. तो हम भी देख रहे हैं कि भाई क्या सवाल है, कौन है, क्या करना है, बट आपको हमको देख करके ये देखना है कि यार ये बंदा कैसे सोच पा रहा है इस बात को. ये सर का थॉट प्रोसेस इस एंगल से गया ही क्यों, सर ने ऐसा ही क्यों फर्स्ट स्टेप उठाया, पहला स्टेप ही सर ने ऐसा क्यों करा, दिमाग में क्या चल रहा था सर के. तो वही हम चाहते हैं कि वो जो हमारी सोच है वो हम आपको इम्पार्ट कर पाए. उसी मोटिव से हम लोग लेकर के आए हैं. बहुत ध्यान से पढ़ते रहो बच्चों, 3-4 दिन की बात है, थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी. लगातार 6 घंटे की हमने आपको 6 घंटे की मैराथन बोली थी, बट पिछले 2 एक्सपीरियंसेस आपको पता ही 8-8 घंटे के रहे हैं. और इस बार भी मुझे लगता है 8 घंटा 9 घंटा कुछ भी हो सकता है. और ज्योमेट्री में तो पता नहीं कितना ही होगा. बट नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा भी ना लगे, जल्दी वाइंड अप करेंगे. बट नंबर 3 है बच्चों, मतलब नंबर 3 में पूरी ताकत झोंको, बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझो, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 315 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इवनली डिवाइड्स 315 क्यूब माइनस n क्यूब. सो 315 क्यूब माइनस n क्यूब अपॉन 315 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. ये थोड़ा सा ठीक ठाक इजी सा सवाल है. a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा तो ये तो गायब हो गया बच्चों. अगर आप यहां से देखो, इन दोनों में से n को कॉमन ले लोगे तो n इंटू n प्लस 315 बनेगा. n इंटू n प्लस 315 प्लस 315 स्क्वायर अपॉन n प्लस 315 अपॉन n प्लस 315. तो ये भी कट गया. तो कुल मिला के ये जो एक्सप्रेशन है, मान लो ये एक्सप्रेशन कैपिटल N है, सो दिस कैपिटल N reduces टू n स्मॉल n प्लस 315 स्क्वायर अपॉन n प्लस 315. सो अगर कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, फॉर द कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन दिस n प्लस 315 शुड
इवनली डिवाइड 315 स्क्वायर, मतलब n प्लस 315, एक तो n प्लस 315 जो है मतलब n की वैल्यू निकालनी है तो 315 स्क्वायर के फैक्टर्स निकाल लो जो कि n प्लस 315 से बड़ा है। तो सबसे, और आपको पता है क्या पूछा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, तो 315 स्क्वायर का सबसे छोटा ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि n प्लस 315 से तो बड़ा हो, तो वहां से यू विल गेट दिस वैल्यू। आई थिंक नाउ दिस इज वेरी इजी फॉर यू, ये हो जाएगा। 315 के फैक्टराइज, जस्ट फैक्टराइज 315 एंड यू विल गेट द सोल्यूशन, राइट। इसको भी तेजी से नोट डाउन कर लें, इसका आंसर निकाल लें। मैं 10 सेकेंड का टाइम दे देता हूं आंसर निकालने के लिए, फटाफट से। इवनली डिवाइड क्या होता है? इवनली डिवाइड का मतलब होता है पूरी तरह से इंटीग्रल वैल्यू आ जाए जब वो डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल अगर आप 14 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, वैल्यू 2 आ गई, लेकिन 14 को 8 से डिवाइड करो तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। सो दिस इज बेसिकली व्हाट 3 की पावर 4, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो कोई एक रैंडम सा कॉम्बिनेशन बना लो जो कि n प्लस 315 से बड़ा हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने 3 की पावर 4 81 ले लिया और यहाँ से मैंने एक बार के लिए 5 उठा लिया, तो कितना आएगा ये? 5 8 5 जा 40, 405, और n प्लस 315 से बड़ा है। अभी मुझे नहीं पता कि इससे जस्ट बड़ा यही वाला है क्या, मतलब इससे छोटा भी कोई और आ सकता हो तो वो तुम लोग देख लेना। आई थिंक तो इससे छोटा तो क्या ही आएगा, क्योंकि 3 की पावर 4 को 5 से किया है मैंने। अगर मैं 5 स्क्वायर को 3 क्यूब से कर दूं तो 25 इंटू 8 नहीं, वो तो और बड़ा हो जाएगा ना। जैसे मान लो मैं यहाँ से 27 ले लूँ 3 क्यूब और यहाँ से 25 ले लूँ तो ये तो बड़ा आ जाएगा, 25 इंटू 25 ही 600 से ज़्यादा आ जाएगा, तो ये तो बेकार आइडिया है। और अगर मैं 25 को 3 स्क्वायर से करूँ तो ये तो इसे n प्लस 315 से छोटा आ जाएगा। तो आई थिंक 405 ही आएगा। तो आप n का वैल्यू आपका 405 माइनस 315 यानी कि 90। चमक गया होगा मुझे लगता है बच्चों, है ना। प्रीवियस का आंसर 1 है लेकिन आंसर की में 2 दिया हुआ है, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, ओनली 1 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। आंसर 0 1 कर लेना बच्चों अगर आंसर की में 2 है तो प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्कर प्रारंभ सीरीज। सपोज a b c d आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी। देखो बेसिकली क्या है कि उसने बोला है कि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। अगर आप मान लो कि ये कुछ तो x है और ये कुछ तो y है, तो ये कह रहा है कि एक्स वाई स्क्वायर जो है वो 2023 है और x और y दोनों इंटीजर है। So x into y square is 2023 and x and y both are integers. So what are the possibilities? Means एक तो नॉर्मल नंबर हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ऐसा पॉसिबिलिटी कैसा आएगा बच्चों? एक तो ये आ सकता है कि एक तो ये आ सकता है कि मतलब 2023 के फैक्टराइजेशन कर लो, तो एक तो आ सकता है कि 2023 इंटू 1 स्क्वायर, या फिर एक आ सकता है कि 7 इंटू 17 स्क्वायर। देखो यही होगा। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को ये वाला केस ले लेता हूं, मतलब ये वाला केस ले लेता हूं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो 2023 है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं बच्चों क्वेश्चन में, और इनके स्क्वायर्स का सम a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ये 1 है। तो यहां से कोई सॉल्यूशन आएगा? नो सॉल्यूशन। यहां से कोई संभावना नहीं है बच्चों सॉल्यूशन आने की। तो दूसरा केस ही बचता है फिर अपने पास। तो दूसरा केस क्या है? ये वाला कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो ले लो 7, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये ले लो 17। अगर आप इस केस को देखते हो तो यहाँ पे भी आप किसी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लेते हैं कि लेट विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी a लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, ऐसा एक अजम्पशन कर लेते हैं।
तो पता है आप d को बाउंड कर सकते हो, जो हाईएस्ट वैल्यू है d वो 4 से बड़ी हो नहीं सकती है। अगर d वैल्यू 5 हो गया तो 5 का स्क्वायर तो 17 से बड़ा हो जाएगा। सो d का वैल्यू 4 तक मैक्सिमम हो सकता है। और लोअर बाउंड भी कर सकते हो, पता है बच्चों आप, अगर d का वैल्यू मान लीजिए आपने 2 कर दिया, अगर आपने जो हाईएस्ट वैल्यू है ना एबीसीडी की उनमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू को मान लीजिए 2 कर दिया, तो बाकी वैल्यूज तो उससे छोटी ही रखनी है। तो अगर आपने मान लीजिए if d is 2 तो आपके पास जो a b c ये तीनों है वो 2 से छोटे या बराबर होने पड़ेंगे। तो अगर वर्स्ट केस में मान लीजिए अगर तीनों बराबर भी ले लेते हैं, अगर a b c d ये सब 2 ले लेते हैं, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये 16 होता है, जो कि कभी 17 नहीं बन पाएगा। राइट, हमको 17 बनाना है तो कभी 17 नहीं बन पाएगा। तो यानी कि यहां पे भी लफड़ा है। तो अपन इसका मतलब है कि d का वैल्यू 3 या 4 ही ले सकते हैं। आइडियाज लेकर के जाओ बच्चों, आइडियाज लो, दिमाग कैसे चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस क्या है, वो समझिए और उसको पेन डाउन करिए, लिखिए अपनी अपनी कॉपियों में कि यार सर ने ऐसे सोचा है इस क्वेश्चन में, सर ने ऐसी इक्वेशन देख के बाउंड करा बड़े वैल्यू को, एक तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अजम्पशन किया, फिर हाईएस्ट वैल्यू को बाउंड किया। और अपने पास कभी ऐसा सवाल आ जाए तो अपने को भी ऐसा करना है, अपने आप को ये बात लिखो, समझाओ, याद दिलाओ कि ऐसे ऐसे दिमाग दौड़ाना है एग्जाम के दिन, ये चीजें काम आएंगी एग्जाम में, ये सवाल नहीं आएगा, ऐसा ही कुछ सवाल आएगा और उसमें आपको ये लॉजिक वापस अप्लाई करना होगा जो अपन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली अपन ने डी को 4 और 3 कर दिया। मान लीजिए अगर एक केस ये ले लें कि डी जो है वो 4 हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 17 माइनस, तो यहां से भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा बच्चों। यहां से कोई सोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है क्या? मतलब आप ऐसे देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 क्या आ सकता है यहां से, इससे 0 0 और 1 ये वैल्यूज आ सकती है, लेकिन आप इसका कोई भी परम्यूटेशन बनाओ कभी भी सम 3 नहीं बन पाएगा। तो दिस केस विल बी रिजेक्टेड, this case will be rejected. Now the next case is d equals to 3. When you take d equals to 3, you will get a plus b plus c as 4, and a square plus b square plus c square is क्या लिया था 3, तो 17 minus 9 is what? सही चल रहा है ना, देख लेना बच्चों, सही चल रहा है आई थिंक, है ना। तो ये 8 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 8 है और a प्लस बी प्लस सी 4 है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 8 कैसे आ सकता है कि कोई एक 0 हो जाए, कोई एक 2 हो जाए, कोई एक 2 हो जाए, 0 2 2 की कॉम्बिनेशन, और वो इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। देखो 0 प्लस 2 प्लस 2 4 भी हो रहा है, 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 8 भी हो रहा है, तो बन गया। मतलब इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। 3 नंबरों के परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 8 आ जाए, तीनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, और तीनों नंबर्स के का सम 4 आ जाए, तो 0 2 2 बन रहा है। अब आप देख लेना इसमें जो भी पूछा है, फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस d क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस d क्यूब आपका d आपका 20 और d क्यूब आपका 27 हो जाएगा। तो 8 प्लस 27 कितना होता है बच्चों ये? 43। आई थिंक दिस इज चमक गया सबको। गॉट इट एवरीवन? सो बच्चों लेट्स टेक ए स्मॉल ब्रेक। राइट नाउ व्हाट इज द टाइम? इट्स 4:40 आई थिंक, राइट? 4:40 है, तो विल हैव ए ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, देन विल अगेन मीट एट 4:55। सो दिस आर योर ब्रेक क्वेश्चन। अगर आप लोग थोड़े से कंफर्टेबल हैं, थके हुए नहीं हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अदरवाइज इफ यू फील कि आर टायर्ड, जस्ट टेक ए पावर नैप ऑफ 5-10 मिनट्स, बट प्लीज स्क्रीन से दूर रहिएगा। डोंट मतलब ये चैट बॉक्स पे बैठ करके कुछ भी लिखना और ऐसा कुछ करना, उससे बेहतर है कि 10 मिनट का एक बढ़िया सा नैप लो, आईज क्लोज करके, स्क्रीन से दूर, मोबाइल से दूर, आईपैड से दूर, लैपटॉप से दूर बैठ जाओ या लेट जाओ थोड़ा सा। उसके बाद वापस से पूरी ऊर्जा एकत्रित करके दोबारा से पूरी ताकत से अपन को लग जाना है बच्चों। So these are 2 marker. Now we'll start with the 3 marker. After the 15 minutes break, the class will resume at 4:56. Okay बच्चों, see you soon.
Good evening everyone. We'll continue with the post-break questions. Starting with question 21. I hope all of you are able to hear me. Question 21 में it is very important to use the property few properties of modular arithmetic. यहाँ पे I won't be dividing this particular value of s. Just a minute. I won't be dividing this particular value of s by 30. Instead, I'll analyze what the value of this could be mod 2, 3 and 5, because 30 can be expressed as 2 times 3 times 5. I'll first figure out कि s को 2 से divide करने पे remainder क्या है. Then when s is divided by 3, what is the remainder? When s is divided by 5, what is the remainder? Using those three pieces of information, I'll piece together the value that s could take. Because eventually we want to find the remainder when s is divided by 30. So first let us analyze s mod 2. One more thing that you need to keep in mind over here is that since this polynomial f of x does not have a constant term, x divides f of x. This is the case. So for these numbers 6, 10 and 15, which themselves are factors of 30, when I'm asking s mod 2, or when I'm asking the remainder when this entire expression is divided by 2, the first two terms are divisible by 2 and hence they will not leave any remainder, or the remainder from them will be 0. So effectively what we'll need to solve is f of 15 the whole square. Now one more thing to note over here. Since modular arithmetic is the same as arithmetic and every odd number is identically equal to every other odd number, mod 2, I can just replace 15 with 1. This becomes f of 1 the whole square, mod 2. I hope this was clear. What I'm using is I'm using this property that f of n is equal to f of m mod k if n is equal to m mod k. See, 1 and 5 are both odd numbers, so they are equal mod 2. Hence, any polynomial when having inputs as 1 or 15 will lead to the same output. So, f square is still a polynomial, whatever be the degree. If this is the case, then I can proceed with it. Now, f of 1 the whole square is the same as writing 1 plus 2 plus 3 dot all the way up till 6. So I need to add up 6 numbers and then take their square, mod 2. What this value is going to be is numbers from 1 to 6, if you add them up, it will be 6 times 7 divided by 2 or 21. Basically, in the end, this will be an odd number, mod 2. So this is the first piece of information, critical, that s is an odd number. Second, s mod 3. S mod 3 requires us to only analyze this particular term, because f of 6 and f of 15 both are divisible by 3, and when they are being raised to any arbitrary power, they will still remain divisible by 3. So f of 10 the whole cube needs to be solved. Now f of 10 is the same as writing f of 1. These numbers are chosen such that all of them are equal to 1, 1, 1 when I am taking modulo 2, 3 or 5. You will notice the same happen with mod 5 also. So for mod 3 over here, I have effectively f of 1 the whole cube, mod 5, sorry, mod 3, my bad. And then f of 1 mod 3 over here is going to be 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 the whole cube. So now keep in mind 3 is 0, 6 is 0 mod 3, 1 plus 2 becomes 0 mod 3, 4 plus 5 is 9, which is 0 mod 3. So the entire sum over here is 0, and this 0 cube also remains 0. This expression is 0 mod 3. So with these two pieces of information, I can say that whatever number I have, if I combine these two, I need a number that is both an odd number and divisible by 3. So such numbers are 3, after that 9, beyond 9 there will be 15 and so on. Numbers that are divisible by 3 and not divisible by 2 are 3, 9, 15 and so on. Effectively we can write all the numbers of the form 6k plus 3 are possible solutions to this
these two simultaneous modulo criteria, mod 2 and mod 3. Now we have one more division to do. Since we want the numbers remainder when we divide by 30, we need to further divide by 5 and check mod 5. So in mod 5, f of 6 is the only candidate value that needs to be checked. So s mod 5 is going to be f of 6 the whole power 5, and this equals f of 1 the whole power 5, and f of 1 is again 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 the whole power 5 now. All of this is happening mod 5, so I'll just write that down to keep track. 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 10, 5 is 0, so all of these become 0 mod 5, 6 remains as 1 mod 5, so 1 to the power 5 is the same as 1 mod 5. So beyond this point, actually we have three results. Our value s is 1 mod 2, 0 mod 3 and 1 mod 5. All I need to do is I need to simultaneously have a particular value mod 30 or remainder from 1 to 30 or 0 to 29, and that satisfies all these three conditions. I already know that combining the first two gives me 3 mod 6, and from the values that are there 3 mod 6 which were respectively 3, 9, 15 and so on, among 3, 9, 15, 15 plus 6 is 21, 21 plus 6 is 27. Among all these values, only 21 is there that leaves the remainder 1 when divided by 5. Hence 21 will be the answer to the question. Of course, you can apply Chinese remainder theorem over here, but for small values like this, you can just list down all the values and get to the answer. Always prioritize getting the answer quicker rather than sticking to a particular method. And 21 is the value for the required value over here. Right. Next question, question 22. See, you can go through the question for a minute. For 10 seconds. Find the smallest positive integer k such that there is exactly one prime number of this form. So if we want kx plus 60 to be a prime number, what we need to do is we need to check all the values of x that are available. See, x could equal any one of x, or x belongs to any one of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. The problem with most of these values are that they are not co-prime with 60. If I want this particular number to be a prime number, it must not be divisible by 2, 3 or 5. Basically, we want a positive integer k and the values of x available to us are non-negative values. So kx plus 60 is always going to be a number that is greater than or equal to 60. Hence, I just need to check if that number is not divisible by 2, 3 or 5. And for lots of values of k, for lots of values of x, for example, x equal to 0, x equal to 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10. Now many of these values, I mean most of them are divisible by 2. Those who are not divisible by 2, they are divisible by either 5 or 3 and so on. So we can just reject all of these values out. The only candidate values of x that remain are 1 and 7. This way we have resolved the complexity of the question by a lot. Also what we need to realize is that the values of k could be a multiple of prime numbers greater than or equal to 7, because see, effectively all numbers are multiples of some prime numbers. K could not be a multiple of 2, 3 or 5. Hence it has to be a multiple of prime numbers greater than or equal to 7. So it could be 7. So possible candidate values of k could be, just a second. Possible candidate values of k could be from here, k equal to 7, then k equal to 9 is possible, 9 is not possible. 9 is not possible because 9 is divisible by 3. K itself should be co-prime with 60.
So it could be 7, it could be 11, we could have 13, we could have 17, we could have 19, and after this 21 is not possible, 23 and so on. See, the first composite number in this list will be 49. Before 49 all the prime numbers will only exist as possible candidates for K. Now keep in mind there are two other possibilities for x equal to 1 and other cases x equal to 7. So for x equal to 1, the number that we want to check is 60 plus k. So the value of 60 plus k would be 67, 71, 73, 77, 79 and 83. So there are lots of prime numbers in this list, surprisingly. 67 is a prime number, 71 is a prime number, 73 is a prime number, 77 is not, 79 is, and 83 is a prime number. For the other situation, when x is equal to 7, 60 plus 7k must be calculated. So for the value k equal to 7, k times 7 is 49, 49 plus 60 is going to be 109. Now this question really requires you to quickly check if a number is prime or not. 109 is a prime number. See, why I can say that is, I need to only check the prime numbers all the way from 2, 3, 5 and 7. For all of them you can easily see that 109 does not satisfy the divisibility test and 109 is a prime number. For k equal to 11, 77 plus 60 is 133. Now this is also a prime number. The question is asking, we want to find the smallest k. So the smallest k will be some number along this list. The value over here 133 and 71 both are prime numbers. We want a k such that exactly one of the numbers of this type, either the top one or the bottom one, must be a prime number. That possibility comes only if a number below for 7, 11 or 13 becomes a composite number, or for 17 it becomes a prime number, or further ahead it becomes a composite number. For 13 you can calculate 7 times 13 is 91 plus 60 151. You need to check all the way up till 11. None of the prime numbers actually divide 151, hence 151 is also a prime number. For 17 times 7 is equal to 70 plus 60 from here and 49. If we add all of this up, we get 179. 179, I will not take a lot of time, 179 is also a prime number, but since the question asks us to find a value of k such that either one of these is a prime number, we can stop our search over here. 17 is the answer, because for k equal to 17, x equal to 7 is the only value of x among 0 to 10 such that the number 179 is prime. Right, let's move on to the next question. Question 23, you can read through this question. Okay, for this particular question, we need to find all the numbers n less than 1000 such that the LCM of n and 9 is a perfect square. See, there are different ways in which I can represent our number n. N could be some number of the form 3 to the power k times some number p where 2 does not divide p. This is a requirement. Now, if n is of this form, then LCM of n and 9 can be written as two possibilities. Either it's going to be 9 times p, and the other possibility is 3 to the power k times p. The first case happens when k is less than or equal to 2. See, if n itself is not divisible by any higher power of 3 beyond 2, then the LCM of these two numbers will require the power of 3 to be determined from 9, the rest of the powers will be determined from n. For the case where k is greater than 2, then we can safely ignore 9 and the number will be, the LCM of these two numbers will be n itself, because 9 is a divisor of n. Now what we want is either one of these expressions to be a perfect square. If 9 times p
equal to a square, where p is not divisible by 2, then this implies that p itself is some b square, where 3 does not divide b. Alright, this is one case. The second case would be 3 to the power k times p is equal to some a square. If this is a perfect square, then we get two conclusions from here. One, 2 divides k, we need k to be an even number, and p over here, and p is equal to b square, where 3 does not divide b. Alright, p must be a perfect square which is not divisible by 3, and or in other words we could call it a 3 free perfect square, and k must be an even number. So we have different possibilities, we have different forms of our particular number n. See, n could be simply some b square, it could have been 3b square, it could have been 9b square. All of these are the cases where the value k is less than or equal to 2. Beyond this, we have the possibility of n being 81b square, because we can't have 27b square, and the final scenario will be 729b square. So for all of these conditions, I need to calculate the total count. Okay, so case 1, n is equal to b square. Now keep in mind, we want only those numbers that are those numbers b that are not divisible by 3. So we need to go all the way up till 1000. If b square is less than 1000, then we have that b is less than or equal to 31, because 31 square is 961, if I am not correct, if I am not incorrect. B is less than or equal to 31, and from here we will get 21 values, because all the numbers that are divisible by 3 will be rejected. Case 2, if we have n is equal to 3b square, over here we will have 3b square less than 1000, or b square less than 333 point something something, and less than equal to this, and from here we get b less than or equal to 18, because 324 is 18 square, and from here we can get 12 solutions, because 6 of them will be divisible by 3. So we'll just keep track of 21 and 12 in the next page. 21 was the solutions of one kind, 12 was the solutions of another kind. Case 2. Case 2 will be where n is of the form 9b square. Now 9b square can be calculated by having the inequality 9b square less than 1000 or b square less than equal to 111, because 111.11111 will be the RHS when we divide by 9. Hence b must be less than or equal to 10. So up till 10 we have 7 solutions. How 7? Because from 10 we will subtract all the numbers that are divisible by 3, 3, 6 and 9. So further to this list I will add the number 7. Next is case number, this will be case 3. Case 4 will be n is of the form 81b square. Now here is where the calculation gets a little bit complicated. Now we already know that 9b square over here must be less than or equal to 111. I am beforehand dividing by 9. Further, when I divide by 3, I get a 37 and I get a 3 over here. And when I further divide by 3, I will get a 1, 2. So basically b square is less than or equal to 12, which means b is less than or equal to 3. Now I can't accept b equal to 3 as a value, so I will have only 2 solutions over here. So I will add that to the list. And final case, case number 5, where n is equal to 729b square, b equal to 1 is the only valid solution. Because if b was 2, then we would exceed the requirement of n being less than 1000. So I'll add a single 1 over here. These 3 numbers will add to 10, these 2 will add to 33. 33 plus 10 is 43. 43 becomes the total count of the numbers that are such that the LCM of n and 9 becomes a perfect square for n less than or equal to 1000. Okay. Next question. See, this question requires you to equate this to a perfect cube.
So what I'm going to do over here is that since the question asks me a largest positive integer n, what I'll do is for n cube, one second, for n cube plus 4n square minus 15n minus 18, what I'll do is I'll try to remove out the expression n cube plus 3n square plus 3n plus 1. Why exactly am I doing this? I'm doing this because n plus 1 the whole cube for very very large values of n will be the perfect cube that is just below whatever this expression is for very very large n, because eventually 4n square will overshadow the minus 15n and minus 18 that are over here. So I am operating in the limit where n is very very large. So out of this expression, if I remove n cube plus 3n square plus 3n plus 1, what I am left with is a plus n square, a minus 18n, and from minus 18 if I remove 1, I am left with minus 19. So basically what I am trying to do over here is that I have taken this expression out of this one. So effectively what I am left with is n plus 1 the whole cube plus n square minus 18n minus 19. If I factorize out this expression, what I'll get is n plus 1 the whole cube plus n minus 19 times n plus 1. You can see that very easily you can factorize out this one. Now a possible value of n that makes this a perfect cube is, if I write this equal to m cube, all I need to do is get rid of this term, and the value n equal to minus 1 and n equal to 19 both satisfy this quadratic to become 0. So n equal to 19 is a candidate solution so far. What happens next is that for n plus 1 the whole cube and this number, every value for which n is greater than 19, for n greater than 19, let's just call this expression some capital A. Capital A is equal to n plus 1 the whole cube plus some f of n, where this f of n is basically this term. F of n is greater than 0. If we have any number n greater than 19, then how much ever this number capital A exceeds n plus 1's cube will be by a positive quantity, and we'll also have that n plus 2 the whole cube minus capital A to be evaluated as follows: n cube plus 2 times 3, so 6n square plus 12n plus 8 minus n cube minus 4n square minus plus 15n plus 18. If you evaluate this, you get 2n square plus 27n plus 26. Now very clearly you can see that for all values of n greater than 19, this particular expression is also a positive number. So what I have effectively shown is that the expression in question is less than n plus 2 the whole cube and is also greater than n plus 1 the whole cube. So I have sandwiched it between two perfect cubes, hence it cannot become a perfect cube. So this is the case for all values of n greater than 19. Since I already know that n equal to 19 is a value for which this becomes a perfect cube, that is the largest value for which it's a perfect cube. So 19 is the answer. Right. Next question. Now this question requires you to utilize a identity or a way to express the GCD of numbers of the form a to the power x minus 1 and a to the power y minus 1. Just for here, consider x greater than y belong to the set of integers, positive integers, so that these two are integer values, comma a also belongs to the set of positive integers. For now, if these two are positive integers, then their difference must also be a positive integer, because I want to keep strictly x greater than y. In fact, I will keep x greater than equal to y, so that I am taking the condition where both of them are equal also. So the difference of these two terms, notice
from here, the difference of these two terms can be expressed as the difference of these two terms can be expressed as a to the power x minus a to the power y. Notice the minus 1 and minus 1 will get cut off. From here, I can notice that a to the power y could be taken common, because see, x is greater than equal to y. That means a to the power y exists as a factor of a to the power x, and this becomes a to the power x minus y minus 1. Now here is where you will have to pay very close attention. In this term, a to the power y is co-prime to both of these expressions, because see, a to the power y divides a to the power y and a to the power y divides a to the power x. A number that is 1 less than a multiple of a to the power y will be co-prime to a to the power y. Hence, what I can say is that the GCD between these two, GCD between a to the power x minus 1 and a to the power y minus 1 will be the same as, since a to the power y minus 1 is smaller among these, it will be the same as GCD of a to the power x minus 1 comma a to the power x minus y minus 1. What I have basically done is, for the sake of GCD, there is one expression, there is one identity. GCD of a comma b is equal to GCD of a comma a minus b. This eventually leads to Euclid's division lemma, giving us equal to GCD of b comma r, where a is equal to bq plus r. Basically, when we are asked the GCD between two numbers, I can replace that statement with this statement. GCD of a and b is the same as the GCD between the smaller number and the remainder that we get when we apply Euclid's division lemma on a and b. So if this is true for in general two numbers, we realize that we have found a similar expression where the same idea is being used between x and y and x minus y. If I do repeated subtraction, eventually this term will start looking like a to the power x minus 1 comma a to the power x minus qy minus 1. This bracket implies GCD. So if I keep removing all the parts out of parts of y out of x, I can replace this with a remainder. This remainder is effectively the remainder when I divide x with y. This way, those two remainders could be used continuously to figure out a final result, which will be that GCD of a to the power x minus 1 comma a to the power y minus 1 is the same as writing a to the power GCD of x comma y minus 1. Effectively what I am saying is, you just need to worry about x and y. Whatever will be their GCD, if you put that on the exponent of a and then subtract with 1, this expression will be the GCD of both these expressions. Now over here the power itself is of the form a to the power x minus 1. So what we have to effectively solve for is the GCD of 2 to the power 100 minus 1 and 2 to the power 105 minus 1. Now this can be solved if we know the GCD of GCD of 100 and 105, because these are there in the powers of these two expressions. This is equal to 5, hence the value of the GCD of these two terms is going to be 2 to the power 5 minus 1. This is really important, and this is equal to the value 31. So we can go back and we can say that the GCD between these two numbers is going to be the GCD of the exponents. GCD of the exponents is 31, hence the final answer is going to be 2 to the power 31 minus 1. Hopefully this was clear. For any expressions of this form, a to the power x minus 1 and a to the power y minus 1, their GCD can be iteratively shown to be equal to the value a to the power GCD of the exponents minus 1, which is what I used again and again to figure out
that the final GCD should be 2 to the power 31 minus 1. Now how to calculate this and find last two digits? Over here 2 to the power 31 is the same as writing 2 to the power 10 the whole cube times 2 minus 1. So 2 to the power 10 can be replaced with 1024 the whole cube times 2 minus 1. Now beyond this, all of the calculation is happening mod 100. So I will not keep writing mod 100 again and again. 24 is what will remain out of 1024. So 24 square times 24 times 2 minus 1. 24 square is 576. Okay, you should know all the perfect squares all the way up till 30. That will help you out in calculation. 576 times 24 times 2 minus 1. 576 itself is minus 24. Minus 24 times 24 times 2 minus 1 is the same as writing minus 24 and 24 give us minus 576, which when converted back into positive numbers becomes again 24, and we are left with a 2. So 24 times 2 is 48. So we get 48 minus 1, which is 47. There are many other ways you can simplify this out, but I'll just stick to this one. 47 comes out to be the final answer. Okay, the main idea that has been used over here is that this identity is available. You don't need to derive it every time you are solving a question during the exam. You can just remember this and it helps out a lot. Okay, next question, 26th question. Now this is a really simple question, but there is very good chance that you make an error over here. So you need to go through this question very, very carefully. First, A10 is available to us. The knowledge of A1, A2, A3 is not given to us, and it's fine. A series can start all the way from A10 itself. A10 is 10, A11 is such that every next number is the previous result times 100 plus n. So effectively what is happening is I am putting two zeros at the end of A10 and then adding 11 to it. So the A11 number becomes A1011, A12 becomes 101112, and A13 becomes 10111213, and so on. This is a weird kind of expression that keeps going on like this. We want a particular number an such that we want 90 to divide an. Now realize 90 is divisible by 10, which means there are two simultaneous conditions that need to be satisfied. 10 divides an and 9 divides an. So the divisibility test for 10 is simple. We want that an to have a 0 at its end, which means 10 divides an, 10 divides 9 divides an, which means 10 divides an minus 1 times 100 plus n. So realize that this term is already divisible by 10. This n is not, this n could be or could not be divisible by 10. So that implies that 10 must divide n. Or we can replace n with some number of the form 10m. Hopefully this is clear to everyone. Since we want 90 to divide an, we get n must be a multiple of 10. And since we want 9 to divide an, from here we can use the fact that sum of digits of an must be divisible by 10. Sorry, divisible by 9. So here I am not going to use how many 1s are available, how many 2s are available. That kind of calculation is not really necessary. Remember that 11 is the same as 1 plus 1 mod 9. What we want is mod 9 result to be 0. So effectively the numbers that are available to us in this will be 10 plus 11 plus 12 dot 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 all the way up till 10m mod 9, and this result must be equal to 0, because an can be separately split into the two digit numbers 10, 11, 12 dot 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 all the way up till 10m. And when I try to find the sum of these consecutive integers, it ends up becoming 10m times 10m plus 1
divided by 2 minus the sum of the numbers from 1 to 9, which is 45 mod 9 equal to 0. This is the equation that we need to solve for. Now I can divide 2 with 10 and I am left with 5, and 45 is 0 mod 9, so I can just forget about it. 5n times 10m plus 1, 5m times 10m plus 1 is equal to 0 mod 9. So obviously m equal to 9 is a very good solution to this, but notice 10m plus 1 could also be divisible by 9. So if this is equal to 0, then m is equal to 9 is the solution. If 10m plus 1 is equal to 0 mod 9, let's see what happens there. 10m plus 1 equal to 0 mod 9 could lead to 10m equal to minus 1 mod 9. Now I want some number on the RHS such that I can divide by 10. So the way I do that is I can keep adding multiples of 9 over here. Eventually when I add 81, when I add 81 to the RHS and 0 to the LHS, because 81 is divisible by 9, 10m ends up becoming 80 mod 9. And when I divide by 10, I get m is equal to 8. This is a better value compared to m equal to 9, because that gives me the smallest such least positive n greater than 10, such that an is a multiple of 90. Obviously n equal to 1 is also a very good candidate. M equal to 1 m equal to 1 is not a good candidate because it's just the number 10, right? So that's not a good candidate. M equal to 8 is the answer to this question. So the value n will be 10m equal to 80. This is the final answer to this question. Let's move on to the next question. Now this is a very tough question. The way to solve this requires you to realize one very important result. 2 to the power n minus 1 over here, this number must have n such that n is some 2 to the power k, n is equal to 2 to the power k times a, and m must be a number such that m is equal to 2 to the power l times b. Now what is important over here is not the values of a and b. The important quantities are the value of k and l, because there are two cases. Case 1, k over here is less than or equal to l. Let's analyze this scenario. If the value k was less than or equal to l, then let's just assume that there is a solution such that there is a prime number p that divides both of these. If a prime number p divides both these expressions, if a prime exists, prime p exists such that p divides 2 to the power m plus 1 and p divides 2 to the power n plus 1, 2 to the power n minus 1. Then we could say that this prime number divides the GCD between these two numbers and the GCD will not be 1. If such a scenario exists, then 2 to the power m becomes equal to minus 1 mod p. When I divide this number, this entire number by p, it becomes equal to 0 mod p, so I can bring the minus 1 to the RHS. Simultaneously, we have this expression 2 to the power n is equal to 1 mod p. Notice this minus 1 and 1 can be reached from, the minus 1 can lead to a 1, but the 1 cannot come back to minus 1. If I square minus 1, I can get a 1. Now it is very important that we write down the values that we are assuming for m and n. See, a and b are some odd numbers. Here I will mention that also. A comma b belong to the set of odd positive integers. Okay, and it doesn't matter if a and b are co-prime or they have shared common factors or not. For now, 2 to the power m is equal to minus 1 mod p implies that 2 to the power l times b is equal to minus 1 mod p. Simultaneously over here,
2 to the power k times a is equal to 1 mod p. The way we can make both of these values equal is by raising this entirely to the power a, raising this entirely to the power b. Notice minus 1 to the power b and minus 1 to the power a and 1 to the power b still remain minus 1 and 1 respectively only. Nothing changes. Also, one more thing you need to note over here. Since I am assuming L to be greater than or equal to k, I can multiply the RHS by this value. I can raise to the power, I can further raise this to the power b times 2 to the power L minus k. Here also b times 2 to the power L minus k. The result of this is, I'll write on the next page, 2 to the power L, 2 to the power 2 to the power L times AB is equal to minus 1 mod P. And from the second equation what we found was 2 to the power 2 to the power L times AB. Remember, there is a k over here, but when I am raising it to the power 2 to the power L minus k, the minus k and k cancel each other off and we are left with the 2 to the power L only. This is equal to 1 mod P. This is the significant result that you need to keep in mind. A number cannot be both minus 1 and 1 mod P at the same time unless P is equal to 2. But P cannot be equal to 2. This number, both these numbers were never divisible by 2 unless n and m were 0, which is not allowed. Alright, so basically this case 1 is a case that I am using to show that the value of k must be greater than L. It cannot be such that k is less than or equal to L. And for that particular case, what I will do is I will just get rid of this write up. I will erase ink over here, and in the previous page I will write contradiction. Okay, so if there is a contradiction, then we can be assured of the fact that the only possible case we are left with is k greater than L. I hope it was easy to track whatever I have done over here. N is a multiple of a power of 2 and an odd number. M is a multiple of power of 2 and another odd number. The power of 2 in N must be greater than the power of 2 in M. If this is the case, I can just simply assume that let G be the GCD, or simply let G equal to the GCD of M and N. Now I can allow both M and N to be, G to be a value 1 also. I can just assume M and N to be co-prime numbers. Now 2 to the power G plus 1 is a number that is not 1. This divides 2 to the power M plus 1. Now this is a very trivial result, because if G is a factor of M, it is very trivial that G to the power 2 to the power G plus 1 divides 2 to the power M plus 1. Simultaneously, 2 to the power G plus 1, what you can note is that since G is the co-prime, the divisor of M and N, greatest common divisor of M and N, M by G must be odd. Because if this was even, then there was one more power of 2 that could have been removed and put into N. You must also realize that N by G is even, because N contains a larger power of 2 than M. Hence, what you can also state over here is that 2G divides N. This is very, very important. If 2G divides N, then I could say that 2 to the power 2G minus 1 divides 2 to the power N minus 1. Okay, 2 to the power 2G minus 1 divides 2 to the power N minus 1, because 2G is a factor of N.
Now what I have demonstrated over here is that if 2 to the power 2g minus 1 is a factor of this, then 2 to the power g plus 1 is also a factor of 2 to the power n minus 1. So this is the common value greater than 1 that will always divide this number. Now easily you can see that since g could be equal to 1 in the worst case scenario, 2 to the power 1 plus 1 is 3. So in the worst case scenario, 3 will at least divide both these expressions. There are conditions where 3 does not divide it. That will be when g is not equal to 1. Alright. So what we need to do is we need to bucket all the numbers from 1 to 30 into what is the greatest power of 2 in their fundamental theorem of arithmetic decomposition. So all odd numbers 1, 3, 5, 7 and so on all the way up till 29. There are total 15 of these numbers. These all have power of 2, 0. There are other numbers. This is, for example, n is equal to 2 to the power k times a. Here we have k equal to 0. Now k equal to 1 has the following values 2, 6, 10 and so on all the way up till the number 30, and there are total 8 numbers in this list. For k equal to 2, I will have the numbers 4, 12, 20 and finally 28, because we only need to go up till 30. There are 4 such numbers in this list from numbers 1 till 30. For k equal to 3, we need the numbers that are divisible by 2 to the power 8 but not by 2 to the power 16. So those numbers will be 8 and 24. There are 2 numbers. And finally for k equal to 4, we will have just the number 6 available as a candidate. Now what we need to ensure is that for every value of m that is being chosen, n must have a higher power of 2 in it. Irrespective of whether they share other common factors or not, n just has to have higher power of 2 in it. So for every m inside this set, for every m in the first set, for 15 values of m, we have 8 plus 4 plus 2 plus 1, which is again 15. 15 different solutions available. For every value of m in this set, for 8 values of m, we have 4 plus 2 plus 1, which is 7. 7 possible values. For every value of m in this set, 4 times 3 and 3 times, then finally we have 2 times 1. And this is where we will end our search. Because if m was equal to 16, then you will notice that there is no other value of n that is possible. We cannot have a situation where k is less than or equal to l. This is a contradiction scenario. So we will have to have k greater than l, which is the l is the corresponding value for the value m over there. So if we add these up, we will have 2, 2, 5. 8 plus 7 is 56. 4 times 3 is 12 and 2 times 1 is 1. If you add these up, if I remember correctly, it is 295. And from 295, the correct answer 95 comes out, which are the last 2 digits of this expression. Find the last 2 digits of k. Alright, let's move on to the next question. Question that if you ever encounter in a paper, you should skip it for the last 30 minutes of the exam, because as we had seen earlier, this expression, if it ever shows up, it implies that you need to deal with perfect squares, sum of perfect squares. Now we also want that this sum of perfect squares to be a multiple of 200. The way you can go about doing this in a brute force algorithmic way would be that we write 200 divides this expression, k into k plus 1 into 2k plus 1 upon 6. Now further I can multiply by the same number on both RHS and LHS of this expression. This becomes 1200 divides k times k plus 1 times 2k plus 1. Now 1200 is a special number. What I can effectively say is that this entire number equals 3 times 2 to the power 4 times 5 square times other primes. That is the makeup of this product, k times k plus 1 times 2 to the power k plus 1. Now since you know that this is the expression for sum of perfect squares, this entire
ratio must be an integer. Hence the numerator is always divisible by a multiple of 3. It is always divisible by 3 at least. So we don't need to worry about 3. Don't need to worry. Don't need to check for the divisibility by 3. But what we do need to do is 2 to the power 4 and 5 square. 16 and 25 need to be accounted for. So there are 4 scenarios that effectively end up over here. Why not 8 scenarios? Why not 6 scenarios? Because see, k plus 1 and 2k plus 1 are all co-prime to each other. It is trivial that k comma k plus 1 are co-prime. When I subtract k plus 1 out of 2k plus 1, I find that the result is k. Since their difference is co-prime to the value k plus 1, 2k plus 1 is also co-prime to k plus 1, and simultaneously I can do the same for k and find that all are pairwise co-prime. Okay, this is a very, very good result to have in the start of the question itself, which means that if one number among these is even, that number has to be divisible by 16. And if one number among these is divisible by 5, then that number has to be divisible by 25. So there are 4 cases that happen. Case 1, and under this first case there are 2 sub cases. 2k plus 1 is divisible by 25. Okay, so I'll rewrite this so that the 25 is visible. 25 divides 2k plus 1. Along with 25 dividing 2k plus 1, I must have 16 divides k. Case 2 will be 25 divides 2k plus 1, and 16 on the other hand divides k plus 1. Right. The next case would be case 3. 2k plus 1 is not touched at all. 2k plus 1 cannot be an even number, hence 16 cannot divide it, hence we have only 4 cases to check. 25 divides k, and what we have left with 16 is that 16 divides k plus 1. Now realize that we could also have the scenario that both 25 and 16 divide k, or both 25 and 16 divide k plus 1, but that would give an insanely large value of k. Not insanely large, 25 times 16 is 400. So a number that is larger than 400 or around 400 is what will be required for k. The thing is, in one of these cases, we'll definitely find a value of k that is less than 400, because the LCM of 25 and 16 is 400, and from Chinese remainder theorem we can have the assurance that there is a solution between 0 and 399 for each and every one of these 4 cases. So for case 3, 25 divides k and 16 divides k plus 1. Case 4, we'll have 25 divides k plus 1 and 16 on the other hand divides k. Okay, now this is why I said that this question should be left for the last half an hour, because if you are not very efficient in calculating the respective values of k that work over here, then this could take anywhere from 5 minutes to an hour. So for the first case, if we want 25 divides 2k plus 1, I'll first write down this condition. 2k plus 1 is equal to 0 mod 25. If this is the case, I can bring this minus 1 to the other side and replace it with 24. So 2k is equal to 24 mod 25, which means k must be equal to 12 mod 25. So now I'll only think about all the even numbers that are of the form 12 mod 25 all the way up till 400. If I write those down, those will be 12, 62, 112, 162, 212, 312, 262 and 362. These are all the possible candidates that need to be checked for being divisible by 16 or not. See, the Chinese remainder theorem approach over here is very, very calculation intensive, and hence I am going to skip that entirely. Out of all these numbers, you can notice that all of them are even, few of them are divisible by 4, few of them are divisible by 8, but only this one is divisible by 16. 112 is divisible by 16. Hence, this is now a candidate value that can be checked against other numbers. If 2k plus 1 is equal to 0 mod 25, we had the result k is equal to 112 mod
25. Now I'll check the odd numbers. K plus 1 needs to be checked. Now the odd numbers in this list could have been 12 plus 7, 12 plus 25, which is 37. So 37 plus 1 is 38. 38 plus 50 is 88. So 138, 188, 238, 288, 338 and 388. Out of these, 288 pops out very quickly, because 288 is something you might have calculated a lot. It's 2 times 12 square, and it's also 1 less than 17 square. So both of those give you readily that this number must be heavily divisible by 2, and it is divisible by 32 in fact, right? It's 32, 320 minus 32. So 288 is a candidate solution. Now the other solutions involve k equal to 0 mod 25, in which case k plus 1 will look, k plus 1, the even values of k plus 1 will be 26, 76, 126, 176, 226, 276, 326, 376. Now can someone tell me which of these values looks like it's divisible by 16? Any number that ends in 76 that is divisible by 16 must bring in your mind the number 576, because it's 24 square, and 24 square is divisible by 16. When you subtract 400 from it, you get 176, and 176 is the corresponding value of k plus 1. This is the solution for these two simultaneous modulo equations. Then k equal to minus 1 or k plus 1 equal to 25, k equal to minus 1 mod 25 mein, the number must end in a 24. So the possible values are 24. This is the value of k, okay. K that end up over here are 24, 74, 124, 174, 224, 274, 324. You can already see 324 will not work, okay, so I'll just circled it by mistake. It's 18 square and it's not divisible by 16. So 374. Among these numbers, 224 seems like it's divisible by 16. Is it? Yes, 224 is divisible by 16, because 200 leaves some remainder mod. So 200 is divisible by 8 mod by mod 8. And 24 is equal to 0 mod 8, but both of those numbers are not 0 mod 16, hence 224 is the available number. Among these 4 numbers, 112 is the answer. This will be the one for which we'll have the sum of squares to be divisible by 200, and we can be done with this. Hopefully this was like understandable. The next question. This can be completed very quickly. So you read through this question, recall what you might have done. Okay, there exists a unique strictly increasing sequence of 2's. Basically what this is asking is, we have this particular expression on the LHS, it is an integer, convert it to a binary number. Because effectively, if you are saying that a number is a sum of unique powers of 2, you are basically asking for the binary representation of this number. I'll just give a smaller example so that you know exactly what is happening. What if the question said 2 to the power 25 plus 1 upon 2 to the power 5 plus 1? See, 2 to the power 25 plus 1 is 2 to the power 5 to the power 5. Hence, that becomes 2 to the power 5 the whole power 5 plus 1. And using the GP idea, 2 to the power 5 plus 1, you can write this is 2 to the power 4 minus 2 to the power 3 plus 2 to the power 2 minus 2 to the power 1 plus 2 to the power 0. Now this entire expression, when you notice, oh sorry, I have done a mistake. This is 2 to the power 5 to the power 4, 2 to the power 5 to the power 3, 2 to the power 5 square, 2 to the power 5 to the power 1 and 2 to the power 5 to the power 0, which is effectively 2 to the power 20 minus 2 to the power 15 plus 2 to the power 10 minus 2 to the power 5 plus 2 to the power 0, right? When I represent this particular number in binary, the difference of these two is going to be an integer. It's going to be 2 to the power 19 plus 2 to the power 18 plus 2 to the power 17 plus 2 to the power 16 plus 2 to the power 15. I hope that is clear.
when expressed in binary, these are just 5 ones altogether, and then there are 5 zeros that happen after this, because at this position was 2 to the power 10. When we subtract 2 to the power 5 out of it, we are left with another 5 ones, and then another set of zeros, 1 2 3 4 zeros, and then finally a 1 for this 2 to the power 0. So this is 2 to the power 0 position, 1 2 3 4 5. 2 to the power 5, because it is existing with a minus sign over here, it subtracts from 2 to the power 10 to give this complementary number 1111. This is the base 2 representation of this particular expression. The same thing is going to happen for this large expression also. Effectively what will happen is, I'll go straight away to the expression that I'll go straight to the expression that this will look like. 2 to the power 8 289 plus 1 upon 2 to the power 17 plus 1 is going to look like 2 to the power 17 times 16 minus 2 to the power 17 times 15. To this we will add 2 to the power 17 times 14 minus 2 to the power 17 times 13. To this we will add 2 to the power 17, and you get the idea. Eventually we will have 2 to the power 34 minus 2 to the power 17. To this we will add the number 1. Since 1 is also a power of 2, this is 2 to the power 0. From here we will have 17 powers of 2. Notice 2 to the power 34 minus 2 to the power 17 is basically 2 to the power 33 plus 2 to the power 32, and so on and so forth until 2 to the power 17. You can see that GP evaluates exactly to this value. So for each of these brackets that I have made, there are going to be 17 numbers that come up, and the number of brackets is 16 upon 2. Number of differences. So 16 upon 2 times 17 are the number of terms that will exist. Remember, we are not asked the value of AK. AK is very easy to calculate. AK is 17 times 16, which is 272. That is very easy to calculate. Sorry, AK will end up being 271. Okay, but the value of K will be 16 by 2 times 17 plus 1, because this is also 0 is also a value, and 0 is K plus K equal to 1. Sorry, A0 is equal to A1 is equal to 0 is what I mean. This is 8. 8 times 17 is 136 plus 1 is 137. Right, and from here we get the answer to be 37. I think one more question is remaining in the 3 marker questions. Yeah. Now this is one of my favorite questions. In fact, this question I had created 2 years ago, and it usually stumps every student that I have encountered. Some of you already know the answer to this. This does not require solving by the regular method, where you convert this number, where you convert this base 16 number into a base 10 number and then convert it back to base 4. 27859 is a base 16 number because 27859 base 16 can be written as 2 times 16 to the power 4 plus 7 times 16 cube plus 8 times 16 square plus 5 times 16 plus 9. Some of you who know the method to convert a number from any base to any other base, you know that you convert it to base 10 and then you keep dividing by the final base and then keep track of all the remainders. But here you don't need to do any of that. What we'll do is, we'll straight away notice that 16 is a power of 4. 16 is 4 square. So everywhere I find a number 16, I'll replace it with 4 square. So this effectively becomes 2 times 4 to the power 8 plus 7 times 4 to the power 6 plus 8 times 4 to the power 4 plus 5 times 4 square plus 9 times 4 to the power 0. So our job should be done, but the thing is, a base 4 representation can only have digits 0, 1 or 2. So I need to further replace 7, 8, 5 and 9 with its corresponding base 4 representation. 2 is just 0, 2. 7 is 1, 3 in base 4. See, in base 4 the numbers goes as follows. For n in base 10, we have 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. For n in base 4, 1 becomes 0, 1, 2 becomes 0, 2, 3 becomes 0, 3, 4 becomes 1, 0. See, we don't have the digit 4 in base 4. Hence, we have to carry over to the next position. We are left with 1, 1, then 1, 2, 1, 3. 8 becomes 2, 0 and 9 becomes 2, 1. So, this is what I am going to replace each and every one of these digits with. 8 becomes 2, 0. 5 becomes the base 4 number 1, 1. 9 becomes the base 4 number 2, 1. And I'll just write a 4 as a subscript so that we keep that in mind. To this we have a multiplication of 4 to the power 8 times 4 to the power 6 times 4 to the power 4 times 4 square times 4 to the power 0. So I can just piece all of this together, but I'll just take one more step over here. This is 2 times 4 to the power 8 plus this 1, 3 is actually 4 plus 3. So I can replace it with 4 to the power 7, 1 times 4 to the power 7 plus 3 times 4 to the power 6 plus 2 times 4 to the power 5 plus 0 times 4 to the power how much 4 plus 1 times 4 cube plus 1 times 4 square plus 2 times 4 plus 1. So when you put all of this together, what we are left with is 2, 1, 3, 2, 0, 1, 1, 2, 1. This is the 9-digit number that was asked. And the question asks us to find the sum of squares of the digits. So that's simply 4, 1, 9, 4, 1, 1, 4, 1. So I can combine 9 and 1, I can combine 4, 1, 1, and this 4 and 4 becomes 5, 10 and 10. So 25 is the final answer to this question. Notice the question can directly be converted from this number to this number by just replacing every digit with its corresponding base for representation. This is very useful when you are having to solve questions that deal with divisibility by 99. Instead of dividing by 9 and 11, you could make the case that any 10-digit base 10 number can be converted to a base 100 number. Now try this out ever if you have to check what's the remainder when you divide a number by 99. You can just express the base 10 number in base 100 and use the divisibility test of a number 1 less than the divisor, 1 less than the base. Alright, so this was all the 3 marker questions I had. I'll give the board to Rajat sir to continue with the next few questions, next 10 questions. यस बच्चों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? सो 30 क्वेश्चंस डन, 30 रिमेनिंग. और आपको पता ही है पिछले 2 मैराथन्स का आपका एक्सपीरियंस है कि वो तो लास्ट के 30 सवाल होते हैं वो ज़बरदस्त सवाल होते हैं. तो हैव सम वाटर, हैव सम स्नैक्स, करो कुछ व्यवस्था. देखो मम्मी को बोलो कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए. वापस से थोड़ी ऊर्जा एकत्रित करो और लग जाओ मेरे साथ. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे चलते हैं. क्वेश्चन 31 सेज कि कॉल ए 3 टर्म स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स special if the sum of the squares of the 3 terms equals the product of the middle term and the square of the common difference. So find the sum of the third terms of all special sequences. देखिए 11 बज जाएंगे. लेट्स सी यशराज, देखते हैं क्या होता है आज. तो 3 अरिथमेटिक मतलब एपी के 3 टर्म्स चुनोगे तो क्या चुनोगे आप? मान लेते हैं कि a माइनस बी है, a है और a प्लस बी है. ऐसे 3 टर्म्स ए पी के चुन लिए अपन ने. तो इनका स्क्वायर्स का सम a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर
इट इज सेइंग दैट इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म यानी कि ए एंड द स्क्वायर ऑफ द कॉमन डिफरेंस मीन्स इट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस है यानी कि सब आपस में मतलब ये सब पॉजिटिव होंगे, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 से बड़ा होगा। अब देखिए ये इसको ओपन कर लेते हैं तो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, नहीं कट रहा है तो 3a स्क्वायर, कुछ तो कटा, चलो बढ़िया है, प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, दिस इज इक्वलेंट टू ए बी स्क्वायर। देखिए मेरे को बी स्क्वायर कुछ उधर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, सो 3a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर a माइनस 2, राइट, सही है, देख लेना। तो यहाँ से कैन वी क्लेम कि बी स्क्वायर इज इक्वलेंट टू 3a स्क्वायर अपॉन a माइनस 2। अब देखिए बच्चों, ऑब्वियसली ये इंटीजर होना चाहिए, तो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है अपन इसको इंटीजर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन से पता चल जाएगा क्या इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। तो a माइनस 2 को 3a स्क्वायर को a माइनस 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 3a टाइम्स 3a स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का एक 6 से भी आ जाएगा, तो माइनस का 6 से, फिर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का 6 से आ जाएगा और एक प्लस का 12 आ जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस, तो कुल मिला के माइनस का 12 बचेगा। तो वो जो एक्सप्रेशन है, बेसिकली जो एक्सप्रेशन है, दिस गेट्स ब्रेक डाउन इनटू 3a माइनस 6 माइनस 12 अपॉन a माइनस 2, ऐसा बन गया बच्चों। ये चमका आप लोगों को, ऐसा कुछ तो बन गया। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। बेसिकली व्हाट वी नीड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। सो a माइनस 2 कैन बी व्हाट, a माइनस 2 कैन बी द फैक्टर ऑफ 12। सो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इनमें से कौन से एक्सेप्टेड है कौन से रिजेक्टेड है वो तो देख लेंगे अपन। ऑब्वियसली अगर आपने 1 ले लिया तो वो चल जाएगा, क्या चल जाएगा, बट माइनस 1 ले लिया तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। दो बच्चों, यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ए बी स्क्वायर है, ये 2b स्क्वायर है, तो जो a है वो 2 से तो बड़ा होना पड़ेगा। मतलब a को अगर 2 रख दिया तो 2b स्क्वायर कट जाएगा तो 3a स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये जो a है ये 2 से तो बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ से वी कैन क्लेम दैट a शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन गेट द वैल्यूज। अच्छा, 2 से बड़ा होगा तो सारे नेगेटिव तो वैसे गायब हो गए, तो जो बचे वो हैं 2 + 1 3, 2 + 2 4 और 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। देन 2 + 3 5, 2 - 3 नेगेटिव है वो लेना नहीं है। 4 + 2 6, देन 6 + 2 8, 8 + 2 12 + 2 14। तो a की ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, इनमें से अपन वैल्यूज़ डाल के देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो जब आप जैसे मान लीजिए a की जगह आपने 3 रखा तो 3 - 2 हो गया 1, तो a की जगह 3 रखा तो 9 - 6 हो गया 3 - 1 हो गया 2, कुल मिला के तो b स्क्वायर का वैल्यू 2 आ जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उड़ा देंगे इसको। तो ऐसे वैल्यूज जब आप रैंडमली चेक करेंगे, मतलब कुल मिला के 6 वैल्यूज ही चेक करनी है, तो जब आप चेक करेंगे तो a का वैल्यू 5 एंड a का वैल्यू 14 सेटिस्फाई कर रहा है। आप चेक करके देख लीजिए। 5 रखेंगे जब आप यहाँ पे 5 - 2 3, 12/3 4, और यहाँ पे 5 रखो, 5 3 जा 15, 15 - 6 9 और वो 4, तो आप देख लीजिए वैल्यू आ जा रही है क्या। चेक करा, a की जगह 5 रखा अपन ने, तो b स्क्वायर आपका 8 a = 5
बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 3 15 माइनस 6 माइनस 12/3 4, नहीं बी स्क्वायर का वैल्यू 5 आ रहा है, नहीं 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 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और देखते हैं, इसको उड़ाते हैं। ए का वैल्यू 4 रख के देखते हैं, 4 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 4 3 12 माइनस 6 माइनस 12 अपॉन 4 माइनस 2 2 मतलब माइनस 6, तो ये 0 आ जा रहा है। बी 0 हो सकता है क्या, इंक्रीजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस बोला है तो बी 0 भी नहीं हो सकता। डिवीजन में एरर है क्या, वापिस से देख लेते हैं। ए को 3a से करा तो 3a स्क्वायर आ गया, माइनस करा तो ये तो गायब हो गया, और माइनस का 6 से, माइनस का 6 से है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 6 से आ गया, और प्लस का 12 आ गया, और ये माइनस का 12 हो गया। देखो इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, थ्री एम इंटू माइनस 2। अच्छा ये माइनस का 6 से यहाँ आ जाएगा एक्चुअली, यस ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, फिर ये होगा और ये होगा माइनस का 12, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये गड़बड़ है इसमें, तो ठीक है। तो कुल मिला के ये 3a प्लस 6 और प्लस 12 ऐसा बनेगा बच्चों ये। तो वैल्यूज़ तो आई थिंक ये रहेंगी, ए की वैल्यू 3 4 5 6 8 14, इसमें अब आप ए का वैल्यू 5 डाल लेना तो आ जाएगा। अब आप ए का वैल्यू 5 डालते हो यहाँ, तो 5 3 15 प्लस 6 प्लस 12/3 4, तो 25 आ जाता है, जिससे बी का वैल्यू 5 आ जाता है। तो एक तो 5,5 आ जाएगा, और एक बार 14 डालोगे तो भी कुछ तो आ जाएगा, आई थिंक 7 आ रहा है। तो आपका जो फाइंड द सम ऑफ द थर्ड टर्म्स ऑफ द स्पेशल सीक्वेंस, यानी कि a प्लस बी वाला वैल्यू निकालना है, तो a प्लस बी आपका क्या बन जाएगा, 10 और 21, 10 प्लस 21 31 इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, देयर वाज वन कैलकुलेशन मिस्टेक हियर, तो वो मैंने रेक्टिफाई कर दिया। देखो a इंटू 3a इज 3a स्क्वायर, बट माइनस 2 इंटू 3a, यहीं पे तो माइनस 6 आएगा ना, इसके नीचे लिख दिया था मैंने, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6 है। जब वो माइनस करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, बट ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 6 से नीचे आएगा। फिर a इंटू 6 इज 6 से, और 6 इंटू माइनस 2 इज माइनस 12, तो इसका प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये तो गायब हो गया, बट ये माइनस ये प्लस का 12 बच जाएगा आपके पास। तो फिर आप इस चीज़ को लिख पाओगे इस तरीके से, 3a प्लस 6 प्लस 12 अपॉन a माइनस 2। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स n and k डिफाइंड इनटू बी k नाइस इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर a सच दैट a की पावर k is exactly n पॉजिटिव डिविजर्स। देखिए ये क्या कह रहा है कि n और k पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमको n को इस तरीके से डिफाइन करना है कि अगर वो k नाइस है, इट इज a k नाइस नंबर इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर a सच दैट a की पावर k हैज एक्जेक्टली n पॉजिटिव डिविजर्स, मतलब a की पावर k के एक्जेक्टली n पॉजिटिव डिविजर्स हो। लेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1000 दैट आर नाइदर 7 नाइस नॉर 8 नाइस बी k। तो कुल मिला के 7 नाइस और 8 नाइस नंबर्स के बारे में पता करना है। देखो बच्चों, तो मान लेते हैं कि जो n है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें आएंगे कुछ तो इस तरीके से, नंबर 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c एंड सो ऑन, इस तरीके से कुछ तो नंबर्स होंगे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। अच्छा a मत लो यहाँ पे, क्योंकि a यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पे a डैश ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे a डैश प्लस 1, b डैश b प्लस 1, c प्लस 1 एंड सो ऑन, ऐसे। लेकिन वो कह रहा है कि a की पावर k हैज एक्जेक्टली n पॉजिटिव, तो अगर k 7 है तो a की पावर से 7 मतलब क्या हो जाएगा पता है, ये सब 7 पे रेस हो जाएंगे, तो से फॉर 7 नाइस
फैक्टर्स कितने हो जाएंगे पता है, 7a डैश प्लस 1, 7b प्लस 1, 7c प्लस 1 एंड सो ऑन। और उसी तरह फॉर 8 नाइस, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली पूरा 8 पावर पे रेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8a डैश प्लस 1, 8b प्लस 1, 8c प्लस 1, इस तरीके से ये कहानी चलती जाएगी, राइट। अब 7 नाइस नंबर्स पता है कौन से हैं? जितने भी 7 नाइस नंबर्स हैं ना, उनमें एक बात कॉमन आप ऑब्जर्व करोगे कि ऑल ऑफ द 7 नाइस नंबर्स आर 1 mod 7। ऑल 7 नाइस नंबर्स आर 1 mod 7, क्योंकि आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 का रिमाइंडर आ रहा है। उसी तरीके से ऑल 8 नाइस नंबर्स आर 1 mod 8। जितने भी 8 नाइस नंबर्स हैं वो सारे के सारे 1 mod 8 होंगे। तो हम और अच्छा 7 और 8 का एलसीएम कितना है? 56 है। सो साइकिल रिपीट्स आफ्टर एवरी 56 इंटीजर। तो हर 56 नंबर के बाद साइकिल रिपीट होना शुरू करेगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि 1 से 56 तक में 7 नाइस नंबर कितने हैं और 8 नाइस नंबर कितने हैं। सो टिल 56 नंबर ऑफ 7 नाइस नंबर विल बी 56/7 का GIF। क्योंकि 1 mod 7 वाले नंबर कितने होंगे? 1 होगा, 1 के बाद 8 होगा, ये 8 नंबर होंगे। कौन कौन से? 1, 8, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरीके से टिल 56 नंबर ऑफ 8 नाइस नंबर्स कितने होंगे? वो होंगे GIF ऑफ 56/8, ये हो जाएगा 7। ये कौन कौन से नंबर हो जाएंगे जो कि 1 mod 8 हो रहे होंगे? यानी कि 1 हो रहा होगा, 8 से डिवाइड करने पे 1 का रिमाइंडर दे रहा हो तो 9 हो रहा होगा, और फिर 17 आ रहा होगा। ये कहानी ऐसे चलती जाएगी। टोटल 7 नंबर आएंगे 56 तक जो कि 8 नाइस होंगे। टोटल 8 नंबर आएंगे 56 तक जो कि 7 नाइस होंगे। 7 नाइस मतलब 1 का रिमाइंडर दे रहे होंगे। 8 नाइस मतलब 8 से डिवाइड करने पे 1 का। 7 नाइस मतलब 7 से डिवाइड करने पे 1 का। तो 1 से, लेकिन इसमें 1 2 बार काउंट हो गया बच्चों, 1 2 बार काउंट हो गया। तो टोटल 7 नाइस एंड 8 नाइस टिल 56 विल बी 8 + 7 - 1, तो कितना हो गया? 14 हो गया आई थिंक। तो 1 से लेकर के 56 तक देर आर टोटल 14 नंबर्स विच आर 7 नाइस और 8 नाइस और बोथ, राइट। सो टिल 56 देर आर 14 numbers which are 7 nice और 8 nice और both। या तो 7 नाइस है या 8 नाइस है या बोथ। लेकिन हमको क्वेश्चन ने पूछा है कि वो वाले नंबर बताओ जो कि ना तो 7 नाइस हो ना तो 8 नाइस हो। तो टोटल तो रिमेनिंग नंबर कितने हो जाएंगे? 56 - 14 यानी कि 42 नंबर्स वो होंगे 1 से 56 के बीच में, जो कि ना तो 7 नाइस होंगे ना तो 8 नाइस होंगे। तो हर 56 नंबरों में 42 नंबर ऐसे मिल रहे होंगे जो ना तो 7 नाइस होंगे ना तो 8 नाइस होंगे। हमें जाना है टिल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1000। लेस देन 1000 का मतलब है बच्चों अपन को 1 से लेकर के जाना है 999 तक, ठीक है। 1 से 999, लेस देन 1000 बोला है उसने। तो 1 से 999 में कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो कि नाइदर 7 नाइस होंगे नाइदर 8 नाइस होंगे। अब ये बेसिक काउंटिंग करनी है आपको। तो हर 56 नंबर में 42 आ रहे हैं, तो आप 1000 के आसपास कोई एक नंबर देख लो जो कि 56 से डिविजिबल हो। 56 से डिविजिबल 1000 के आसपास 56 × 2 करोगे तो 1100 आ जाएगा। 18 से करके देख लेते हैं।
1008 आ रहा है। तो यानी कि बच्चों टिल 1008 टिल 1008 तक, तो इंक्लूडिंग 1008 देर विल बी हाउ मेनी, ये कितना है 18 है ना। सो टिल 1008 देर विल बी 42 into 18 numbers, required numbers we can say. (42 into 18) कितना होता होगा? 42 into 18, 8 2 16, 756 तो ये हो गया बच्चों। लेकिन इसमें तो ओवर काउंटिंग हो रखी है, क्योंकि अपने को तो 999 तक जाना है और ये मैंने 1008 तक कैलकुलेट कर लिया, यानी कि 9 नंबर को मैन्युअली चेक कर लेंगे। चेक 9 नंबर्स मैन्युअली। और चेक 1000, 1001, 1002 एंड सो ऑन अप टू 1008। ये 9 नंबर आप मैन्युअली चेक कर लो। तो मैन्युअली जब आप चेक करते हो तो देख लेना इसमें से कोई नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हो जाएगा अपना काम। आई थिंक जब आप इसको 8 से डिवाइड करते हो ना, तो 1000 जो है ना वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो ये 1 mod 8 है बच्चों, दिस इज 1 mod 8। तो ये तो के नाइस नंबर है, उड़ा दो। और ये पता है ये 1 mod 7 है, ये भी के नाइस नंबर है, उड़ा दो। तो इन 9 में से 2 नंबर मिल चुके हैं जो कि के नाइस है, 7 नाइस या 8 नाइस। तो बाकी बच गए 7 नंबर। ये 7 नंबर ओवर काउंटेड है, इन 7 नंबरों को उड़ाना होगा। तो 756 -7 कर दो बच्चों। ये चमक गया कि आपको 7 नंबर ऐसे हैं जो ओवर काउंटेड है, तो उनका उड़ा दोगे तो कितना आ रहा है 749। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, फाइंड k by 107। तो 749 by 107 कट जाता होगा आई थिंक। देखो तो एक बार 749 by 107, 107 7 जा, हाँ कट गया ना, देखो बढ़िया। तो आपका आंसर इसका 07 आ जाएगा। चमका क्या बच्चों, किसी को बोलो। Have anyone understood it or not? चमक गया हो तो उड़ान लिख दीजिए फटाफट। उड़ान है बच्चों, फैंटास्टिक। आदित्य शर्मा का उड़ान आ गया, उड़ता हुआ उड़ान, बहुत बढ़िया। अभिनंदन का आ गया, सोम सरकार का आ गया, लास्ट है बैन हो गया, अरे भाई यशराज, आयु सिंगल का, अर्जव का, फैंटास्टिक। चेस भाई लास्ट पार्ट समझ नहीं आया, और भी किसी बच्चे को लास्ट पार्ट नहीं आया समझ में। लास्ट पार्ट, वैसे लास्ट पार्ट करा क्या है मैंने वो देखना पड़ेगा, क्या किया था। हाँ, तो लास्ट पार्ट ये है कि हमको वो काउंटिंग करनी है। तो हमने ये देख लिया कि 1 से लेकर के 56 तक 42 नंबर्स हैं। तो टोटल 1000 के आसपास कितने नंबर जा रहे होंगे जो कि के नाइस होंगे, यानी कि 7 नाइस या 8 नाइस। तो मैंने देखा कि ये जो 56 है ना, 56 का जस्ट नियरेस्ट मल्टीपल क्या है 1000 के, तो वो मुझे 1008 मिल गया बच्चों। तो यानी कि 1008 बार जो है ना, ये 1000 मतलब टिल 1008 टिल 1008 दिस 42 द साइकिल ऑफ 42 विल रिपीट 18 टाइम्स, क्योंकि 18 से मल्टीप्लाई करा जब मैंने ना इसको 56 को, तो 1008 आया। तो इसलिए दिस 42 विल अकर 18 टाइम्स टिल 1008। तो 42 इंटू 18 कर दिया मैंने, वो 756 मेरे नंबर बन रहे थे जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि वो चाह रहा है कि के नाइस ना हो, ना 7 नाइस हो, ना 8 नाइस हो। बट इसमें ओवर काउंटिंग हो रखी है, क्योंकि मेरे को तो 999 तक जाना था, मैंने 1008 तक निकाल लिया। तो मैं बाकी जो बच गए उनको देख लेता हूँ। वो तो मतलब ढूंढना तो बहुत इजी है ना, 8-9 नंबरों को पता लगाना कि क्या 7 से डिवाइड करने पे 1 का रिमाइंडर आ रहा है या 8 से डिवाइड करने पे 1 का रिमाइंडर आ रहा है, ये तो ईजी है ना। तो वो अपन ने देख लिया कि
1001, मुझे 1000 का याद है कि वो 8 से डिविजिबल है, तो 1001 जो है वो 1 mod 8 होगा, तो इसको उड़ा दिया। फिर मुझे 1002 का भी याद है कि इट इज़ 1 mod 7, क्योंकि 1003 पूरी तरीके से 1001 पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल है, तो दिस इज 1 mod 7। अब इसके बाद वापस अगला 1 mod 8 जो है ना वो 1009 पे आएगा, तो वो हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि 1008 तक की जोड़ा है मैंने। फिर अगला 1 mod 7 जो है ना वो 1000, वो भी 1009 पे ही आएगा तो वो भी अपने काम का नहीं है। तो बेसिकली इन दोनों को ही उड़ाना है, बाकी तो सब काउंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक अब अंडरस्टूड है बच्चों। जिस जिसका बैन था वो उड़ान लिख सकता है क्या फटाफट? अब सोम सरकार का उड़ान आ चुका है, फैंटास्टिक। संतोष का आ गया है। आयुष सिंगल, अभी काम की बातें ये चल रही है यशराज कौन से बैच में है, क्या कर रहा है, उसका क्या रैंक है, क्या नहीं है, अपने क्या मतलब है? अभी जो अपन जिस काम के लिए आए वो करते हैं ना। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। लेट एन बी द पॉजिटिव इंटीजर, ये वो फलाना ढिमकाना 313 डिजिट का नंबर है, वेयर ईच डिजिट इज 7। लेट एफ आर बी द लीडिंग डिजिट ऑफ द आरथ रूट, आरथ, ये आरथ है बच्चों। सो व्हाट इज एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 6? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का सवाल है, जैसे ये 313 डिजिट तक जाना है आपको, राइट? तो अगर मैं चाहता हूं कि एफ ऑफ 2 क्या होगा, मान लेते हैं जो पूरा नंबर एन है, तो क्या मैं एन का लोअर बाउंड और अपर बाउंड पता लगा सकता हूं? अगर वो पता लग जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड ढूंढने की कोशिश करता हूं। मुझे ये बताइए कि मैं अगर स्क्वायर रूट लेना चाहूंगा तो मेरा लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या आ रहा होगा बच्चों? लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या आ रहा होगा? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर 312, क्योंकि 313 डिजिट्स है, ये जो 7 है 313 बार आ रहा है, तो 4 इंटू 10 के पावर 312 से तो बड़ा दिख रहा है ये, और n जो है वो 9 इंटू 10 की पावर 312 से छोटा भी दिख रहा है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये 4 इंटू 10 की पावर 312 से बड़ा है और 9 इंटू 10 की पावर 312 से छोटा है। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, रूट n, वो 2 इंटू 10 की पावर, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और इसमें जब आप रूट n लोगे तो वो आएगा 3 इंटू 10 की पावर 156। तो जो रूट n है ना, रूट n वो 2 इंटू 10 की पावर 156 से बड़ा है, मगर 3 इंटू 10 की पावर 156 से छोटा है। तो उसका जो GIF होगा, मतलब बेसिकली उसका लीडिंग टर्म पूछा है ना, वो लेट ऑफ एफ आर बी द लीडिंग डिजिट ऑफ द आरथ रूट। लीडिंग डिजिट मतलब इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो 2 पॉइंट समथिंग हो रखा होगा, मतलब 2 कुछ तो हो रहा होगा, स्टार्टिंग डिजिट उसका 2 होगा, तो लीडिंग डिजिट हमारा एफ ऑफ 2 में 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर एफ ऑफ 3 की बात करें बच्चों, तो एफ ऑफ 3 के लिए सोचिए आप इसी तरीके से क्या बाउंड कर सकते हैं अपन एफ ऑफ 3 में। 312 की विशेषता ऐसी है कि वो 3 से भी डिविजिबल है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस n को देख करके, इस नंबर को देख करके, कि दिस इज ग्रेटर देन 1 इंटू 10 की पावर 312 एंड दिस इज लेस देन 8 इंटू 10 की पावर 312। देखो दिख रहा है आपको, चमक रहा है क्या? ये वाली बात अगर आपको चमक रही हो तो बताइए। ये 8 इंटू 10 की पावर 312 से छोटा है स्ट्रिक्टली, और 1 इंटू 10 की पावर 312 से बड़ा है स्ट्रिक्टली। जब मैं इसका क्यूब रूट लूंगा, तो क्यूब रूट जब होगा, क्यूब रूट ऑफ n वो 10 की पावर 3 1 जा 3 और 104, और क्यूब रूट ऑफ n विल बी लेस देन 2 इंटू, ऐसा कुछ होगा। तो ये जो नंबर होगा ना क्यूब रूट ऑफ n, वो 10 की पावर 104 से बड़ा होगा, मगर 2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 104 से छोटा होगा। इसका मतलब इसका लीडिंग डिजिट क्या आ रहा होगा? 1, और फिर तो कुछ आगे डिजिट्स आ रहे होंगे बड़े से, बट हमको उससे मतलब नहीं, हमें लीडिंग डिजिट से मतलब है। तो एफ ऑफ 3 आपका 1 आ जाएगा। इसी तरह आप 4 5 6 के लिए निकाल सकते हैं आप। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। शुड आई लीव इट नाउ? आप कर पाएंगे इसको या शुड आई कंप्लीट इट? बोलिए।
नाउ यू जस्ट हैव टू चेक फॉर एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 के लिए क्या करोगे बच्चों, एक तो ले लो 1, ये 4 से भी डिविजिबल है क्या, हाँ 4 से भी डिविजिबल है, देखो बढ़िया है। तो n जो है वो 1 इंटू 10 की पावर 312 से बड़ा है, मगर n जो है वो 16 इंटू 10 की पावर 312 से छोटा है। तो खत्म हो गया, वापिस से FO4 भी 1 आ जाएगा। आई थिंक ये चमक गया आपको, राइट। देखो इसको ध्यान से, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो चैट पे लिख के बता दो, तो मैं पूरा समझा दूंगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स लीव इट, इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन। कंप्लीट इट सर, कंप्लीट करवा दीजिए, कंप्लीट करा देते हैं। सो एफ ऑफ 4 भी बेसिकली 1 ही आ गया। फॉर 5 के लिए हमें फिफ्थ रूट चाहिए होगा, लेकिन 312 5 से डिविजिबल नहीं है, तो कुछ चमत्कारी काम करना पड़ेगा ताकि 5 वाला टर्म क्रिएट किया जा सके। तो 5 के लिए क्या करें, 312 से जस्ट छोटा नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो 310 है। तो देखिए मैं ऐसा बोल दूं क्या, जो ये n है वो 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 310 से छोटा है, और जो n है वो 4 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 310 से छोटा है। देखो 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 310 से बड़ा है। इस नंबर को देखते हुए चलोगे ना तो सब चमकता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है एग्जैक्टली। और मेरे को फिफ्थ रूट लेना है, इसलिए मैंने पावर 5 में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। तो यहाँ से आप ये जब इसका फिफ्थ रूट लोगे तो यहाँ से f ऑफ 5 के बारे में आप बोल पाओगे कि वो 3 आ रहा है। अभी तक कितना सम आ चुका है देखो, 2 + 1 3 + 1 4 + 3 7, और 6 बच रहा है। 6 भी निकाल ही लो, 6 से डिविजिबल है ही, ये 6 से डिविजिबल है ही। तो 1 इंटू 10 की पावर 312 से छोटा होगा, और 2 की पावर 6 यानी कि 64 इंटू 10 की पावर 312 से छोटा होगा। n जो है 1 इंटू 10 की पावर 312 से बड़ा है, और n जो है वो 2 की पावर 6 यानी कि 64 इंटू 10 की पावर 312 से छोटा है। तो ये जो 6th रूट लोगे आप, तो f ऑफ 6 भी आपका 1 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, 8 बन जाएगा। आई थिंक नाउ एवरीवन अंडरस्टूड दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34। फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर n, let Sn be the sum of the digits of n, let k be the number of non negative integers n less than 10 की पावर 10 that satisfy the equation s of n is s of n का होल स्क्वायर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन k is divided by 100। ठीक है, n नॉन नेगेटिव इंटीजर है, Sn जो है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n है। अब ये चूंकि आप लोगों से हम एक्सपेक्टेड हैं कि आप लोगों ने ऑब्वियसली IOQM की पढ़ाई करी है, तो अगर करी है तो आपको ये चमक गया होगा कि s ऑफ n जो है इट इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंस टू n mod 9, राइट। यानी कि वी कैन से दैट s ऑफ n माइनस n इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 9। मतलब सम ऑफ डिजिट जो है वो हमेशा n mod 9 रहती है। अब देखिए अपन इसी को यूज कर लेंगे यहाँ पे बेसिकली कि जो n है वो 10 की पावर 10 से छोटा है, n इज लेस देन और इक्वल टू 10 की पावर 10। मतलब 10 की पावर 10 मतलब समझ रहे हो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने जीरोस हैं। और टोटल डिजिट कितने हैं इसके, 10 जीरो और 1 1, तो टोटल 11 डिजिट नंबर है, 11 डिजिट्स हैं। अगर मैं मैक्सिमम s ऑफ n पता करने की कोशिश करूंगा ना, एटमोस्ट s ऑफ n कितना हो सकता है, तो मैं सारे डिजिट्स को 9 दे दूं, इससे जस्ट छोटा, मतलब n को 10 की पावर 10 से जस्ट छोटा लेना है। फॉर n इक्वल्स टू 999999999, ये मैंने 10 डिजिट, भाई ये 11 डिजिट का नंबर है। अगर इससे मैं एक डिजिट घटाता हूँ, -1 करता हूँ, मतलब इससे जस्ट छोटा नंबर लिखता हूँ, तो वो 999 होगा, और 9 उसमें 10 टाइम्स आ रहा होगा, क्योंकि ये 11 डिजिट है, तो 9 विल अकर 10 टाइम्स, राइट। तो जो मैक्सिमम s ऑफ n है, मैक्सिमम s ऑफ n वो हो जाएगा 9 इंटू 10, दैट इज 90। तो s ऑफ n की मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई है बच्चों, बाउंड पता चल गया है। फिर वो कह रहा है कि जो s ऑफ n है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब s ऑफ n का ही परफेक्ट स्क्वायर है, बट एटलीस्ट ये तो पता चला ना कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि भाई 0 से 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं,
वो अपन पता लगा लेते हैं। तो एस ऑफ एन की पॉसिबल वैल्यूज पता चल जाएगी बेसिकली, जैसे 0, 1, 4 क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं एस ऑफ एन की, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 36 के बाद 49, 64, 81, बस ये पॉसिबल वैल्यूज है। तो इनमें से अपन चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू वर्क कर रही है, कौन सी वैल्यू वर्क नहीं कर रही है। तो अगर आप एस ऑफ एन को 0 ले लेते हो तो एस ऑफ एन भी 0 आ जाता है, मतलब पॉसिबल है ना। अगर एस ऑफ एन 0 ले लेते हो, आप ऐसे वेरीफाई करोगे ना, जैसे 0 तो खैर बहुत सिंपल सा केस हो गया, बट फिर भी आप देखो कि अगर एस ऑफ एन 0 है तो एस ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 का ही डिजिट्स का सम वो भी 0 है, तो वो 0 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो 0 इज फाइन। 1 के लिए देखो, अगर एस ऑफ एन 1 लेते हो आप, एस ऑफ एन अगर 1 है तो एस ऑफ 1 भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, एंड 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो ये भी फाइन है। अगर आप 4 ले लेते हो, अगर आप 4 को चेक करते हो, मान लीजिए एस ऑफ 4, एस ऑफ एन टू बी 4, then s of n will be what, s of 4 which is 4, मतलब sum of digits of 4। तो क्या s of n के स्क्वायर के बराबर आया, नहीं आया ना, तो यानी कि 4 रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप 9, 16 सब रिजेक्ट हो जाएंगे बच्चों। कहाँ गया, कुछ हुआ, जो भी ये देखा जाएगा। तो ये सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे और 81 बच जाएगा। 81 में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 s of n equals to 81, s of n will be what, s of 81, and sum of digits of 81 is 9, and 9 और 81 is what, 9 square। यहां देखो ये आ गया ना कि s of n is coming out to be s of means ये वाला कंडीशन आ गया ना, s of n का स्क्वायर जो है वो s of n आ गया इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में फॉर दिस 81। तो कुल मिला के मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि एस ऑफ एन की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0, 1 और 81। अब इससे क्वेश्चन में मतलब अब कुछ ज्यादा खास बचा नहीं है बच्चों, अब ये खत्म है क्वेश्चन। कि अगर आपने ये चमक गया आपको कि एस ऑफ एन कैन बी आइदर 0 और 1 और 81, तो अब ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, अपन एक एक करके केसेस चेक कर लेते हैं। फॉर s of n equals to 0, n equals to 0, only one number. For s of n equals to 1, n will be what? n क्या क्या नंबर हो सकता है, जो नंबर है ना आपका वो उसने बोला है 10 की पावर 10 से छोटा है, तो सम ऑफ डिजिट 1 कैसे बनती है बच्चों, अगर आप सारे डिजिट्स 0 रख के और एक नंबर 1 रख लो, तो यानी कि इसमें नंबर क्या क्या बनेगा, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 अप टू 10 की पावर 10। ये सारे नंबर्स हुए हैं जिनका डिजिट्स का सम 1 आ रहा है, क्योंकि आपने सारे डिजिट्स 0 रख दिया, बस 1 को छोड़ दिया, 1 को लीडिंग डिजिट बनाया, बाकी सबको 0 रखा। तो ये टोटल कितने हो गए, ये 0 से 10 तक 11 नंबर हो गए, 11 नंबर्स आर देयर। 1 नंबर ये आ गया, 11 नंबर ये आ गए, टोटल 12 हो चुके हैं अभी तक। अब बाकी की बात करते हैं। फॉर s ऑफ n इक्वल्स 81, तो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं अगर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n 81 बनाना है। अब ये बेसिकली अब ऐसे तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, कितना लिखना शुरू करेंगे ना, बहुत सारे केसेस बनेंगे क्योंकि डिजिट्स तो 11 डिजिट का नंबर तक जा सकते हैं अपन, मैक्सिमम आप 99999 को 81 तक ले जा सकते हो। तो आप सम ऑफ डिजिट ऑफ n 81 लेके जा रहे हो, तो कितने तरीकों से ये काम किया जा सकता है, बेसिकली अपन को उस पर वर्कआउट करना है, राइट। तो आप इसको ऐसे समझिए कि वी हैव अच्छा 10 की पावर 10 को तो अपन स्किप कर सकते हैं, उसमें सम ऑफ डिजिट 81 आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि वो तो 1 आ रहा है उसका सम ऑफ डिजिट। तो उससे छोटे वाले नंबरों की बात करते हैं। तो उससे छोटे वाले, क्योंकि वो 11 डिजिट का नंबर है 10 की पावर 10, तो उससे जस्ट छोटा वाला नंबर 10 डिजिट का नंबर है। तो अपन मान लेते हैं कि लेट डिजिट्स भी x1 x2 x3 x1 x2 x3 अप टू x10। तो अब ये क्वेश्चन अगर आपको चमक जाए बच्चों, तो ये बेगर आ गया,
रोहन प्रिया, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत सही एस्टिमेशन किया है तुमने कि अब ये क्वेश्चन बन गया बेगर्स एंड कॉइन का। फैंटास्टिक यार, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन बच्चों, दिल खुश हो गया। सो नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स अ बेगर्स एंड कॉइन प्रॉब्लम because there are 81 coins and we have to distribute them amongst these beggars. But now there is one problem. One problem is that ki the maximum value of xi is can be what? 9, because they are the digits. So what best we can do in this problem is, मान लेते हैं कि let 9 minus xi some yi, 9 minus xi को हम yi ले लेते हैं बच्चों। So ये बन जाएगा 9 minus y1, 9 minus y2 up to 9 minus y10, this is 81. So this 9 is coming how many times? 10 times. So this is 90 minus y1 plus y2 up to y10, this is 81. So from here we can write that y1 plus y2 up to y10, this is 9. Now this is more convenient for us actually now, because now there is no upper limit. And the bestest thing, the beautiful thing is that कि इसका सबका सम ही 9 आ रहा है, तो क्या ही वैल्यू 9 से बड़ी हो रही होगी अभी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, राइट। तो चूंकि यहाँ पे ये बाउंडेशन थी तो अपन ने बेगर्स एंड कॉइन डायरेक्टली नहीं लगा पा रहे थे, फिर हमको मल्टीनोमियल थ्योरम लगाना पड़ता। बट मल्टीनोमियल थ्योरम इसमें हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट की जा सकती है बेगर्स एंड कॉइन में ही, तो ये कन्वर्ट हो गई है। अब आप यहाँ पे y इसको 0 1 कुछ भी दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है, इसको 0 दे दो, इसको 0 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली इन सबका सम 9 बनाना है अपन को। तो देयर आर 10 बेगर्स, देयर आर 9 कॉइंस, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस? सो 9 plus 10 minus 1c, 10 minus 1, which is 18c 9. So our answer will come out to be what? 12 तो ये हो ही गए थे, 11 और 1 12, so 12 plus 18c 9, ये हमारा कुल मिला के आंसर आएगा या क्या आएगा वो देख लेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन k इज डिवाइडेड बाय 1000, बेसिकली k आ जाएगा। ये आंसर तो नहीं आएगा, k आ जाएगा, फिर तो आप उसके बाद की कहानी खुद से कर पाएंगे, राइट। बोलो बच्चों, ये चमक गया क्या? एवरीवन गॉट इट? चमक गया तो उड़ान लिख दीजिए तुरंत। उड़ाने बच्चों, उड़ाने, कम ऑन। अच्छा आद्या, इसको अगर आपने जनरेटिंग फंक्शन से किया होगा ऑब्वियसली बहुत ही गंदा बन गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि x की पावर 0, x की पावर 1 अप टू x की पावर 9 की होल पावर पता नहीं कितना 10 होगा या तो, और फिर उसको जनरेटिंग से सॉल्व करना, तो खतरनाक हो गया होगा वो क्वेश्चन। उड़ान, ओके, वेरी गुड। तो ये थोड़ी सी कलाकारी करी जा सकती है इसमें टू अवॉइड दैट जनरेटिंग फंक्शन थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आई थिंक ये सभी का क्लियर है, सबका बहुत सारा उड़ान आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट s be the sum of all positive integers n such that 3/5 of the positive divisors of n are multiples of 6 and n has no prime divisors greater than 3। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये कहता है कि n के कोई भी 3 से बड़े प्राइम डिविजर्स है ही नहीं, तो यानी कि नंबर ऐसा होगा 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b की फॉर्म का होगा। वो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव सच दैट 3/5 ऑफ द पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ n, तो इसके टोटल डिविजर्स कितने हो जाएंगे? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1, ये टोटल डिविजर्स, और इसका 3/5 वो इक्वल है किसके? ऑफ द पॉजिटिव ऑफ n आर मल्टीपल्स ऑफ 6। अच्छा, मल्टीपल्स ऑफ 6 बनाने के लिए कितने डिविजर्स होंगे बच्चों? ये चमक जाए तो बताना। देखो 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b है, तो 2 की पावर a को वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर a, एंड सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 अप टू 3 की पावर b। अब मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर है 6 से डिविजिबल हो। 6 से डिविजिबल होने के लिए मैं 2 की पावर 0 नहीं ले सकता, 3 की पावर 0 नहीं ले सकता। I would have to avoid 2 की पावर 0 and 3 की पावर 0, right? Then we will be left with how many numbers? We will be left with a numbers and we will be left with b numbers. So total divisors which are divisible by 6 will be ab, right? These are a and these are b. So ab are the numbers which are divisible by 6, and it is saying that 3/5 of this is ab. So now it is क्या बोलते हैं उसको, Siemens favorite factoring trick, SFFT। अब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। So 3
टाइम्स ऑफ AB प्लस A प्लस B प्लस 1 इज 5AB। इसको आप सॉल्व कर लेना या पूरा करना है इसको भी बता दो। थोड़ा फैक्टर करके बता देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। A कॉमन 2B माइनस 3, तो यहाँ पे मेरे को 2B रखना है तो -3/2 कॉमन ले लेंगे तो 2B माइनस 3। तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे 9/2 एक्स्ट्रा आ गया तो 3 + 9/2 कर दिया। और इसका फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 2B माइनस 3 2A माइनस 3, सो 2A माइनस 3 इंटू 2B माइनस 3, और ये जो नीचे वाला 2 है ना वो उस 2 को काट देगा, लेकिन वो पहले एलसीएम ले लेना। तो 6 + 9 15/2, तो 2 भी गायब हो जाएगा, ये 15 बनेगा। अब 4 केसेस बना लो, एक तो 15 1 5 3 3 5 1 15। इससे सॉल्व करके ए और बी के वैल्यूज आएंगे और विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज राइट डाउन उड़ान इफ इट इज अंडरस्टूड, एंड if you have not understood please write down ban. Yeah, it's just a calculation, now you can do it easily. Got it everyone? चलें आगे। यार ज्योमेट्री शीट बेटा बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्यों नहीं मिली मुझे पता नहीं। ज्योमेट्री शीट प्लीज करो बात एक बार। ओके For any natural number n expressed in base 10, let S n denote the sum of all digits of n. Find sum of all natural numbers n such that n cube is 8 Sn cube plus 6n Sn plus 1. ऐसे 50 नहीं आ रहा क्या किसी को समझ में? मतलब नहीं भी आ रहा तो भी क्या दिक्कत है ना, नाम है, नाम में क्या रखा है बच्चों, तरीका पता होना चाहिए ना। तो वो ए और बी वाला टर्म दिखा तो देखते ही चमक गया कि ऐसे 50 लगेगा। और कब लगता है, मतलब ये फैक्टराइजेशन हम कब करते हैं, जब सामने इंटीजर्स हो, अदरवाइज तो क्या ही फायदा है। नेक्स्ट, अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली वी हैव टू डील विद दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऑब्वियसली नंबर थ्योरी जहाँ इन्वॉल्व हो जाती है बहुत, वी हैव टू केयरफुली डील विद द नंबर्स, राइट। नंबर्स समटाइम्स नंबर्स लुक्स वेरी इनोसेंट, यू नो, नंबर बहुत इनोसेंट सा लगता है भाई साहब, लेकिन उसके पीछे ज़बरदस्त सा एक लैंड माइन छुपा हुआ होता है। तो बहुत केयरफुली वी हैव टू मूव अहेड। बहुत ज़बरदस्त बम फूटता है फिर अगर थोड़ा सा भी हमने मिस इंटरप्रेट कर लिया। ये क्वेश्चन भी देखो ऐसा लिखा जा सकता है क्या, देखो n का क्यूब प्लस -2 टाइम्स s ऑफ n का होल क्यूब ये देख के आपको थोड़ा सा कुछ याद आ जाएगा, बचपन की यादें आ जाएंगी कि हाँ ऐसा कुछ बचपन में देखा है कि कुछ तो होता है ऐसा। n क्यूब प्लस -2 ऑफ s ऑफ n का होल क्यूब प्लस -1 का होल क्यूब -3 इंटू n इंटू -2 s ऑफ n इंटू -1। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना ये वाली, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देख लो ध्यान से। ये n क्यूब, ये -8 क्यूब, ये -1 और माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस, तो यानी कि -6 s ऑफ n, n s ऑफ n, ये वाली सेम इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब है कि ये क्या फॉर्म बन गया पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 होता है तो क्या होता है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या फिर a इक्वल्स बी इक्वल्स सी हो जाए। तो n -2 s ऑफ n -1 0 हो जाए या फिर a इक्वल्स बी इक्वल्स सी हो जाए। लेकिन अगर आप इसको इक्वल करते हो तो n इक्वल्स टू -2 ऑफ s ऑफ n इक्वल्स टू -1, तो n इक्वल्स टू -1 होगा नहीं क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाला केस वी कैन डायरेक्टली स्किप, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है ना, अदरवाइज n को -1 होना पड़ जाएगा। हाँ देखो 7th में पढ़ा था अपन ने, ये बच्चों को याद भी आ रहा है कि हाँ सर ऐसा कोई तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से वी गोट व्हाट, n इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ s ऑफ n प्लस 1। अच्छा वापिस से वो n माइनस एस ऑफ n को यूज कर सकते हैं अपन, यहाँ पे भी देखो यहाँ से वन मोर इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट दैट n माइनस एस ऑफ n इज s ऑफ n प्लस 1।
Now this thing is 0 mod 9, right? LHS is 0 mod 9, so RHS should also be 0 mod 9. So S of n plus 1 should be 0 mod 9. तो एक बात तो ये चमक गई, S of n plus 1 should be 0 mod 9. तो S of n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? अच्छा, ये इसका बाउंड भी निकाला जा सकता है बच्चों. अगर इफ n इज ए 3 डिजिट नंबर, अगर n 3 डिजिट का नंबर हुआ तो ये जो n जो है ना 2 ऑफ s of n plus 1 दे रखा है. सो n विच इज 2 s of n plus 1 इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू, अगर n 3 डिजिट का नंबर है, अगर n 3 डिजिट का नंबर है तो s of n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ s of n 9 plus 9 plus 9 27, और 27 इंटू 2 क्या हो सकता है? 54, और 54 प्लस 1 55. तो n विल बी लेस देन 55. मतलब n की मैक्सिमम, अगर n एक 3 डिजिट का नंबर है तो उसमें s of n की मैक्सिमम वैल्यू 27 हो सकती है, मगर n जो कि 2 ऑफ s of n प्लस 1 है तो n की मैक्सिमम वैल्यू 55 आ रही है, बट n तो 3 डिजिट का नंबर था और ये 55 आ जा रहा है. तो यहाँ पे खेल खत्म हो गया, नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर n हैज टू बी ए 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर. ऑलराइट, तो n के बारे में ये बात चमक गई. आगे देखते हैं और क्या क्या चमक रहा है कि अच्छा, फॉर ए 2 डिजिट नंबर ऑल्सो, फॉर ए 2 डिजिट नंबर n is 2 s of n plus 1, n is 2 s of n plus 1. So when you take a 2 digit number, the maximum value of the digit sum you can get is 18, and 18 2s are 36 plus 1 37. For a 2 digit number the n can go till 37 only. ये possibility है, right? और 1 digit number तो चलो जो है वो है ही. तो अपन को ऐसा नंबर सोचना है जिसमें this s of n plus 1 becomes 0 mod 9. तो s of n की पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है बच्चों यहां से? तो s of n की पॉसिबल वैल्यू जो है कैन बी 8 और 17, 8 और 17. इसके अलावा और कुछ आ सकती है क्या बच्चों? ये देख लो आप. इसके अलावा और कुछ आ सकती है क्या? सम ऑफ डिजिट ऑफ n शुड बी 8 और 17, क्योंकि 8 प्लस 1 9, 0 mod 9 हो जाएगा, 17 प्लस 1, और s ऑफ n मैंने बता ही दिया कि यही पॉसिबल वैल्यू है s ऑफ n की, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n व्हेन वी आर डीलिंग विद अ 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट का नंबर है ना, तो सम ऑफ डिजिट ऑफ n क्या ही हो सकता है? मैक्सिमम 18 हो सकता है ना. तो अपन ने 8 और 17 पे रोक दिया. अच्छा, 17 के लिए भी देखो, अगर इफ s ऑफ n इज 17, इफ s ऑफ n इज 17, तो 2 डिजिट का नंबर जिसका डिजिट्स का सम 17 आ जाए, ऐसे दो नंबर अपने को पता भी है, क्योंकि अगर 9 प्लस 9 करें तो 18 होता है, तो वो एक ही नंबर है 99, लेकिन 17 का सम वाले दो नंबर हैं. तो n क्या क्या हो सकता है? या तो 98 या 89, बट बोथ विल बी डिस्कार्डेड, क्योंकि हमें चाहिए क्या? हमने यहाँ पे ये कर लिया ना कि 37 से छोटे भी होना, n का वैल्यू 37 से भी छोटा होना चाहिए, मगर ये तो 37 से बड़े दो नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 17 भी गायब हो गया बच्चों. सो ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ s ऑफ n इज 8. तो s ऑफ n की एक ही पॉसिबल वैल्यू बचती है बच्चों, 8. अगर 8 पे बात करते हैं तो क्या n क्या हो सकता है? देन n कैन बी व्हाट? n कैन बी सम ऑफ डिजिट 18 आने का तरीका क्या है? 17 और 35, सही है क्या? 35. देखो, तो n की वैल्यू जो है वो 17 और 35 आ सकती है. तो बस हो गया काम, हो गया काम बच्चों, अब खत्म हो गया. अब 17 और 35 में भी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों काम कर रही है. तो चेक फॉर n इक्वल्स टू 35. एक बार n इक्वल्स टू 35 को चेक करके देखते हैं. तो s ऑफ n क्या आ जाएगा? 8.
हमारी इक्वेशन क्या है, जो n है वो 2sn+1 है, n जो है वो 2 टाइम्स ऑफ s ऑफ n+1 है। कैसा हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ 8+1 जो कि 16 + 1 17 जो कि 35 नहीं है, तो n = 35 भी डिस्कार्डेड, इसको डिस्कार्ड कर देंगे अपन। और अगर अपन बात करते हैं n = 17, तो आपका 2 टाइम्स s ऑफ n+1 हो जाएगा 8 × 17 बनता है बच्चों, ये अपना एक्सेप्टेड है। सो कुल मिला के इस पूरे इक्वेशन का जो n है वो एक ही है, जो कि है 17, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए हम लोग जब यहाँ पे बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं ना, तो हम लोग एक एक बात एक्सप्लेन करनी पड़ती है हमको, कि कोई बच्चे से कोई पर्टिकुलर चीज़ मिस ना हो जाए, उसको कोई एक पर्टिकुलर बात नहीं समझ में आए, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा समय लगता है। हम लोग हर एक बात, हर एक एंगल पे बात करते हैं, हम लोग कुछ भी चीज़ मिस नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, जब आप एग्जाम्स में सॉल्व करोगे, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में सारी कैलकुलेशंस हो रखी होती है। आपको तो पेन डाउन करना होती है, काम की बातें, मोटी बातें। आधा काम आपका दिमाग करता है, आधा काम आपका पेन करता है। तो आपको ये प्रैक्टिस ऐसी ही रखनी है कि आपको ये सवाल 4 मिनट 5 मिनट में करना है। हम लोग अगर इसको 7 मिनट 8 मिनट में कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वी वांट टू कि हर एक एंगल से आपको पूरा आइडिया दे पाए, मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आपकी मिस ना हो। तो हम आपको हर एक एंगल से इसमें हम कोशिश करते हैं कि समझा पाएं। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स गो टू अनदर प्रॉब्लम। डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन द क्वांटिटी बिलो इज डिवाइडेड बाय 61। सो देखो बच्चों, ये 1 1 + 2 1 + 2 + 3 अप टू 1 + 2 + 3 अप टू 59 बेसिकली क्या है, 1 + 2 क्या होता है बच्चों, n × n+1/2, 1 × 2/2, 3 × 4/2, 4 × 5/2 अप टू 59 × 60/2। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें 61 से डिवाइड करना है, राइट। तो देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 1 2 3 4 अप टू 59, तो न्यूमरेटर में बन रहा है 59 का फैक्टोरियल, फिर 2 3 4 5 अप टू 60, और 1 तो हवा में रहता ही है वैसे भी, तो 60 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय देखो 1 से लेकर के हम 59 तक जा रहे हैं। 1 से 59 तक जा रहे हैं, तो 2 कितनी बार आ रहा होगा, 2 की बार 59 आ रहा होगा बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस नंबर को 61 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आ रहा है, ये अपन को पता लगाना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए अगर मैं ऊपर नीचे एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो मेरा जो नंबर है ना, ये बन जाएगा 2 × 59 फैक्टोरियल × 60 फैक्टोरियल बाय 2 की पावर 60, ये नंबर बन जाएगा, राइट। अब ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एक ही लाइन में। विल्सन आ गया क्या, पता नहीं सर। हाँ, अब इस बार इस क्वेश्चन में विल्सन भी आया, फॉर्मेट भी आया, एक ही क्वेश्चन में दोनों भाई आए। देखो कैसे। 2 की पावर 60 के बारे में आप जानते हैं क्या। 2 की पावर 60 को यू कैन राइट 1 mod 61 बाय फॉर्मेट्स थ्योरम, बिकॉज 2 and 61 both are co-prime, एंड 60 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो -1 mod 61 बाय विल्सन्स थ्योरम, एंड 59 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 1 mod 61 अगेन बाय विल्सन्स थ्योरम। तो यहां पे तो लग गई विल्सन्स और यहां लग गया फॉर्मेट्स। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये जो है ये 1 mod 61 है, ये -1 mod 61 है, ये 1 mod 61 है, तो ओवरऑल ये -1 mod 61 हो गया, तो ओवरऑल ये -2 mod 61 हो गया। -2 mod 61 का मतलब क्या हो गया बच्चों, -2 mod 61 का मतलब हो गया 59 mod 61। सो दिस थिंग इज -2 mod 61 एंड विच इज इक्वल टू 59 mod 61। और आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि 61 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों 59। बच्चों चमका कि नहीं चमका, ईमानदारी से बताओ। किसी के मन में ऐसा थॉट भी आ रहा हो कि सर ये तो आपने ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया 2 की 61 से, नीचे वाले को भी डिवाइड कर दिया 61 से, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे रिमाइंडर निकाल रहे हो? तो लॉजिक बच्चों सिंपल है, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है ना, डिनोमिनेटर से पूरी तरह डिविजिबल है, पूरी तरह डिविजिबल है। क्यों बच्चों? क्योंकि
ये जो भी नंबर होते हैं ना 1 + 2 + 3 अप टू n, ये ट्रायंगुलर नंबर्स कहा जाता है इनको। ट्रायंगुलर नंबर्स हमेशा इंटीजर होते हैं। ऑल ट्रायंगुलर नंबर्स आर इंटीजर्स, राइट। तो ये जितने भी नंबर मैंने लिखे, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, बस इसको मैंने लिखने का तरीका ऐसे लिखा है ताकि फैक्टोरियल फॉर्म में दिख जाए, बट अल्टीमेटली है वो इंटीजर ही। अब आप समझिए कि ये जो a है वो b से पूरी तरह डिविजिबल है। मैं आपको इसका लॉजिक भी समझाता हूं। जो a/b है ना वो पूरी तरीके से इंटीजर है, मान लेते हैं उसका वैल्यू कुछ p है। दिस थिंग इज कंप्लीटली डिविजिबल, ये पूरी तरीके से एक p में कन्वर्ट होगा बच्चों। अभी दिख नहीं रहा है लेकिन कट जाएगा ना, 60 फैक्टोरियल और 59 फैक्टोरियल में 2 की पावर्स आएंगी, वो सारी गायब हो जाएंगी। तो अगर ये पूरी तरीके से कट जाएगा तो बेसिकली क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू bp। बात समझ में आई? तो ये एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस बन गया ना। अगर आप मॉड 61 लेते हो दोनों तरफ तो a मॉड 61 और इधर bp मॉड 61, तो p जो है मॉड 61 पे 1 का रिमाइंडर दे रहा है। p क्या है आपका, मतलब इसका वैल्यू वो ही अपने को निकालना है, मगर ये जो b है ये 1 का रिमाइंडर दे रहा है। सो b इज 1 मॉड 61 एंड a अपन ने निकाल लिया 59। सो 59 मॉड 61 is p mod 61. So basically this p is 59. बच्चों देखिए मैं हर एक एंगल कोशिश करता हूं कि आपको चमके, और अगर नहीं चमक रहा है तो आपका दिमाग फिर सही जगह पे नहीं लगा हुआ है। आपके मन में थॉट आना चाहिए था कि सर आपने ऐसा कैसे कर दिया कि जब आप इसको 61 से डिवाइड कर रहे हो तो आपने न्यूमरेटर का अलग से रिमाइंडर निकाल लिया, डिनोमिनेटर का अलग से रिमाइंडर निकाल लिया और फिर आपने कंक्लूजन दे दिया। तो बच्चों ये चमकना चाहिए आपके दिमाग में कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंटीजर नंबर था तो हमने इस तरीके से करा। मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। उड़ान लिख करके बच्चों तुरंत बता दीजिएगा। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ ऑल ट्रिपल्स xpn ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट p इज ए प्राइम एंड 2x into x plus 5 दिस थिंग इज दिस इक्वेशन इज ट्रू। ठीक है, या डिनोमिनेटर के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि वो पूरी तरीके से उसको डिवाइड कर रहा है, राइट। चलिए आगे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो p की पावर n इज 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x प्लस 3। मतलब मैंने p की पावर n को अलग कर दिया और इसमें से इसको घटा दिया तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है ना, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। सो 2x कॉमन x प्लस 3, 1 कॉमन x प्लस 3। सो फाइनली बच्चों दो फंक्शन आपका बन रहा है वो ये 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। ये आपका p की पावर n का वैल्यू आया। अब क्वेश्चन का लॉजिक देखना बच्चों। एक एक क्वेश्चन मैंने बोला ना, एक एक क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही क्लासिक सिलेक्शन है, बहुत ही क्लासिक सवाल है और बहुत ध्यान से सुनना मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई किया है। दिस द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म्स इज इक्वल टू p की पावर n। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक 1 बन जाए, बट वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दिस xpn ऑल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब ये भी 1 से बड़ा होगा और ये भी 1 से बड़ा होगा। ये दोनों 1 से बड़े नंबर्स हैं, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट p की पावर n है। इसका मतलब पता है क्या है कि 2x प्लस 1 कुछ p की पावर a होगा। सो आई कैन राइट 2x प्लस 1 विल बी सम p की पावर a एंड x प्लस 3 टू बी सम p की पावर b। ये मुझे इस तरीके से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा बच्चों। मैं किसी एक को 1 नहीं ले सकता यहाँ पे। क्यों नहीं ले सकता? मैंने लॉजिक बताया। तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में ब्रेक डाउन होकर के फिर इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा मतलब a प्लस बी मेरा n हो जाएगा, a प्लस बी विल बी n। तो अब क्या किया जाए, इन दोनों को ऑब्जर्व करके कैसे पता लगाया जाए? तो बच्चों यहाँ पे अब देखिए अपन बहुत ही क्लासिक ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम लोग जीसीडी की हेल्प लेंगे। जीसीडी ऑफ 2x प्लस 1 कोमा x प्लस 3, इन दोनों का कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर जीसीडी ऑफ a कोमा b निकालना है तो जीसीडी ऑफ a कोमा b इज इक्वल इनटू जीसीडी ऑफ a माइनस b कोमा b। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो दिस इज इक्वल इनटू व्हाट, जीसीडी ऑफ x माइनस 2 कोमा x प्लस 3। ये वाली बात चमकी क्या बच्चों? जीसीडी ऑफ
जी सी डी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल इन टू जी सी डी ऑफ ए माइनस बी कोमा बी, दोनों एक ही बात होती है, या ए माइनस बी कोमा ए भी लिख सकते हैं वहां पे हम। तो ये आया, और अब इन दोनों का भी डिफरेंस लेकर के देखो, दिस इज इक्वल इन टू जी सी डी ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू कर दो, एक्स माइनस टू, तो एक्स से एक्स कट जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो जी सी डी ऑफ 5 कोमा एक्स प्लस थ्री। इससे पता है बच्चों क्या चमक गया, ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप हो गया इस क्वेश्चन के लिए, जबरदस्त स्टेप हो गया बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन अब यही खत्म हो जाएगा, अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। उससे अब हमको ये समझ में आ गया कि इन दोनों नंबर्स का 2x+1 और x+3 का जो जीसीडी है वो 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, और ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका मतलब दो ही केसेस बनेंगे कि ये 5 की कुछ पावर्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए। मतलब मैं दिखाता हूं आपको केसेस लेकर के, आप लोग यहां तक नोट कर लो पहले, तो एक तो आगे फिर बढ़ते हैं अपन। चलिए नोट करिए एक बार पहले। -5 होना चाहिए बेटा, साइन की यहाँ पे कोई मायने नहीं रख रहे आप, मतलब जीसीडी ऑफ ए कोमा बी, जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कोमा बी भी होता है, जीसीडी ऑफ बी माइनस ए कोमा बी भी होता है ना, वो तो मतलब साइन डज नॉट मैटर ना, इसमें हाईएस्ट कॉमन डिविजन हम पता कर रहे हैं। तो आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर, सो वी कैन क्लेम दैट जीसीडी ऑफ 2x+1 कोमा x+3, जीसीडी ऑफ 2x+1 कोमा x+3 should be 1 और 5। so this is the conclusion बच्चों, ये कंक्लूजन आ गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि अगर देखिए अपन एक केस ले लेते हैं कि अगर जीसीडी 5 है, अगर जीसीडी 5 है तो फिर ए और बी में से किसी भी एक जो मिनिमम वैल्यू होगी ए और बी की वो 1 होनी पड़ेगी, राइट। मैं केसेस लेकर के दिखाता हूं। केस 1, इफ जीसीडी इज 5 then minimum of AB has to be 1, क्योंकि अगर ये 1 नहीं हुआ, अगर मान लो ये कुछ 2 हो गया, या दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 होगी मिनिमम वैल्यू, मान लो ये 2 है ये 3 है, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 क्यूब, तो फिर इन दोनों का जीसीडी 5 होना फिर तो अलग हो जाएगा ना। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों का मिनिमम वैल्यू ए और बी का मिनिमम वैल्यू 1 होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो बच्चों केसेस क्या बन जाएंगे, देखो जीसीडी अगर 5 ले लेते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा पी का वैल्यू 5 और 2x+1 और क्या टर्म था दूसरा, 2x+1 और x+3, इन दोनों में से कोई ना कोई एक 5 होगा। बट दोनों ही केस में पता क्या हो रहा है कि दोनों ही केस में x का वैल्यू 2 आ रहा है, यहां से भी x का वैल्यू 2 आ रहा है और वहां से भी x का वैल्यू 2 आ रहा है। तो जब आप जीसीडी 5 ले रहे हो तो आपका x का वैल्यू 2 आ जा रहा है, तो उस केस में आपका x, p, n क्या बन जाएगा, 2, 5, 2। और केस 2 ले लेना कि अगर जीसीडी आपने ले लिया 1 तो मिनिमम ऑफ ए कोमा बी बच्चों 0 हो जाएगा। इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा वो 0 होना पड़ेगा, p की पावर 0, ये तो 1 बन जाएगा और ये फिर 5 की कुछ मतलब वो p की कोई पावर बन जाएगा। तो उस सिचुएशन में बच्चों तो इस केस में किसी एक को 1 होना पड़ेगा, तो 2x+1 अगर 1 हो जाए या फिर x+3 अगर 1 हो जाए तो यहां से x 0 आ जाएगा और यहां से x जो है वो -2 आ जाएगा, जो कि हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगर x 0 आ जाता है तो चल पाएगा क्या, चल जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि x = 0 से p की पावर n 3 आ जाएगा, तो p 3 आ जाएगा, तो यहां से x p n क्या आ जाएगा 0, 3 और n कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0, 3, 1। तो बच्चों दो पेयर आ गए, 2, 5, 2, 0, 3, 1, 2, 5, 2, 0, 3, 1। ये चमक गया होगा मुझे लग रहा है, थोड़ा भारी है बच्चों, मतलब इतना आसान इसे नहीं चमकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 39।
Now this is again a very nice problem. आंसर माइनस में या 3 डिजिट होगा तो कैसे लिखेंगे? तो आंसर आएगा नहीं ना माइनस में और 3 डिजिट में, 2 डिजिट में ही आएगा अगर आएगा तो इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या है कि वी हैव टू फाइंड यूनिक ट्रिपल ऑफ पॉजिटिव प्राइम्स पी क्यू आर. सो पी क्यू आर और प्राइम्स एंड पी लेस देन क्यू लेस देन आर है और ये इक्वेशन दे रखी है. कतई गंदा सवाल है, इतना आसानी से नहीं होना है, बहुत केस वर्क है बच्चों. 5 मार्कर कैटेगरी है बट फिर भी 5 मार्कर मेरे पास और भी खतरनाक थे तो मैंने उनको 5 मार्कर में ही माना और इनको 3 मार्कर में डाला. बट ये या 4 मार्कर कह सकते हैं इसको. तो ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए हम पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr, इसको हम क्या बोल सकते हैं? p प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी. ऑलराइट, इसका मतलब अगर मैं पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब की जगह रख दूं 249 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, तो 249 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस 3pqr इज पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी. तो फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, इसको उधर भेज दो उसको इधर ले आओ तो हमारे पास बचेगा क्या? p प्लस क्यू प्लस आर कॉमन 249 माइनस ऑफ दिस टर्म है ना. तो मैं इसको ऐसा जब इसका माइनस करूंगा तो ये पी क्यू क्यू आर आर पी माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर लिख दूंगा और आर एच इसमें ये 3pqr कर दूंगा. सेवन मार्कर. अब देखो बच्चों ये फाइनली एक अच्छी सी इक्वेशन बन गई. एक्चुअली में मेरा टारगेट ये था कि 2 नंबर्स का फैक्टर करके और मैं आर एच इसमें कोई इंटीजर की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दूं. अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये तो इंटीजर है ही पी क्यू आर. तो अब मैं यहाँ से केसेस उठाना शुरू करूंगा और यही सबसे मुश्किल काम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इतना आसान नहीं है. अब देखिए बच्चों बहुत ऑब्जर्वेशंस करने हैं अपन को, ध्यान से देखिएगा. ये जो p प्लस क्यू प्लस आर है इसके बारे में अपन ये तो बोल सकते हैं ना कि p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो 3 से बड़ा ही होगा क्योंकि पी क्यू आर जो है वो प्राइम्स है और p लेस देन क्यू लेस देन आर है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में. मतलब छोटे से छोटा केस भी लोगे तो 2, 3 और 5 है तो 3 से तो बड़ा ही होगा. इसके अलावा मैं ये भी बोल सकता हूँ ऑल्सो p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो 3p से भी बड़ा होगा. p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो 3p से भी बड़ा होगा ना, क्योंकि p इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू और r और p भी p से बड़े वैल्यू हैं, तो p प्लस क्यू प्लस आर विल बी ग्रेटर देन 3p. ओके, वो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा. सब p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर क्यों नहीं किया? अच्छा ये, हाँ ये स्क्वायर होगा. ओके ओके ठीक है बच्चों, ठीक है. तो p प्लस क्यू प्लस आर 3 से बड़ा होगा, p प्लस क्यू प्लस आर 3p से बड़ा होगा. ये 3p से बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, ये चमक गया. और अपर बाउंड भी देखते हैं बच्चों. देखिए p जो है वो q लेस देन r है, मतलब p लेस देन q लेस देन r है. तो r के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? p इज लेस देन q इज लेस देन r. इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? r के बारे में क्या निकाल सकते हैं? देखो p जो है वो r से छोटा है, q भी r से छोटा है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो p प्लस q जो है वो 2r से छोटा होगा. वो 2r से छोटा होगा. अगर मैं दोनों तरफ r और जोड़ दूं तो p प्लस क्यू प्लस आर वो 3r से छोटा होगा. ये बात चमक रही क्या? देखो p प्लस क्यू प्लस आर 3 से बड़ा होगा, p प्लस क्यू प्लस आर 3p से बड़ा होगा, मगर p प्लस क्यू प्लस आर 3r से छोटा होगा.
अगर अब मुझे कंपैरिजन करना है कि P प्लस क्यू प्लस आर इन में से किसके बराबर हो सकता है, तो ना तो वो 3 के बराबर होगा, ना तो वो 3P के बराबर होगा, ना वो 3R के बराबर होगा। तो एक ऑप्शन तो ये बच रहा है कि 3Q हो सकता है। वो और भी केसेस बनेंगे बेसिकली, बट वो 3Q हो सकता है। तो एक बार अपन 3Q लेकर के देख लेते हैं। सो लेट P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 3Q। तो यहां से विल गेट P प्लस आर इज इक्वल टू 2Q। अब हमारी इक्वेशन पे डाल देते हैं। तो P प्लस क्यू प्लस आर जो है हमने 3Q ले लिया है। तो हमारे केस में अब ये P प्लस क्यू प्लस आर इस 3Q से कट चुका है। तो हमारे पास बचेगा ये वाला टर्म 249 प्लस PQ प्लस QR प्लस RP माइनस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q उड़ चुका है तो बचा है PR, और ये PR भी फाइनली उड़ गया है। तो हमारे पास बचा ये 249 प्लस PQ प्लस QR माइनस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से अगर अपन P प्लस R मतलब Q को कॉमन ले लें, Q को कॉमन ले लें तो P प्लस R आएगा, और P प्लस R क्या है 2Q है, तो ये 2Q स्क्वायर है, 2Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर 249 प्लस 2Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ऐसा कुछ आ रहा है बच्चों, देखो और मैं चाह रहा हूं कि 2 ही वेरिएबल रह जाएं तो ज्यादा बेहतर है। एक और वेरिएबल उड़ा सकते हैं क्या अपन, उड़ा तो सकते हैं, वैसे हम Q को उड़ा देते हैं बेसिकली। यहां से अगर अपन Q को निकालें तो वो आएगा P प्लस R बाई 2, उसको उठा के यहां डाल देते हैं। तो 249 प्लस P प्लस R बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस P स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक बन रही है। तो हमारे पास बचेगा कितना, 249 इंटू 4 250 इंटू 4 1000 होता है, तो 996 प्लस P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PR और माइनस 2P स्क्वायर, नहीं माइनस 4P स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, माइनस 4P स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो आएगा 4R स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन क्या बनती हुई नजर आ रही है, P स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर इज 3P स्क्वायर देन प्लस 3R स्क्वायर और माइनस 996 इज इक्वल टू 2PR। ये इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है बच्चों। अब बच्चों देखो फिर से एक और चमत्कारी ऑब्जर्वेशन, जो बहुत ही जबरदस्त बहुत ही क्लासिक ऑब्जर्वेशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। मतलब यहां तक भी चलो आप पहुंच गए, कैसे कैसे गिड़गिड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए पहुंच गए। आपको ये ऑब्जर्व हुआ कि P प्लस क्यू प्लस आर की रेंजेस ये है, तो P प्लस क्यू, हाँ अभी तो देखिए कितने सारे केसेस हैं, लेकिन मैंने एक ही केस लिया हुआ है क्योंकि इस P प्लस क्यू प्लस आर को मैं कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, 3PR 3QR PQR, कितने ही कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, लेकिन अभी उसमें से मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया है 3Q। वो इसलिए लिया था कि बेसिकली डिग्री बैलेंस बनी रहे, 3Q की डिग्री 1 है और इधर भी डिग्री 1 है P प्लस क्यू प्लस आर की। अदरवाइज अगर मैं PQR ले लेता या PQ ले लेता या QR ले लेता या PR ले लेता तो RH इसकी डिग्री 2 हो जाती, इसकी डिग्री 1 हो जाती, कुछ सिमिट्री बिगड़ जाती। तो लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो केस पॉसिबल नहीं है, वो केस पॉसिबल है, वो हम कंसिडर करेंगे, देखेंगे, बट अभी इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं। तो अब यहां पे आप देखोगे ना, तो LHS जो है वो 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। सो RHS शुड आल्सो बी डिविजिबल बाय 3, राइट? So I can write that this 3 should divide
This is divisible by 3, so 3 should divide 2 PR. Now obviously 3 cannot divide 2, so 3 should divide PR. But in the question it is mentioned that P is the smallest number and R is the maximum value, or R is the greatest prime number and P is the smallest prime number. तो जब हमने ये conclusion निकाला कि 3 should divide PR, so it means directly we can say that P has to be 3 only. Because 3 cannot be, means R cannot be 3, because P is the smaller number than R. तो बच्चों ये देखिए कितना मस्त ऑब्जर्वेशन हुआ. तो P का वैल्यू फिक्स हो चुका है कि 3 ही आएगा. P3 के अलावा कुछ और हो नहीं सकता है. P3 आ चुका है. अब क्वेश्चन देखिए R की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा देखिए P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 332 इज इक्वल्स टू 2 इंटू P इंटू R. ये हमारी इक्वेशन थी. 3 को मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया. अब अगर मैंने P को 3 ले लिया तो ये मेरा कट जाएगा, और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ P को 3, तो R स्क्वायर माइनस 332 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2R. सही है ना, देख लेना बच्चों. तो R स्क्वायर माइनस 2R और माइनस 332 माइनस 9 कितना होता होगा, 323 माइनस 323 इक्वल टू 0. इसका फैक्टराइजेशन देख लो क्या ये आ सकता है. सही होना चाहिए. सही हो गया भाई, सही हो गया. तो 17 और 19 के फैक्टर में ब्रेक डाउन हो जा रहा है. तो इसका मतलब जो R की वैल्यू आ जाएगी, क्या लिखोगे आप इसको, R का R स्क्वायर प्लस 17R माइनस 19R. तो R का वैल्यू 19 आ जाएगा बच्चों. यहां से देखो आया ना चमत्कारी आंसर. R का वैल्यू पूछा था आपसे, तो R का वैल्यू आ गया 19. क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया बच्चों. क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन इसके बाद की कहानी भी इंटरेस्टिंग है. अब वो समय बहुत ज़्यादा होता तो मैं ज़रूर ज़्यादा उसके बारे में बातें करता, लेकिन चूंकि समय थोड़ा सा कम है और बहुत सारा काम करना है. सर, आई एम योर बिग फैन वाचिंग द मैराथन सीरीज सेशन लाइव विथ ऑल एवेंजर्स. ओके, तो अब जो बात मैं नहीं कर पाऊंगा अभी समय के कारण, वो ये है कि you will have to consider the cases when this P plus Q plus R becomes let's say 3P, है ना. मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता भी हूँ. मान लीजिए अगर P plus Q plus R को आपने 3P ले लिया, या आप बोलोगे नहीं सर 3P क्या, PQ ले लो, PQ ले लो, कोई बात नहीं PQ ले लो. तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस बनेंगे, बट ये रिजेक्ट होते चले जाएंगे, है ना. मतलब जैसे आप P plus Q plus R PQ ले लो, मतलब 3 प्राइम नंबर्स का सम पहले 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा हो. ऐसे 2 नंबर सोच सकते हो क्या आप? मैं सोच सकता हूं वैसे. 257 237 नहीं, पी क्यू आर हमें लेस देन भी रखना है ना, उसकी इनइक्वालिटी भी डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए. तो फिर क्या रखोगे अगर आप पी क्यू उठाते हो? तो टू नहीं 357 मुझे लग रहा है काम कर रहा है. 357 17 भी आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा. नहीं 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 3 + 5 + 7 15. अरे आ रहा है भाई, आ रहा है 15 आ रहा है. देखो 3 × 5 = 15 और 3 + 5 + 7 इज ऑल्सो 15. तो इसका मतलब ये फिक्स ही हो गया ना, पी क्यू आर ही फिक्स हो गया कि पी क्यू आर विल बी 357. पी क्यू आर विल बी 357. नाउ व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस बैक इनटू दिस इक्वेशन विल नॉट सेटिस्फाई इट. सो खत्म वो वाला केस. तो ये वाले जो केसेस है ना, आपको इस तरीके से करने होंगे. ये मैं आपके ऊपर छोड़ के जाऊंगा. मतलब कि P + Q + R को PQ ले लिया, तो मैंने आपको बता दिया PQ वाला केस कि PQ अगर आप ले लेते हो तो 357 एक ही ट्रिपलेट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो ओरिजिनल इक्वेशन का में जब आप डालोगे तो 249 नहीं आएगा.
उसी तरीके से कोई बच्चा कह रहा है कि p इक्वल्स टू 3 कैसे लिया, चूंकि LHS 3 से डिविजिबल है तो RHS को भी होना पड़ेगा, तो 3 शुड डिवाइड दिस 2PR, सो 3 शुड डिवाइड दिस PR, बट P शुड बी लेस देन R, राइट। तो 3 जो है वो और वो प्राइम भी है, तो या तो P 3 होगा या तो R 3 होगा, बट P को ही 3 होना पड़ेगा क्योंकि P छोटा है R से, है ना। तो दैट इज द लॉजिक। आई थिंक ये बच्चों चमका आप लोगों को, अगर चमक गया हो तो बच्चों एक प्यारा सा लाइक कर दो और उड़ान लिख दो भर भर के, तो मुझे मजा आ जाए कि भाई ये खतरनाक वाला सवाल आप तक सही लैंड हो गया है, चमक गया आपको। ओके, फैंटास्टिक, बहुत सारा उड़ान आ रखा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर उसके बाद ब्रेक। 2x स्क्वायर माइनस एक्स या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये फटाफट अपन 2 मिनट में खत्म करेंगे बच्चों, क्या आपका ब्रेक का टाइम खराब नहीं होना चाहिए वरना मैं ब्रेक कम कर दूंगा। तो बेसिकली इसमें इनइक्वालिटी लगाते हैं ना अपन कि जी आई एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा एक्स से छोटा होता है। क्वेश्चन ये दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो जी एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स, बट माइनस ऑफ जी एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे माइनस ऑफ जी एफ ऑफ एक्स है, तो जो 5 है वो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जी एफ ऑफ एक्स के बराबर है। जी एफ ऑफ एक्स समझते हैं ना सब लोग, बॉक्स फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, जो आपको समझ में आया वो समझे। तो आई कैन राइट दैट दिस थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स। ये चमका आपको, इस माइनस ऑफ जी एफ ऑफ एक्स को मैंने बोल दिया कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। तो ये एक्स पहले से था और इसको मतलब माइनस से ही रिप्लेस कर दिया और कुछ भी नहीं किया। सो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 टू रूट 5। एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस रूट 5 से रूट 5, तो जी आई एफ ऑफ एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है? देयरफॉर जी आई एफ ऑफ एक्स विल बी माइनस रूट 5 से रूट 5 का मतलब समझ में आ रहा है क्या? रूट 5 का मतलब होता है 2 पॉइंट समथिंग। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं? देखो, व्हाट पॉसिबल वैल्यूज यू कैन गेट। जी आई एफ ऑफ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालिए बच्चों फटाफट। So GF of x can be 0, 1 और 2। बेटा -3, -2, -1, 0, 1, 2 नहीं होगा। मैं इसीलिए पता है मैंने यहाँ पे एक पोज लिया और मैंने पूछा आप लोगों से कि आप लोग बताओ। यहीं पे मात खा गए आप लोग, क्योंकि आपको बोला गया पॉजिटिव सॉल्यूशंस। पॉजिटिव सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो आप -3, -2, -1 लोगे ही नहीं, 0, 1 और 2 लोगे। देखो अभी भी कितने सारे बच्चे -3, -2, -1, 0, 1, 2 ले रहे हैं। Everyone is taking this same range. So basically the GF of x can be 0, 1 or 2 only. Now just calculation आपको करना है। एक बार GF of x को 0 ले लो। पहला केस की GF of x 0 हो जाए तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 5। 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, तो x आ जाएगा √5/2। √5/2 का वैल्यू का GF of x 0 होता है क्या? नहीं होता है। GF of x इज नॉट 0, तो ये डिस्कार्ड कर देंगे अपन। दूसरा केस की GF of x 1 ले लें। GF of x 1 ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 5 टू 10, 40/2। तो अपन अगर 1 प्लस √41/2 ले लें, इसका GF चेक करो, इसका GF 1 आना चाहिए। क्या आ रहा है? √41 इज अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग 6.5 प्लस 1 7.5/2। तो बड़ा वैल्यू आएगा, तो ये तो रहने देते हैं। माइनस वाला भी लेने से कोई मतलब नहीं है।
कैलकुलेशन एक बार देख लेना, 2x² माइनस एक्स माइनस 5 सही है, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 5, सही है। 1 प्लस रूट 41/2 आ रहा होगा बच्चों, चेक करो, लेकिन a नीचे एक 2 हो रहेगा ना, ये वाला a, तो ये 4 हो जाएगा। तो रूट 41 होता है 6 पॉइंट समथिंग, तो 7.5/4 का GIF आई थिंक 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका GIF ऑफ 1 प्लस रूट 41/4 ये 1 ही आ जाता है। तो वी विल कंसिडर द केस। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं था। और तीसरा केस भी चेक कर लेंगे, GIF ऑफ x अगर 2 ले लो, इस केस में 2x² माइनस 2x, 2x² माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4ac, 5 टू 10, तो 40/2 यानी कि 4, तो 2 प्लस माइनस रूट 44/4। इसका चेक करो तो वैल्यू क्या आ रहा है, रूट 44 कहाँ तक जाता है अप्रोक्सीमेटली, वही 6 पॉइंट समथिंग ही जाएगा। This when you can take 2 also common, 2 root 11, तो 1 प्लस रूट 11/2, इसकी वैल्यू चेक कर लो। रूट 11 क्या होता है बच्चों, 3 पॉइंट समथिंग मान ले, 3.2 ले लें, 3.2 प्लस 1 इज 4.2/2 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग का GIF 2 ही आ जाएगा। तो इसका भी GIF 1 प्लस रूट 11/2 का भी GIF 2 ही आ रहा है, तो यानी कि ये भी ले लेंगे। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि लेट द सम ऑफ द पॉजिटिव सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन वेयर GIF x ये, तो फाइंड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो कुल मिला के ये x की वैल्यूज निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, मतलब इन दोनों का सम कर लेना। आंसर आपका क्या बनेगा बच्चों, 1 प्लस रूट 41/4 प्लस 1 प्लस रूट 11/2, इन दोनों को जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, चमका क्या? नाउ अगेन विल हैव ए ब्रेक ऑफ 10 या 15, 10, विल हैव ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स नाउ। इट्स राइट नाउ इट्स 7:33, विल स्टार्ट एट 7:45, 12 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। विल स्टार्ट एग्जैक्टली एट 7:45। सो बच्चों थोड़ा सा ब्रेक, पानी वानी पियो, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करो, क्योंकि लास्ट के 20 सवाल बाउंसर होते ही हैं, आपको पता ही है। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। एक छोटा सा ब्रेक, फिर से मिलते हैं अपन, ओके, सी यू अगेन।
Chalo. Good evening everyone. Let's go through the final leg of this discussion. अगले 10 5 marker questions को we'll try to complete by around 8:45 8:30. Okay, so the question is asking us to find the last two digits. Just a second. Last two digits of the sum of all 4-digit numbers that are equal to the cube of their sum of digits. Now, specifically, if this question asks such a number that is a 3-digit number, then some of you might have solved this question and found the answer to be 512, because 512 is 8 cube and 5 plus 1 plus 2 is equal to 8. So what we need to do is we need to find a number a plus b plus c plus d, the whole cube, which is equal to the number a, b, c, d, the 4-digit number a, b, c, d, and also we require get none of, a should not be equal to 0, the rest of the numbers could be 0, doesn't matter. So what you need to realize is that the smallest such perfect cube, that is a 4-digit number, is the number 1000. 1000 is equal to 10 cube. This is the smallest. And the largest number in this list would be found very easily by calculating 21 cube. So 21 cube would be 9261. You can do this calculation. The next cube number 22 cube would be 11 cube times 8. 11 cube is 1331, and then from there you can get that the next number, next perfect cube is going to be a 5-digit number. Alright, so this is the largest number. So what we can do is we can actually write down all the numbers from 10 to 21 perfect cubes and then check if the sum of their digits matches the number or not. But there is a faster way over here. Notice that the number ABCD, the number ABCD mod 9 is exactly equal to the sum of their digits, A plus B plus C plus D. This is the value of n that we were looking for. Let's just call this n cube for the moment. The number n cube is ABCD in the digit form. This, when we take mod 9, it becomes a plus b plus c plus d, and this is exactly equal to the value n. So basically the value n that we are searching for is such that n cube minus n is equal to 0 mod 9. Hopefully this is clear. The value n is a number from 10 to 21. N belongs to the set 10, 11, 12, all the way up till 21. So all we need to do is we need to find a number n that follows this property. Now n cube minus n is n minus 1 times n plus 1. Hopefully you can factorize n cube minus n into n minus 1, n and n plus 1. These are product of 3 consecutive integers. If this is equal to 0 mod 9, then one of these 3 numbers must be divisible by 9, because all these 3 are co-prime to each other. I mean, effectively any one of them is only divisible by 3. If n is an odd number, then n minus 1 and n plus 1 are not co-prime. They have 2 as a common divisor. But only one of these numbers is divisible by 3, and hence that particular number must be divisible by 9. So the only numbers that work over here are n equal to 17, n equal to 18 and n equal to 19, along with 10, but 10 obviously doesn't work. 10 obviously doesn't work. One second. Doesn't work because 1000 is not 1 cube. For 17, 18 and 19, I'll just quickly write down the results. The cube of 17 cube is equal to 4913. 18 cube is equal to 5832, and finally
19 cube is equal to 6859. See, from here you can see the sum of digits for only the first number is 17. Sum of digits for 18 cube becomes again 18, and sum of digits for 19 cube does not become 19 because 6 plus 8 is 14 plus 5 19 plus 9 becomes 28. So we reject 19 from this list also. Both 17 and 18 cube satisfy our condition. 4913 and 5832. 5832, when they are added, we get 547 here, 10745, and the last two digits of this number is 45. So this is how we can get done with this question. See, this question is a lot of calculation intensive, but you can reduce the calculation intensivity by simply noting that not all of these numbers from 10 to 21 need to be actually calculated. We can further reduce our effort by only having to calculate these three perfect cubes, and then we'll be done. Answer is 45. The next question over here. Hopefully you recall doing this question. S is the set of numbers of this form, where n is an integer and is not a multiple of 3. Now it is really important that you don't treat this as a polynomial. You rather treat this as a product of linear factors, and factorizing this is very, very important to the question, and that reveals a lot about this number. N to the power 5 minus 5n cube plus 4n is divisible by n, so I'll take an n out common. What remains is n to the power 4 minus 5n square plus 4. Now notice this is a pseudo quadratic equation because we can easily replace n square with some x, and we have a quadratic in x. So factorizing this is not really a problem. N times n square minus 4 and n square minus 1. These are the two linear factors in x that we get, where n square is x, and now these themselves can be factorized into n minus 1 can be factorized into n minus 1, n square minus 1 can be factorized into n square n minus 1 and n plus 1. N gets replaced with n over here. N square minus 4 has factors n minus 2 and n plus 2. Effectively, this number is a product of 5 consecutive numbers. Above that, on top of that, we have the condition that n is not a multiple of 3. Hence, for 5 consecutive numbers, if 3 does not divide n, 3 must divide any one among these two. Also, for these 3 consecutive integers, 3 must divide any one number among these 3. So, since n is not divisible by 3, we can use a Sudoku-like logic and state that 3 divides 1. 3 divides 1 among these. See, for 3 consecutive numbers, 3 will divide any one among them. If n is not divisible, either one of these two must be divisible, and since n is not divisible by 3, either one of these two must be divisible. Must be divisible by 3. The second thing that we can conclude from here is, since these are 5 consecutive values, 5 factorial divides the expression. Now, for the sake of convenience, let's just call this f of n. 5 factorial must divide f of n. Now, why is this the case? Notice that this expression f of n is effectively equal to n plus 2 factorial over n minus 3 factorial. Can you see this? N plus 2 factorial upon n minus 3 factorial. Now, n plus 2c5 can be written as n plus 2 factorial over 5 factorial, n plus 2 minus 5, which is n minus 3 factorial. Over here, this denominator has a 5 factorial in it, and this is a combinatorial coefficient, hence it has to be an integer. Hence, the remaining part must be divisible by 5 factorial so that this remains an integer. That is my proof over here for this question, to claim that 5 factorial divides f of n. Also, among these 5 numbers, 2 of them are divisible by 3, right? So, along with f of n being divisible by 5 factorial, we have two conditions. 5 factorial divides f of n,
and 3 square divides f of n. So when we put these two together, we find that LCM of 3 square and 120, which is 5 factorial, divides f of n. This is my final result. Hence 360 divides f of n for all n that is belonging to integers, and 3 does not divide n. Alright, if 3 divides n, then we won't have this condition, and we'll have to stick with the original consideration over here to be 120. Now this is just a proof for the fact that 360 divides all f of n. I cannot stop over here. I need to demonstrate that indeed there is a combination of numbers whose GCD is 360 only. For example, if I put the value n is equal to 4, then the product of numbers I have is 2 times 3 times 4 times 5 times 6, and if you notice, this is 720. So this does not satisfy my requirement to show that 360 is the GCD of all these numbers. I have just mentioned that GCD is a common factor of all these numbers. The GCD will be restricted by making cases. For n equal to 5, notice we have 3 times 4 times 5 times 6 times 7, and this is 7 factorial divided by 2. So this becomes 7 factorial upon 2, which is 7 times 720. One second. Oh, some transcript has started. Okay, fine. Just a minute. Okay. 7 times 720 divided by 2, and this gives us 7 times 360. So for these two numbers, if I compare these two numbers, the greatest common divisor of two values of f of n, which is f4 and f5, gives us GCD of f4 comma f5 is equal to 360. Hopefully this is understood. This is the proof of the fact that 360 is indeed the greatest common divisor of every number in S, and hence the answer is 60. 60 is the last two digits. Okay. Always remember, there is two steps that are part of figuring out whether a number is a maxima or a minima or a GCD over here. GCD is asking us the largest integer. So in a way we are trying to solve a maxima question, and that requires two conditions. One, to show that whatever we have proved, the answer is either this or greater than this, and then demonstrating that this indeed is the number. Your answer is either less than or equal to this. So 360 is the final value that we have to accept. 43rd question, we need to find all n such that n to the power 6 plus n to the power 4 is divisible by 7n plus 1. Okay, yeah, in the previous question someone is asking that what is the, someone is mentioning that for all the values n equal to 1, 2, minus 1, minus 2, since all of these are also integers, for all these values f of n becomes 0. See, that's still not a problem. F of n becoming 0 just gives us the requirement to find, see, the question is basically find GCD of ... f of 2, f of minus 2, f of minus 1, f of how much, 1, f of 2, and then f of 4, and then f of 5, and then so on and so forth. Notice that since all 4 of these values are 0, our calculation is still not affected, because GCD of 0 and a number a is equal to the absolute value of the number a. All numbers divide 0. Hence, if you add to a list of numbers the number 0, the GCD doesn't change. But if you add 1 to the list of numbers, then the GCD automatically goes to 1. Alright, 0 over here is like an identity. If you are adding a 0 to the list of numbers, the GCD remains unchanged. Hence, we can just ignore these 4 values almost as though they were not there. Okay. Coming to the 43rd question, n to the power 6 plus n to the power 4 must be divisible by 7n plus 1. So 7n plus 1 divides n to the power 4 multiplied by n square plus 1.
See, now we need to very skillfully cut this equation into parts that become solvable. So as it is, you might be motivated to actually do polynomial long division and then expect a remainder which you can then solve for 7n plus 1. But the problem with that is the long division will take a long time, and if you are using remainder theorem, then whatever root or how should I put it, whatever remainder, constant remainder that you get will not be integer over here in this case. So you will have to artificially multiply by 7 to the power 6 to make your answer work out. So we'll leave all of that because all that could lead to some error somewhere. What you need to realize over here is that n and n plus 1 are co-prime. Okay, we'll just start at simple stuff. N and n plus 1 are co-prime. Similarly, n and 7n plus 1 are also co-prime. N and 7n plus 1 being co-prime leads us to believe that n and 7n plus 1 share no common factors. Hence, if I raise n to the power 4, 7n plus 1 and n to the power 4 still must not share any prime factors. Is this fine? Since we know that 7n plus 1 and n to the power 4 both are co-prime numbers, I can easily say that 7n plus 1 must divide n square plus 1 only. These two terms don't share any factors at all. So it's almost like I can get rid of this and I can just directly write 7n plus 1 divides n square plus 1. Now all I'll do is I'll multiply this by 49. Effectively the same thing that I could have done earlier also. I could have multiplied by 7 to the power 6 to make this number such that when I divide by 7n plus 1, I get a remainder which is an integer. But here I'll multiply by 49 because the statement still remains fine. 7n plus 1 divides 49n square plus 49, and I'll subtract a 1 and I'll add a 1 to this. Why did I do this? Because 49n square minus 1 is a multiple of 7n plus 1. It's a proper polynomial multiple of 7n plus 1. So what I get is 7n plus 1 divides 7n plus 1 times 7n minus 1 plus 50. And from here I have the result 7n plus 1 divides 50, because I can just remove a multiple of 7n plus 1 from this and I am left with the final result of 50. The factors of 50 that are positive are 1, 2, 5, 10, what else, 25 and 50. So out of these, only the number 50 is of the form 7n plus 1. I am just looking for numbers that are of the form 7n plus 1, and 50 is the only number. And from here, n is equal to 7 or 7n plus 1 is equal to 50 is the only outcome that matters. So sum of all positive integers n is equal to 7 only. So answer equal to 0, 7. Alright. I hope the question was understood. Next question. 44th question requires you to do a lot of arithmetic, but we can resolve that very quickly by using binomial theorem. So see, you don't need to worry about the exponent being 1997. See, this exact question will never come in your paper because 1997 happened around 20 years ago. So the question that would come in the paper is, no sorry, it happened 30 years ago. 1997 ki jagah in the paper it could come out as 2027 or 2026. So it's not a real tough task to calculate 7 to the power 2026 or 2027 also. What I'm going to do is, I'm going to notice that the last two digits of 7, last two digits of powers of 7 are 07, 49, then 343, which leads us to 43, and then 43 or 343 times 7 is 2401, which gives us a 01. So this 01 is the quantity that is actually of interest to me. I can always use 7 to the power 4 as a quick method to reach or to calculate last three digits of
7, or the remainder when I divide by 1000. So 7 to the power 1997 can be rewritten as 7 to the power 4 the whole power 499, because 2000 divided by 4 gives 500 and the number just less than 500 is 499. To this, if I multiply 7, I will get back 7 to the power 1997. Now I already know 7 to the power 4 looks like 2401. It has last two digits as 01. This number, when I want to calculate mod 1000, what I can do is I can replace 7 to the power 4 by 2401 to the power 499 times 7. Now notice over here I can get rid of this 2, because in mod 1000, 2401 and 401 both are equivalent. So this is the result, which is further equal to 400 plus 1 to the power 499 times 7 mod 1000. Now at this point I am going to use binomial theorem in order to expand this particular term. 400 plus 1 to the power 499 will have lots of terms that contain large powers of 400. See, those numbers will all be divisible by 1000, so I can ignore them. Only the last few terms will be of complete importance. So the last term in this list, when I solve using binomial theorem, will be 1 to the power 499, and the term before it will be 499c1 times 400 times 1 to the power 498, but I'll just leave that. 1 to the power 498 times 499 times 400 to the power 1. See, the all other terms that come in as a part of this binomial calculation will all be equal to 0 mod 1000. All of them are 0 mod 1000. Only these three terms remain, and we have a multiplication with 7 that is left. So 400 times 499, if I just want the last three digits, I just need to multiply 9 with 400, which is 36. So I'll be left with 600 plus 1 times 7. Now 7 times 6 is 42, so I can just leave the 2 over here. So 207 is the final answer. Now let's read the question again, what it's asking. Determine the last two digits of the smallest positive integer a. So the smallest positive integer a that we need to subtract so that this number becomes divisible by 1000 is a equal to 207. See, other numbers could be 1207, 2207 and so on. So the smallest positive integer a would be this, and answer becomes 07. Hopefully this was clear. Let's move on to the next question, 45th question. Now this question really requires you to proceed solving this in the particular way that I am going to present. Any other way will require either long or lengthy calculation, or it will not lead to the answer at all. At least in my opinion, as so far how many ever ways I have tried to solve this, only a single method has been fruitful. So what I am going to do over here is that I am going to use Euclid's division lemma, or simple short division, and write 1000 is equal to nq plus r. See, this is always possible for any arbitrary n that I choose. I will always get unique pair of integers q and r, quotient and remainder pairs, such that 1000 can be expressed as that. Now if I can write 1000 in this manner for every n, then 1000 over n ka GCD is going to look like nq plus r over n sorry, ka GCD, and this is going to be q plus r over n ka GCD, which is simply q plus r over n. Now notice r over n is a fractional quantity, because here r must be less than n, because n is the divisor and r is the remainder, so remainder is always less than the divisor and greater than or equal to 0. So this goes identically to 0. So what we are left with is that this expression becomes the value q. What happens to 990? Notice that 999 over n becomes equal to nq plus r, because see, if 1000 can be written as nq plus r, then 999 is simply nq plus r minus 1 over n. If I do a similar calculation, I will be left with the quotient out here, but I will be left with r minus 1 over n.
Now I can't easily get rid of r minus 1 over n because it could be that r was equal to 0 in the previous scenario. Like we can have factors of 1000 as n, right? So r could have been 0 and minus 1 over n is not equal to 0 when we take the greatest integer function. So I'll just leave it as it is. 998 over n similarly becomes equal to q plus r minus 2 over n. Now all of these results are really important. You should keep q plus r minus 1 over n and q plus r minus 2 over n ka GCD in mind. If this result was equal to capital A, then what we can say is case 1 r equal to 0 case mein, always keep in mind that here we are considering n greater than equal to 3. For the two other cases when n equal to 2 and n equal to 1 will be handled later on. So for r equal to 0, you can notice that capital A, which is the sum of all of these three greatest integer functions, they will end up becoming q plus minus 1 over n plus q plus minus 2 over n. See, since I am restricting n to be greater than or equal to 3, I can be completely fine knowing that minus 1 over n and minus 2 over n are going to be fractional quantities between minus 1 and 0, never equal to minus 1. So their greatest integer functions become minus 1 and minus 1. So this becomes 3q minus 2, which is not a multiple of 3. So this is the kind of numbers that we wanted, not divisible by 3. So the particular number n for which n is a factor of 1000 will end up with this entire sum to be a non-multiple of 3. Case 2 is if the remainder was equal to 1, then A is equal to q plus 1 minus 1 over n, which is still 0, plus q plus 1 minus 2 over n. Now notice here also n is greater than or equal to 3. This becomes 0 and this becomes minus 1 as it had done before. So now this becomes 3q minus 1. This is also fine. This is also fine. So all numbers that are one more than a multiple of all numbers n such that when we divide n by when 1000 is divided by n, we get a remainder 1. Those numbers are all fine. Case 3, where r is greater than or equal to 2, for this scenario we will have capital A directly equal to 3q. See, all of these modulo expression, all of these greatest integer function expressions will become the same number q, and we will be done with this question. So need to reject. See, we need to reject if we consider them in the first place, right? So we'll just not consider them, we'll just only consider what are the outcomes from the first two cases. So here n divides 1000, all the factors of 1000, see 1000 looks like 2 cube times 5 cube. So number of factors, number of divisors of 1000 is already 4 times 4, 16. And if n is greater than or equal to 3, then I only need to consider the numbers that are greater than or equal to 3. So 1 and 2 should not be considered. So from here, 14 solutions need to be considered. Hopefully this was clear. In the list of divisors of 1000, there is the number 1 and 2 also. Out of them, 2 and 1 must be not considered for now. I am just considering n greater than or equal to 3. The second scenario has remainder equal to 1. So basically what we want is n must divide 999. This number itself is 3 cube times 37. How do I calculate this so quickly? See, 999, we can remove 9 out of this and we'll be left with 111, which is 3 times 37. So you should know the factorization of few important numbers. For example, 111, 101, 1001. 101 is a prime number and so on. So kudos to all who can factorize 10,001. Okay, so put the factors of 10,001 in the chat. The number of divisors of 999 is going to be equal to 4 times 2, which is 8. Out of this, we'll have to reject the single divisor, which was n equal to 1. So we'll have 7 solutions from here. So
Keep track of whatever you have solved. 14 solutions of the form n being a factor of 1000 and n being a factor of 999 gives 7 solutions, all disjoint. If we now consider n equal to 2, for n equal to 2, we have, notice 998, we'll have capital A is equal to 499 plus 499.5 ka GCD, which is 499 ka GIF, and plus 500. So obviously this is 499 times 3 plus 1, hence n equal to 2 is valid. Hopefully you can see that. For n equal to 1, we'll reach problem A is equal to 998 plus 999 plus 1000, which is 2997, and if you sum the digits you will find that it is divisible by 3, so we'll have to reject this. We'll reject n equal to 1, we'll consider n equal to 2. So total 14 plus 7 plus 2, sorry, plus 1 gives us 22 as the final answer. So this question did not require complementary counting, because counting the cases for case 3 is a lengthy procedure and you can circumvent all of this. Okay, now this is one of, see, the next 5 questions are going to be my favorite questions in number theory. One of them you already saw, the 3-marker question. Solve the simultaneous modulo equation and find the last 2 digits of the smallest positive solution of x. See, there is a theory for solving the simultaneous modulo equations, which is called Chinese remainder theorem. It is applicable over here. You can use it to solve it, but I am going to get the answer to this question without using Chinese remainder theorem, just using the knowledge that a particular solution will exist. A unique solution modulo 5 times 7 times 9 will exist. I am just going to use that knowledge, and then rest of the calculations will not use Chinese remainder theorem at all. Notice all of these numbers follow a pattern, and the remainders and the divisors all follow a pattern. In fact, if x is 4 mod 9, then writing that x is 1 mod 3 is redundant, because if x is 4 mod 9, then x is also 4 mod 3, and 4 mod 3 is the same as 1 mod 3. So you can just ignore this first equation, but it's nice that it's there for the sake of a pattern. What you can notice is that the greatest the common difference between the remainders and the common difference between the divisors over here are in proportion. So it's 1 1 over here and 2 2 over here. So what I can do is I can multiply x by 2 so that the common difference becomes equal. 2x is equal to 4 mod 5. 2x is equal to 6 mod 7, and 2x now becomes equal to 8 mod 9. If someone comes and tells you that I have a number that leaves remainder 4 when divided by 5, 6 when divided by 7, 8 when divided by 9, then you know what to do, right? You have seen such kind of questions like since probably 6th standard. You can just add 1 to the number and then claim that that number is now divisible by 5, 7 and 9. So if you do the same thing, all of these become equal to 0. 0 mod 5, 0 mod 7, 0 mod 9. Hence 2x plus 1 is divisible by 5, 7 and 9. So also by their LCM, by the LCM of 5, 7, 9. Hence that value will be 315. 35 minus 350 minus 35 gives us 315. And what we can write is 2x plus 1 is equal to 0 mod 315. Now this modulo equation can be solved by bringing this plus 1 to the RHS, and you can write a minus 1. Minus 1 is odd, hence if we add an odd number to it, we'll get back an even number, and then we can divide by 2. See, so far x, when we divide by 2, gives x equal to minus 1 by 2, but that's not an integer. Modulo arithmetic, always remember, requires division by a number only if that number is co-prime to 315, only if the number is co-prime to the modulo of the number that we are taking, and both sides must be divisible by that number. So I can just add a 315 to the RHS to get 2x is equal to 314 mod 315. When I divide by 2 on both sides, I get 157. So
x equal to 157 works. And there is no other number smaller than 157, positive number, that will satisfy all 4 of these conditions. So the answer to this question will become 57. Alright. The Chinese remainder theorem approach would require you to calculate lots of inverses, and there also you will be restricted to solving these 3 expressions only, but those inverses could take a long time to resolve. Okay, read through this question. 47th question. The numbers 1 square over 2026, 2 square over 2026 all start very slowly. The value of lot of these expressions in the start are going to be equal to 0, because the first number where you exceed 2026 is 46 square. 46 square is finally greater than 2025 and also greater than 2026. Hence, what ends up happening is that finally for the first time the number 1 is appearing on this list, and then 1 appears for a long time, and then the number 2 appears, and that keeps happening. Eventually a point comes after which there are certain numbers that are being skipped. For example, the value of this expression is 2026, identically 2026, because 2026 square upon 2026 is the number, the integer 2026. Just for the sake of like convincing yourself, 2025 the whole square upon 2026. Try calculating this. Actually you won't require a long time to calculate this. If you subtract 1 and add a 1, you will find that 2026 times 2024 plus 1 is in the numerator, and in the denominator you have a 2026. So effectively the number that you end up with is 2024 after you take the GCT. Alright, so the last number in this list was 2026, 2024 was the penultimate number, 2025 was lost. So I'm doing all of this just to illustrate a point that there are 2 different regimes to this particular series. Initially the numbers are increasing very slowly, and after a certain point the numbers are increasing so fast that every new number that comes in this list is going to be a unique number. Now how can I demonstrate that? The situation is such that n plus 1 the whole square over 2026, this value must be greater than n square over 2026 plus 1. See, this is the stuff that is inside this greatest integer function. If I subtract 2 consecutive values that are there inside the greatest integer function and I claim that I want the smallest n such that this is true, what I end up requiring is that every number beyond this n is going to like deviate from the previous number at least by a unit. So that means if you have a number line and these were integer partitions, let's say that at some n you were at this point. In the next count, you increase the value inside the greatest integer function by an amount that is more than 1. You will end up always having the situation where the greatest integer evaluates to a new unique number for every next number in the list. So sometimes it can happen that you skip 2 numbers. For example, the greatest integer function of this point would settle back to this integer. Going to the next value settles to this integer. So effectively this integer has been skipped. So if we solve for this inequality, what we get is n square plus 1 evaluates as n square plus 2n plus 1, and then we subtract n square, and in the denominator we have 2026 greater than 1. So if I multiply by 2026, I get 2n plus 1 greater than 2026, or 2n greater than 2025, or n greater than n greater than 1012.5. See, this number is really important now. N is greater than 1012.5 or n is greater than equal to 1013. So now in the next page I am going to list a few numbers. 1 square upon 2026. The next number is 2 square upon 2026. In this list comes a number eventually 1012 square upon 2026. Then the very next number is 1013 square upon 2026.
Then the next number is 1014 square upon 2026. This list keeps going until we hit 2026 upon 2026. Alright, my claim is that all the numbers up until this point were exhaustive. What do I mean by exhaustive is all the numbers up until, let's evaluate the result 1013 for 1013. Just a moment. Oh, sorry, my bad. The partition will be a bit later. Partition will be right here. See, because for the values 2023 and beyond, see in the last page, we had found that n is greater than 1012.5. That means n is greater than or equal to 1013. For all values beyond 1013, 1013 plus 1 will have a value that deviates by at least a unit. And for every value beyond, each number in this list will all be unique. All the numbers in the list from 1 square upon 2026 to 1013 square upon 2026 will be exhaustive. So this number right here will be 1013 times 1013 upon 2026. If you calculate this, we get 2, and 2 divided by 1013 is 506. So effectively, starting from the number 0, all the numbers up till 506 exist in this list. We can guarantee that, because the jumps that are taking place between any two numbers is less than 1. It becomes greater than 1 only after this point. Hence, all the numbers in this list have been chosen. So 507 numbers exist inside this list, unique numbers. And all the numbers over here are unique. Hence, the numbers will be 1013 unique numbers. Because all the way from 1014 to 2026, there are 1013 unique numbers. If I add both of these quantities, I get 1520 and 20 is the answer. Hopefully this question is understood. Okay, let's go over question 48 now. I have given this question as a part of the workshop, but in most of the workshops where I have taught, I have not discussed the solution to this question, because usually this is, according to me, a really tough question, and very few students are able to solve this from time to time. This sequence is made of unique powers of 3. What you can realize is that a number in this list is of the form 3 to the power ak plus 3 to the power 3 to the power a1, 3 to the power a2 plus 3 to the power a3 dot 3 to the power ak. In other words, I could just simply say that this is a list, or in the base 3 representation of this number will be a, b, c, d dot. Base 3 representation. Every number in this list is going to be a sum of powers of 3. In the base 3 representation, I could just say that this is some k digit number, and the digits over here are restricted to, with the digits restricted to the options 0 and 1 only. See, if the digit was 2, then it would imply that I am adding 2 same powers of 3 in order to get this entire sum. But we are only allowed to add unique powers of 3, and we need to find the last 2 digits of the 100th number in this sequence. So if they are asking us to find the 100th number, then we need to keep in mind that the number of, there is no number that is skipped in this sequence, and also all the numbers are arranged in an ascending order, in an increasing sequence. So
I'm going to make a claim over here. If there is an expression a, b, c, d, dot, 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 if this sequence is greater than x, y, z, dot, 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 base 2, then I can very easily say that a, b, c, d, base 3 is going to be greater than x, y, z, dot, 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 base 3. Sorry. Is this claim understood? What I'm trying to claim is, if there are two numbers among which we know a proper order, that the base 2 number a, b, c, d, see, notice the base 2 number requires both of these expressions to be made of zeros and ones. So if both numbers are made only of zeros and ones and they are in the base 2 representation, if the first number is greater than the second number, obviously the second number will have, instead of 2 to the power something, we'll just replace the 2 with 3, and in order to compare two numbers, any base numbers, all you need to do is you need to algorithmically just check the most significant digit. If at some point you find a most significant digit where the left side is greater than the right side, then you will have the inequality true. That can be used to very easily show that this inequality also holds. That means the 100th number on the list is just the representation of 100. See, 100 over here is a base 10 number. This can be expressed as a base 2 number also. What is the base 2 representation of 100? You can see 100 is made up of 64 plus 32 plus 4. You can just directly convert this to a base 2 number by dividing by 2 again and again. But this settles down to 1, 1, 0, 0. So this is 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. This is the base 2 representation of 100. Now all I need to do to find the 100th number in this list is that replace this 2 with a 3. So 100th base 3 number with digits 0 and 1 only is exactly equal to 1100,100 base 3, and we are done. All you need to do is calculate 3 to the power 6 plus 3 to the power 5 plus 3 to the power 2. This becomes 729 plus 243 plus 9. So 29 plus 43 plus 9 gives us 81, 981, and 81 is the final answer. Hopefully this was clear. We are just using the fact that all the base 2 numbers can be swapped with a base 3 representation just by swapping the value 2 over here to get another increasing list that starts from 1, 3, 4, 9, and then eventually 100th number becomes 981. Hopefully this was understood. Read through the 49th question. See here, this is a question that I created using another very interesting question. The 3 free part of a number is defined as the largest divisor of a positive integer which itself is not divisible by 3. So, first of all, we want a largest divisor. What does that mean? If a number n is written in this form, 3 to the power k times b, where 3 does not divide b, then we can say that the 3 free part of n is equal to b. I hope this is clear. For example, the number 18 has a 3 free part to be 2. The 3 free part of the number 52 is 52 only. Alright. So we have a list of numbers going starting from 2024 all the way up till 6072. Now what I would ask all of you to do with such a large question is that instead of solving for this particular range, notice the relation between these two. 2024 and 6072 are multiples of each other. For example, 6072 is a multiple of 2024 and it's 3 times 2024. So effectively we are going over a
huge range of numbers, but we are effectively going from n to 3n. Let's reduce the size of this n by a bit. Let's try this question for n equal to, let's say, 2. So for n equal to 2, the numbers in my list will be 2, 3, 4, 5 and 6. Now let me list out the 3 free part of each of these numbers. For 2, the 3 free part is 2 itself. For 3, the 3 free part is 1. For 4, it will be 4. For 5, it will be 5. And for 6, it will be again 2. Notice all the possible numbers from 1 to 6 that are not divisible by 3 have been accounted for in this list. The number 2 appears twice. Okay, this same pattern will hold for another number also. We can just take n equal to 3 now. For n equal to 3, we'll start with 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So n and 3n both must be part of the list. For 3, the 3 free part is 1, 4 it's 4, 5 it's 5, for 6 it becomes 2, for 7 it becomes 7, 8 is 8, 9 becomes 1. Notice again, keeping this last number 1 aside, all the numbers in this list are all unique numbers that are exhaustive from 1 to 9 that are not divisible by 3. Hopefully this is clear. You can then make a claim. The list n to 3n of 3 free parts contains all integers from 1 to 3n such that that integer is not divisible by 3, because this list of 3 free part list should not contain a number that is divisible by 3 by definition. So since we have available only 2n plus 1 numbers, out of them 2n is going to be unique numbers and this one repeated number is going to be because the 3 free part of n and 3 free part of 3n are the same number, because all you are doing is you are multiplying n by 3 and then the 3 free part just removes that operation. So this is going to be the same equal number b. So if we go back and look at our list, we need to start all the way from 2024 to 6072. Effectively the 3 free parts are going to contain the numbers 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 7 plus 8, so on and so forth, all the way up till 6071. 6072 ka 3 free part is going to be the same as the 3 free part of 2024, which is 2024 only. Okay, 2024 is not divisible by 3, hence it appears twice in this list. That's the only number that appears twice. So now we have to do this weird sum of numbers that are not divisible by 3. So I'll just solve it quickly. I'll solve this by complementary counting. 6072 times 6073 is the sum upon 2 is the sum of the first 6072 integers. From this I will subtract 2024 times 2025 by 2. This is the sum of the first 2024 integers and I'll multiply this with the 3. Effectively what I've done is I have added all the numbers from 1 to 6072. From it I have removed all the numbers like 3, 6, 9, 12, 15 and so on, all the way up till 2024 times 3. Hopefully this is understood by everyone, plus our final 2024. The final answer that I want for this question is last 2 digits of A. So effectively capital A is this value and mod 100 can really resolve my issues very quickly. 6072 becomes 3036. 2 divided by 2024 becomes 1012. Now I'll instantly apply mod 100 to all of these values so that my calculation can get faster. 36 times 73 minus 12 times 25 times 3
plus 24. This is the expression that needs to be evaluated. See, 12 and 25, when we multiply them, we get 300, and that is 0 mod 100. So I can just get rid of that. 36 times 73 can be evaluated as 36 times 36 times 2 plus 36 plus 24. So 36 times 36 is 1296 because it's 6 to the power 4. 1296 times 2 plus these two add up to give us 60. Now 1296 itself is minus 4. So minus 4 times 2 can be replaced with minus 8, and 6 minus 8 gives us 52. This is the final answer to this question. See, always keep in mind, whenever you are asked to find last two digits, do as much approximation to get the final two digits only, as much as possible, because it's futile to calculate this entire value, or it's futile to calculate this entire result. You won't have the access of a calculator in the exam. So keep this in mind, that you need to save time as much as possible in the exam. The 50th question, this is also a master class in simplifying the answer very, very quickly when you don't have the access to a calculator, and that's the main purpose I've kept this question as a part of the discussion. X is the sum of the perfect squares less than, okay, there is a typo over here. This is 10 to the power 6, and the PDF that you might have received will have 10 to the power 6 written in it, which are multiples of 24. So this question is a two-part question. First, we need to figure out what are the perfect squares that are divisible by 24. We require 24 to divide a perfect square A. This can be split into two other expressions, which are 8 divides A square and 3 divides A square. 8 and 3 are co-prime and they multiply to give us 24. So if I individually solve these two divisibility conditions, I get that 4 must divide A and 3 must divide A. So when I put them together, when I put them back together, I get 12 divides A. So all the perfect squares which are multiples of 12 are the ones that are supposed to be considered. So effectively, the largest number in this list that I want is the number that is just shy of 1 million over here. So we want A to be divisible by 12. Hence we can write A is equal to 12k. Also we require that 12k is less than 1000. So if I divide by 12 over here, I get k is less than 1000 by 12, and simplifying this gives me 250 by 3, which when simplified gives me 83.33. Basically k must be less than or equal to 83. This result is very, very important. I'll keep this with me. Now coming back to the question, we need to sum all the perfect squares. So the perfect squares that need to be summed are going to be 12 times 1 ka whole square plus 12 times 2 ka whole square plus 12 times 3 the whole square all the way up till 12 times 83 the whole square. This is the expression that I need to sum, and y over here is the last 3 digits of x. So I'll directly write y is this number mod 1000. Now keep in mind, this particular expression does not need the entire calculation. I can take 12 square out over here common, and I realize that these are perfect squares that are being added up all the way up till 83. So 83 times 84 times 83 times 2 plus 1, 167. I am using this identity, summation n square is equal to n into n plus 1 times 2n plus 1 upon 6. So I'll have a 6 in the denominator over here. This needs to be evaluated mod 1000. So if you don't have a calculator, you might think that you need to keep multiplying over here, and then eventually just you can get rid of the digits that are beyond 1000. But no, that's not needed. What you can do is you can divide this 6 with this 84, and we are left with 14. Notice this 83 was a result of dividing 1000 by 12. So what if we multiply 83 by 12 and we multiply 167, which is almost twice of 83, by 3. So this 12 square will be put to use by multiplying over here. So I can write 12 times 83 times
14 times whatever is left out. So over here we'll be left out with 2, and 167 can then be multiplied by a 3. Y is still equal to this value, mod 1000. 12 times 83 is very close to 1000. It becomes 996. And calculating this is really easy. All you need to do is notice that while dividing over here, there is a 0.3333 that was remaining. When you multiply 0.3333 by 12, you get 4, and that is the deficit over here. 14 times 2 is 28, and 167 times 3 actually exceeds 1000, and that exceeds 1000 by 1004. It is exactly it's exactly 1002 probably. Oh sorry, I made a tiny mistake. This is not 3, this will be 6, because 12 square has been split into 12 times 2 times 6. So this 6 goes over here, and this 2 comes over here, and this 12 goes and multiplies with 83. So 6 times 167 is 1002. When we evaluate this mod 1000, 996 can be replaced with -4, 28 will remain as 28, 1002 will be replaced with a 2, and now the entire calculation has become very, very simple. 28 times 2 is 56 times 56 times 2 is 114 times 2 is 228. Minus 228 becomes 776. This is the last 3 digits of the sum of all these values. And from here, the answer will be 14 plus 6, 20. Hopefully the simplification was amazing. I'll see you guys later in another video. This will be the last question I'll be discussing for this year before IOQM. All the best to everyone for their IOQM preparation, and I'll hand over the board to Rajat sir so that he'll be done with his portion of the 5-marker questions, and see you guys in next year's preparation. Pen. Hello बच्चों. So how's the Josh? Am I audible बच्चों? सबको मेरी आवाज आ रही है? Fantastic, बहुत बढ़िया. चलिए बच्चों, लास्ट के 10 सवालों की तरफ बढ़ते हैं. ऑब्वियसली सवाल तो भारी हैं. 5 मार्कर है तो थोड़ी सी इज्जत तो देनी पड़ेगी सवालों को. बट मैं आपको पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं कि ये जो ग्राइंडिंग हो रही है बच्चों, इसका फायदा मिलेगा 6 तारीख को. मार्क माय वर्ड्स. हर एक क्वेश्चन से जो आइडिया आपको मिल रहा है वो अल्टीमेटली वहाँ काम आएगा. सो वापस से अपनी ऊर्जा एकत्रित करो बच्चों. अपन लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं अपने नंबर थ्योरी मैराथन के सेशन में, राइट. क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे. सो क्वेश्चन सेज कि the positive integer n and n square both end in the same sequence of 4 digits a, b, c, d when written in base 10 where digit a is not 0. Find the digit sum of the 3 digit number a, b, c. Basically वो ये कहना चाहता है कि n और n square के ही लास्ट के 3 डिजिट सेम है. ये कह रहा है लास्ट के 4 डिजिट सेम है. तो बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि n square is congruent to n mod 10,000, राइट. n स्क्वायर और n दोनों के ही लास्ट के 4 डिजिट सेम है. तो अपन कुल मिला के इस मॉड्यूलो को सॉल्व करना है.
तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, यानी कि n इंटू n माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 10,000. Tiredness hitting hard. Have some lemon juice. कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता करो बच्चों, वापिस ताकत लगाओ, लाओ अपने अंदर, मतलब वो ऊर्जा लाओ. ये 10 सवाल और झेलने पड़ेंगे आपको कैसे भी करके. So n into n minus 1 is 0 mod 10,000, and since n and n minus 1 both are co-prime, they both are co-prime, and 10,000 is what? This is 2 की power 4 into 5 की power 4, right? So 16 into 625. So from this what we can claim, इससे हम क्या क्लेम कर सकते हैं बच्चों, कि जो n है वो 0 mod 16 हो तो n minus 1 0 mod 625 हो. दो पॉसिबिलिटी है कि n जो है वो 0 mod 16 और n minus 1 जो है वो 0 mod 625. n minus 1 is 0 mod 625. So this is case 1, right? This is case 1. So from here we can say that n is 0 mod 16 and n is 1 mod 625. This is case 1. So अगर इस केस की बात करें, जैसे n अगर 1 mod 625 है तो मान लेते हैं कि जो n है वो कुछ 625 के प्लस 1 की फॉर्म का है, तो इस 625 से डिवाइड करने पे 1 का रिमाइंडर दे रहा है. तो दिस 625 के प्लस 1 शुड बी 0 mod 16 and 625 is nothing but 1 mod 16. 625 को 16 से डिवाइड करोगे you will get 1. So this is basically k. K plus 1 is 0 mod 16, so k is equals to minus 1 mod 16. And minus 1 is nothing but 15 mod 16. So the smallest value of k is coming out to be 15, and in this situation the value of n can be what? 625 into 15 plus 1. 625 into 15 plus 1. So you can check it out कि भाई इसकी वैल्यू कितनी आ रही है. 625 into 15 plus 1 कितना आ रहा है. जब आप इसको देखेंगे तो you will get 9376, और क्रॉस वेरीफाई भी कर लो. 9376 का स्क्वायर करके देख लो तो उसके भी लास्ट 4 डिजिट 9376 ही आते हैं. तो दिस इज आवर सोल्यूशन. दूसरा केस भी देखना पड़ेगा. दिस इज केस 1 व्हेन n is 0 mod 16, मतलब ये जो n है ये 0 mod 16 हो जाए और n minus 1 0 mod 16 हो 0 mod 625 हो जाए. अब दूसरा केस ले लेते हैं कि जो n minus 1 है वो 0 mod 16 हो जाए. केस 2, n minus 1 जो है वो 0 mod 16 हो जाए और n जो है वो 0 mod 625 हो जाए. So from here you will get n is congruent to 0 mod 625 and n is congruent to 1 mod 16. Alright. तो अगर ये वाले पर्टिकुलर केस की बात करते हैं तो n जो है वो 0 mod 625 है, तो मान लेते हैं कि लेट n is of the form 625 times k. ऐसा एक कोई फॉर्म अज्यूम कर लेते हैं. So 625 k should be congruent to 1 mod 16 and 625 is nothing but 1 mod 16, so k is congruent to 1 mod 16. तो जो स्मॉलेस्ट k आ रहा है यहाँ पे वो 1 ही आ जा रहा है, और अगर आप n को k को 1 डालते हो तो यू विल गेट 625. और अगर आप n स्क्वायर चेक करोगे ना बच्चों, n स्क्वायर, तो जो भी कुछ तो नंबर आ रहा होगा और लास्ट के 4 डिजिट 0625 आ जाएंगे. बट प्रॉब्लम ये है कि जो a है, दिस थिंग a शुड नॉट बी 0. क्वेश्चन ने क्या बोला है कि
वेयर डिजिट ए इज नॉट 0, तो यहाँ पे ए 0 आ जा रहा है, तो ये गड़बड़ हो जा रही है इसमें, तो विल रिजेक्ट इट, डिस्कार्ड इट। आई होप दिस इज क्लियर। सो अच्छा के ये तो के का वैल्यू 1 ही डाला है मैंने, और क्या डाल सकता हूँ, के इक्वल टू 1 mod 16 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर दैट इज के शुड बी 17, एंड के अगर 70 ले लोगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसी कि जो n होगा वो 625 इंटू 17 होगा, बट दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन 10,000, तो ये भी डिस्कार्ड कर देंगे अपन। चमक रहा है क्या बच्चों, एवरीवन गॉट इट? तो कुल मिला के वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज 9376। उसने बोला था कि द फाइंड द डिजिट सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर ABC, so 9 plus 3 plus 7, 9 plus 3 plus 7, 19, which will be our answer। चमका बच्चों सबको? नेक्स्ट करें, एक बार उड़ान लिख दीजिए सब लोग। व्हाट हैपेंड, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्या? ओके, उड़ान है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट, 3 clever monkeys divide a pile of bananas. The first monkey takes some bananas from the pile, keeps 3/4 of them and divide the rest equally between the other two. The second monkey takes some bananas from the pile, keeps 1/4 of them and divides the rest equally between the other two. The third monkey takes the remaining bananas from the pile, keeps 1/12 of them and divides the rest equally between the other two. Given that each monkey receives a whole number of bananas whenever the bananas are divided, and the number of bananas the first, second and third monkey have at the end of the process are in the ratio of 3:2:1, let the least possible total for the number of bananas be k, find k by 8. So बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बच्चों। 3 मंकीज हैं, M1, M2, M3, और वो कुछ पाइल ऑफ बनाना है उससे डिवीजन कर रहे हैं, और जैसे पहला जो मंकी है, द फर्स्ट मंकी, उसने कुछ बनाना रख लिए, मतलब उसने कुछ बनाना उठाए, उसमें से 3/4 तो उसने रख लिए और बाकी के जो बच गए वो 2 अदर मंकीज में इक्वली डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो सबसे पहले फर्स्ट नंबर ऑफ बनाना जो उठाए गए हैं वो उन्होंने कुछ, मान लेते हैं कि वो कुछ N1, N2, N3 है। लेट नंबर ऑफ बनानास taken from the pile by M1, M2, M3 be N1, N2, N3। मान लेते हैं ये उनके स्टार्टिंग के बनानास जो उन्होंने उठाए वो ये हैं। अब अपन एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए M1 ने क्या करा, मंकी 1 ने, M1 keeps 3/4 and distributed 1/4 to M2 and M3, और अगर M2 और M3 को इक्वली बांटा है, 1/4 को 2 भागों में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 एंड 1/8, इतना पार्ट उसने M2 और M3 को बांट दिया। फिर M2 ने कितना रखा, देखो, द सेकेंड मंकी टेक्स सम बनानास फ्रॉम द पाइल, कीप्स 1/4 ऑफ देम। M2 ने कीप्स 1/4 एंड डिवाइडेड 3/4 टू M1 एंड M3, तो 3/4 का आधा क्या हो जाएगा, 3/8 एंड 3/8। ठीक है, और उसी तरीके से M3 कीप्स कितना लिया M3 ने, द थर्ड मंकी टेक्स द रिमेनिंग बनानास फ्रॉम द पाइल, कीप्स 1/12 ऑफ देम एंड डिवाइड्स द रेस्ट इक्वली बिटवीन, 1/12 लिया बच्चों उसने, सो 1/12 लिया एंड डिवाइडेड
तो 112 लेने के बाद उसके पास कितना बचा 11/12 टू M1 एंड M2 कितना बचेगा उनके पास 11/24 11/24। अब देखिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पे देखिए जो फ्रैक्शन है वो 3/4 1/8 और 1/8 है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट n1 इज 8a, ठीक है। फिर उस m2 के पास भी 1/4 3/4 और 3/8 है, मतलब 8 का ही मल्टीपल ले लेते हैं। n2 को अपन मान लेते हैं 8b, ठीक है। और यहाँ पे है 12 12 24, तो इसको मान लेते हैं 24c। n3 नंबर ऑफ बनानास बाय m1 m2 m3 इस ऑर्डर में मैंने मान लिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो। अब फाइनल टोटल कितना है बच्चों, फाइनल टोटल F1 मतलब मंकी 1 का फाइनल टोटल कितना हुआ। तो सबसे पहले तो उसने क्या रखा 3/4 ऑफ 8a, 3/4 ऑफ 8a। फिर सेकेंड मंकी ने जो है ना फर्स्ट मंकी को 3/8 पोर्शन दिया M3 का M2 का, सो 3/8 ऑफ 8b। और थर्ड वाले मंकी ने उसको 11/24 पोर्शन दिया टोटल 24c का, है ना। सो 11/24 ऑफ 24c। तो यहां से F1 का टोटल आ जाएगा, कितना आ रहा है ये देखो 4 2 जा तो 6a देन 3b और 11c। ये फाइनल टोटल आ रहा है बच्चों किसका, F1 का फाइनल टोटल, मंकी 1 का फाइनल टोटल इतना आ रहा है। उसी तरह फाइनल टोटल ऑफ F2 निकाल लेते हैं। F2 ने अपने पास कितना रखा, F2 ने रखा 1/4, तो 1/4 ऑफ 8b रखा उसने। और उसने मंकी 1 ने M2 को कितना दिया 1/8, तो 1/8 ऑफ 1/8 ऑफ 8a। और मंकी 3 ने मंकी 2 को कितना दिया 11/24, तो 11/24 ऑफ 24c। ये बात चमक गई क्या बच्चों। जो मंकी 2 का फाइनल टोटल आएगा उसने 1/4 तो अपने पास रखा और मंकी 1 ने उसको 1/8 दिया, मंकी 3 ने उसको 11/24 दिया। तो यहां से यू कैन गेट, अब थोड़ा मतलब ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखा, तो 2b प्लस a प्लस 11c। उसी तरह मंकी 3 का फाइनल टोटल कितना होगा, फाइनल टोटल ऑफ मंकी 3, मंकी 3 ने 1/12 तो रखा, तो 1/12 ऑफ 24c। फिर उसको मंकी 1 से कितना मिला 1/8 ऑफ 8a। और उसको मंकी 2 से कितना मिला 3/8 ऑफ 8b। बच्चों कैलकुलेशन में अगर कोई गड़बड़ नजर आए तो तुरंत बता देना, वैसे तो मैं बहुत केयरफुली कर ही रहा हूं। सो ये आ जाएगा 2c प्लस a प्लस 3b, ठीक है। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि जब फाइनल टोटल जो है ना वो इनका इस रेशियो में 3:2:1, मतलब आपको समझ में आया क्या कि F3 is to F2 is to F1, sorry F1 is to F1 is to F2 is to F3, this is 3:2:1। तो यहां से कहना है इसे कि F2 upon F3 जो है वो 2/1 है, F2 upon F3 वो 2/1 है, तो F2 is 2 times of F3। उसी तरह F1 is to F3 भी 3:1 है, तो F1 is 3 times of F3, F1 is 3 times of F3। तो ये दोनों इक्वेशंस को मैं यूज कर लेता हूं। F2 is 2 times of F3, F2 this is 3 times of so 2b plus a plus 11c is 2 times of F3, 2c plus a plus 3b, okay। तो यहां से आई विल गेट वन इक्वेशन दैट इज 4c, 11c में से 4c गया तो 7c,
और a 2a, तो 2a minus a is a, and 6b minus 2b, 6b minus 2b is 4b, and 4c minus 11c is 7c. एक तो ये रिलेशन आ गया बच्चों। दूसरा रिलेशन आ जाएगा जब अपन ये वाला f1 इक्वल टू 3f3 कर देंगे। अभी मैंने f1 f2 इक्वल टू 2f3 कर दिया है, और f1 इक्वल टू 3f3 करूंगा, ठीक है। तो f1 इक्वल टू 3f3 जब अपन करेंगे तो 6a प्लस 3b प्लस 11c, 6a प्लस 3b प्लस 11c विल बी 3 टाइम्स ऑफ 2c प्लस a प्लस 3b, 2c प्लस a प्लस 3b। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 3a 6a में से गया तो 3a, 3b माइनस 9b इज माइनस 6b, and 11c minus 6c is 5c। देखिए बच्चों, ये दो इक्वेशन आप लोगों को मिल रही है क्या? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है क्या? देखो, अब यहां से अपन a की वैल्यू निकाल लेते हैं और b और c के टर्म्स में इक्वेशन कन्वर्ट कर लेते हैं, तो a आ जाएगा 7c माइनस 4b। यहां से मैं निकाल लेता हूं, a आ जाएगा 7c माइनस 4b। इसको मैं वहां डाल लेता हूं बच्चों। सेवन सी माइनस 4b माइनस 6b प्लस 5c इक्वल्स टू 0। तो 7 3 जा 21c, 21c प्लस 5c इज 28c, और माइनस 12b माइनस 6b इज 18b। ये और कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हो रहा है। 14c इज 9b। देखिए बच्चों, यही आ रहा है क्या? और क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ने आपसे लीस्ट वैल्यू पूछी है। 21 और 5 26 होगा, ये थोड़ा सही कर लेते हैं, और यहां 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे पता है लीस्ट वैल्यू ऑफ बनानास पूछा है, तो अगर मुझे इसको लीस्ट रखना है, जैसे मेरा c अपॉन b कितना आ रहा है बच्चों? 9/13 आ रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं मान लेता हूं कि वो c जो है वो 9 है और b जो है वो 13 है। भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू ही तो लेनी है, और ये दोनों कोप्राइम है, इससे ज्यादा और फैक्टर तो हो नहीं सकते। तो c को 9 ले लो, b को 13 ले लो, और आपका जो a है वो है 7c माइनस 4b। तो 7 9 जा 63 माइनस 13 4 जा 52, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, तो a आपका 11 आ गया। आपके पास a, b और c तीनों आ चुके हैं बच्चों। अब आपका जो फाइनल टोटल है वो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1 8 तीनों का फाइनल टोटल निकाल रहा हूं मैं। फाइनल टोटल वो आएगा f1 प्लस f2 प्लस f3। तो देखो 6 प्लस 1 प्लस 1 8a, फिर 2b प्लस 3b 5b प्लस 3b 8b, और c आएगा 22c और 2c 24c। So 8 times of a plus b plus 3c. So 8 times of a and b is what? 11, 13, and 3c is 27। इसको जोड़ दो, जोड़ के बताओ कितना आएगा? 11 और 13 कितना हो गया? 24 और 27 51। और क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? फाइंड k by 8।
तो k/8 विल कम आउट टू बी 51 बच्चों। बोलो बच्चों, दिमाग हिल गया ना एकदम? कुछ समझ नहीं आ रहा ना जिंदगी में क्या चल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है जिंदगी में? रात को 9:15 पे 3 क्लेवर मंकीज में कितने बनानास डिस्ट्रीब्यूट हुए, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अरे कर लेंगे यार, वो जितना बनाना डिस्कस करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं, अपन काहे को इतनी माथाफोड़ी कर रहे हैं। मगर भाई साहब 3 क्लेवर मंकी गजब थे यार, उन्होंने जोरदार मैथमेटिक्स लगाई है, ये तो मानना पड़ेगा। गजब दिमाग लगाया तीनों क्लेवर मंकीज ने, नहीं? I hope this is clear to everyone now. चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द लार्जेस्ट इंटीजर n, let the largest integer n satisfying the following conditions. N square can be expressed as the difference of two consecutive cubes and 2n plus 79 is a perfect square. सर एक बनाना में टैक्स लूंगा। एक बनाना टैक्स लेना बनता है यार, इतनी गणित करवा दी उन्होंने, इतनी मैथमेटिक्स करवा दी तीनों मंकियों ने, उनसे एक एक बनाना तो अपन टैक्स के काटेंगे। 5 रुपए ओवर एक्टिंग के भी काटेंगे, इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? चुपचाप जितने बनाना थे, चुपचाप जिसको खाने थे, जितनी भूख थी उतने खा लेते। फालतू की एक्टिंग है चल रही है। भाई मैं रख लेता हूँ 3/4, तुम्हें बांट देता हूँ 1/4, तुझे मिलेगा 1/8, तुझे मिलेगा 1/8। अबे भाई 5 रुपए ओवर एक्टिंग के काटेंगे अपन बनाना के मंकियों के। नेक्स्ट, so question says कि find the largest integer n satisfying the following condition. n square can be expressed as the difference of two cubes. तो जो n square है वो आइंस्टाइन की 3 बंदर दो कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स का डिफरेंस है, तो मान लेते हैं वो m+1 का क्यूब माइनस m क्यूब की फॉर्म में। सो और कह रहा है 2n plus 79 कोई तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहले तो यहां से कहानी शुरू करते हैं। तो यहाँ से you'll get m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 माइनस m क्यूब, तो ये तो उड़ गया। you'll get 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, n स्क्वायर का वैल्यू ऐसा कुछ तो आया। मगर आप देखो तो कुछ तो अच्छी फॉर्म में तो नहीं आया, एटलीस्ट बहुत ही गंदी फॉर्म में आया है। कुछ बढ़िया सा काम ये कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ताकि RHS में मैं कुछ तो परफेक्ट स्क्वायर जैसा बना पाऊँ। तो ये 4n स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 3 12m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 3 को कॉमन लेकर के 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 4n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। और ये 4n स्क्वायर भी बेसिकली क्या है बच्चों, ये 2n का होल स्क्वायर है। टू एन होल स्क्वायर इज 3 टाइम्स ऑफ 2m प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली देखो बच्चों, तो ये जो 2n है ना, ये एक इवन नंबर है। मैं मान लेता हूं कि ले 2n इज सम x एंड 2m प्लस 1 इज सम y। तो हमारा जो x है वो इवन हो जाएगा, जो y है वो ओड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन पता है क्या बन गई, देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस 1, बेसिकली x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कोई आप में से बता सकता है ये कौन सी इक्वेशन है? इस इक्वेशन का बकायदा एक नाम है भाई साहब, पता है किसी को क्या इक्वेशन है? दिस इज कॉल्ड पेल्स इक्वेशन।
तो इसको पेल्स इक्वेशन कहा जाता है। पेल्स इक्वेशन का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, और बहुत इसमें भी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए अपन को कुछ तो छोटी फॉर्म क्रिएट करके अपन यहां तक तो पहुंच गए, बट अब आगे क्या करना है वो स्टोरी समझते हैं। पेल्स इक्वेशन है, मैंने क्या करा हुआ है, 2n को x माना हुआ है, और 2n प्लस 79 जो मेरा दे रखा है उसने बोला है कि 2n प्लस 79 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2n को मैं x बोल दूं, सो x प्लस 79 ये मेरा कुछ तो परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन ने बोला देखो पढ़ो इसको अच्छे से, उसने बोला कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मान लेते हैं कि किसी p स्क्वायर के बराबर है। ये चमका आपको। अब देखो x एक इवन नंबर है, 79 एक ऑड नंबर है, तो इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड आएगा, तो हम यहां से ये क्लेम कर सकते हैं कि जो p है वो ऑड नंबर होगा कोई, तो ठीक है, p विल बी सम ऑड नंबर। सो x इज p स्क्वायर माइनस 79। अब इसकी वैल्यू दोबारा उठा करके वहां रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में, p स्क्वायर माइनस 79 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ हो रहा है। देखो तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, p स्क्वायर माइनस 79 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया तो ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो जब मैं इसमें माइनस 79 प्लस 1 करूंगा तो माइनस 78 आएगा, और p स्क्वायर माइनस 80 आएगा इज 3y स्क्वायर। फिर से एक और इंटरेस्टिंग सा लॉजिक देखो कि p एक ऑड नंबर है, तो ये ऑड माइनस इवन हमेशा ऑड आएगा, ऑड माइनस इवन हमेशा ऑड आएगा, तो ये दो ऑड्स का प्रोडक्ट है। y स्क्वायर भी ऑड है ही वैसे तो, और ये दोनों ऑड्स का प्रोडक्ट है, और ये दोनों ऑड्स में 2 का गैप आ रहा है। जैसे कोई नंबर होता है 3, 5, 5, 7, 7, 9, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड्स हैं, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड्स हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि both will be co-prime, p square minus 78 and p square minus 80, this GCD should be 1। अगर ये दोनों co-prime है ना, तो इसका मतलब पता है क्या है, so therefore this p square minus 78 and p square minus 80 इनकी वैल्यूज कैसी होंगी, 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर है, तो y आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि p स्क्वायर माइनस 78 की वैल्यू और p स्क्वायर माइनस 80 की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में होगी कि अगर ये u स्क्वायर है, अगर p स्क्वायर माइनस 80 u स्क्वायर है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर होगा। ये चमका आपको ये वाली बात, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं ले सकता कि इसको y ले लिया, इसको 3y ले लिया, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर y आ जाएगा, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर है ही नहीं क्योंकि दोनों कोप्राइम है। तो मैंने फिर इस तरीके से ले लिया कि मान लिया p स्क्वायर माइनस 80 अगर कोई u स्क्वायर है, तो p स्क्वायर माइनस 78 कुछ 3v स्क्वायर होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट अल्टीमेटली 3 टाइम्स ऑफ uv का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जो हमें चाहिए भी सही। अब अगर आप कोई भी एक केस ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला केस ले लिया, p स्क्वायर माइनस 80 इज u स्क्वायर, तो यहां से विल गेट p स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80। सो एंड अगेन वन मोर थिंग कि p के बारे में अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला हुआ है कि p एक ऑड नंबर है, तो ऑड माइनस इवन अगेन एक ऑड नंबर है, तो u भी एक ऑड नंबर है, राइट। मतलब ये जो u है u भी ऑड है, तो ये p प्लस u इंटू p माइनस u, और p प्लस u और p माइनस u दोनों पता है इवन हो जाएंगे, ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड माइनस ऑड इवन। तो आपको 80 के ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं जो कि इवन हो, तो आप 80 और 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 ऑड हो जाएगा, तो आप 40 और 2 ले सकते हो, 10 और 8 ले सकते हो, या वाइस वर्सा, मतलब दोनों का ऑपोजिट भी। ये वाला चमक रहा है क्या बच्चों? स्टेप एक बार देखो, ये आपको यहां तक की स्टेप चमक रही है क्या बच्चों? बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आपको यहां तक चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है।
चमक गया, फैंटास्टिक, उड़ान आया है। हाँ वो आएगा, 24 भी आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो बेसिकली विल हैव टू चेक ऑल दिस केसेस। अब अगर अपन कोई भी एक केस ले लेते हैं, मान लो ये वाला केस ले लिया अपन ने 40 और 2 वाला, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2p विल बी 42, तो p विल बी 41, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ u? 41 प्लस u 40, तो u कुछ तो आ जाएगा। और यहां से अगर मैं देखूं तो p कितना आ रहा है, एक बार देखो, इन दोनों को जोड़ो तो 2p इज 18, तो p आ जा रहा है 9। इस वाले केस में क्या आ रहा है, दोनों को जोड़ूंगा तो 2p इज 24, तो p आ रहा है 12, p आ रहा है 12, इसको तो डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि p एक प्राइम नंबर भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, p एक ऑड नंबर होना चाहिए सॉरी प्राइम नहीं, p एक ऑड होना चाहिए, तो 12 आ गया इवन, वो अपन डिस्कार्ड कर देंगे। तो 41 और 9 ये वैल्यूज आ गए। अब अपने को क्या निकालना है वैसे मैं तो यही भूल गया, बहुत सारा चल रहा है इसमें कार्यक्रम, बट नहीं ठीक है, चल रहा है तो ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड के लार्जेस्ट इंटीजर n सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, एंड 2n प्लस 79 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 2n मीन्स x। अब आप इस पे चेक कर लो ना, मतलब x प्लस 79 शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो p अगर आप 41 लेते हो तो 41 स्क्वायर माइनस 79 को चेक करो, x का वैल्यू क्या आता है, मतलब 2n का वैल्यू क्या आ जाएगा, और n स्क्वायर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एक बार वैलिडेट करके बताओ बच्चों, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई इससे अपन ने जो भी रिजल्ट निकाला उससे ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, पी स्क्वायर माइनस 78 वाली, देख लेते हैं। चलो ये वाली इक्वेशन को मैं अब वैलिडेट करूंगा यहाँ पे। तो पी स्क्वायर माइनस 78 का मतलब हो गया 41 का स्क्वायर माइनस 78। बहुत मेहनत है यार, 41 41 1 4 4 16 1681, तो 1681 माइनस 78, दिस इज 1603। तो क्या ये 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर है? बच्चों कैलकुलेशन देख लेना, मेरे को क्या है डाउट लग रहा है कि कैलकुलेशनों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वैसे तो। 1681 नहीं आ रहा, मतलब 1603 शुड कम लाइक टू बी ए 3v स्क्वायर, तो दिस इज नॉट कमिंग इन द फॉर्म ऑफ 3v स्क्वायर क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 को चेक करें, 9 को चेक करोगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 78, 9 स्क्वायर इज 81 माइनस 78, दिस इज 3, दिस इज 3v स्क्वायर, तो v आ जाएगा 1, बट वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब है ना, v स्क्वायर शुड बी 1। तो यानी कि ये आपका एक सोल्यूशन दे देगा p इक्वल्स टू 9। अभी मैंने सारे केसेस भी तो नहीं लिखे, और केसेस क्या बनेंगे, 240 वाला केस में चेक करो तो p कितना आएगा, 810 वाला केस चेक करो, 810 वाले में कितना आ रहा है, अच्छा ये 41 नहीं है 21 है क्या, 2p इज 42, तो अरे भाई 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 इट इज 21, बताओ हो गया ना गड़बड़। और 21 का स्क्वायर फिर तो मुझे लग रहा है हो जाएगा ये, 21 का स्क्वायर विच इज 441 माइनस 78 तो 3 और 13 में से 7 गए तो 6, 363, और 363 कैन बी रिटन एज व्हाट, इसको मैं पूरा ठीक करता हूँ, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 1 to 1, अरे भाई मजा आ गया, 3 टाइम्स ऑफ 11 स्क्वायर, और हम चाहते ही ये थे ना कि वो 3 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर बने, तो यहाँ पे v आपका 11 आ गया, यहाँ पे v आपका 1 आ गया, तो बच्चों दोनों ही सेटिस्फाई करके 21 और 9, बट आपको तो ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो हाईएस्ट वैल्यू के लिए 21 को ले लेना।
2n प्लस 79, तो आपका जो n हो जाएगा मतलब x आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 79, 2n आ जाएगा बेसिकली पी स्क्वायर माइनस 79, तो n आ जाएगा बाई 2, p आप ले लो 21, तो 441 माइनस 79, वो कितना आया था 441 माइनस 78, तो अपन ने ये करा है, तो 79 करेंगे तो कितना आएगा 362, 362 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 181। और क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड 2026 बाय 181, तो 2026 बाय 181, ये एक बार कैलकुलेट करके बता दो बच्चों ईमानदारी से, अगर सही बैठ गया तो मज़ा आ जाएगा। सर भूख लग रही है। IOQM बहुत नज़दीक है बच्चों, अभी सवालों की भूख होनी चाहिए, सवालों की भूख होनी चाहिए बच्चों, सवालों की। 11 आंसर की में भी 11 ही दे रखा है क्या बच्चों, चेक कर लेना। बहुत बढ़िया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल था बच्चों, पेल्स इक्वेशन का सवाल था। ऑब्वियसली बाउंसर तो जानना था, वो मैं जानता था पहले से ही, बट मैंने आपको समझाने के लिए पूरी ताकत लगाई, पूरा अच्छे से समझाया मैंने, हर एक एंगल। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि भले टाइम लगेगा जो भी है ठीक है, बट मैं आपको हर एक पर्सपेक्टिव से सोचना सिखा रहा हूँ, समझना सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जा रहा है, कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। ठीक है, टाइम लग रहा है बच्चों, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मुझे भी घर जाने की जल्दी है बच्चों, मेरा सिट्टू इंतज़ार कर रहा है। बेचारा वेट करता रहता है कि पापा कब आएंगे। बट मैं उड़ा सकता हूँ कि ठीक है इतना कर लेना बच्चों, हो जाएगा, बट अल्टीमेटली वो क्लियरिटी नहीं आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि लास्ट तक, अंजाम तक कैसे पहुंचाना है सवाल को। सो दैट्स वाई मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा पेशेंटली समझते हुए चलिएगा। मुझे पता है बहुत भारी भारी सवाल चल रहे हैं, बट 5 मार्कर के लिए भाई बहुत मेहनत है। मैंने आपको बताया ना, 5 मार्कर के अगर 3-4 सवाल बन गए ना, 4 सवाल, तो 80% जंग तो वैसे ही जीत जाते हैं, क्योंकि 2 मार्कर 3 मार्कर थोड़े बहुत बन जाते हैं। और अब की बार 40 पार का नारा है अपना कि जितना भी बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, जिसने भी चारों मैराथन अटेंड करी है, एक एक बच्चा 40 पार करके लेके आया नंबर। उसी एम के साथ चल रही है बच्चों गाड़ी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट दिस इज एन इंटीजर। अब देखिए, इसको करने में अपन ये भी कर सकते हैं कि इससे इसको डिवाइड करें और फिर जो आएगा उसका अपन जो करते हैं तरीका वैसे यूज़ करें, बट मैं इसको अलग तरीके से भी बता सकता हूँ। अपन क्या करेंगे कि एक तो ए बी क्रिएट करना है, एक ए क्रिएट करना है और एक बी क्रिएट करना है, और ये वाले टर्म्स भी होने चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 1। तो कोई ऐसी इनइक्वालिटी, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 सब आ जाए, ये 6 के 6 टर्म्स आ जाएं, ऐसा बताए कौन सा एक्सप्रेशन है। देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई बात नहीं आध्या बेटा, संघर्ष करते रहो। सो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वेरी गुड विक्रम। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ a square plus b square and plus 1, and in the right hand side you will be left with 2 times of ab plus a plus b। देख रहे हो बच्चों कितना चमत्कारी तरीके से अपन ने ये टर्म्स क्रिएट कर दिए। हमको चाहिए ab प्लस a प्लस बी ऊपर, तो हम ये लिख सकते हैं कि ab प्लस a प्लस बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो हमको इसका बाउंड पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग कैन बी 1।
उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके बाद अब इसका लोअर बाउंड भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने जो साइन यूज़ करे हैं वो माइनस 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 के साइन यूज़ करें हैं, मैं प्लस 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 का साइन यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी 0 से बड़ा होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, ये 0 से बड़ा होगा। सो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए प्लस बी। ये चमक रहा है क्या बच्चों? तो यहाँ से वी कैन से दैट ए बी प्लस ए प्लस बी, चूंकि माइनस साइन इन्वॉल्व है तो इनइक्वलिटी का साइन बदल देंगे अपन। तो ए बी प्लस बी विल बी लेस देन और इक्वल टू -1। एंड मान लेते हैं ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कुछ, ये मान लेते हैं इसका वैल्यू कुछ n है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि बच्चों जो n है वो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो जो n की पॉसिबल वैल्यू है इंटीजर में वो -1 है, 0 और 1 है। ये 3 पॉसिबल वैल्यू है। तो 1 बाय 1 तीनों केसेस चेक कर लेते हैं। अगर n इक्वल्स टू -1 हो तो क्या वैल्यू आएगी? तो ए बी प्लस बी विल बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1। तो यहाँ से व्हाट विल गेट दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए प्लस बी 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से विल गेट a इज -1, b इज -1 एंड a इज इक्वल्स टू -b। बट चूंकि a इक्वल्स टू b आ रहा है और वो a इक्वल्स टू -b आ रहा है, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, वी विल डिस्कार्ड दिस केस। सिमिलरली विल चेक फॉर n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 एंड check for n equals to 1. So I can leave this to you. एक बार n को 0 डाल देना, इसको आप 0 डालोगे तो ab प्लस a प्लस बी 0 आ जाएगा। ab प्लस a प्लस बी 0 आ गया तो a कॉमन b प्लस 1 कॉमन b प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो a प्लस 1 b प्लस 1, तो 1 1 -1 -1, यहाँ से 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, 2 सॉल्यूशंस। चमका क्या आपको? a0 b0 या a -2 b -2। भाई उसने पॉजिटिव तो बोला नहीं है, इंटीजर्स बोला है, तो इंटीजर्स तो 2 आ जाएंगे यहाँ से। और एक लास्ट केस ये है कि जब ये 1 हो जाए, लास्ट केस ये है कि जब ये 1 हो जाएगा तो ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए बी प्लस बी इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाला केस बन जाएगा बच्चों। और इस वाले केस में ये ऐसा बन जाएगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से विल गेट a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो 1,1 यहाँ से एक सोल्यूशन आ जाएगा। तो टोटल आंसर आ जाएगा इसका 3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। चमक गया बच्चों सभी को? उड़ान है। नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स x, y, z satisfying n times of GCD of x, y, z. So n times of GCD of x, y, z is GCD of x plus 2y and y plus 2z and z plus 2x. तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, ये GCD of x, y, z है। सर 2 नहीं आएगा क्योंकि केस रिपीट भी तो है। केस रिपीट हो रहा है क्या कोई सर? यहाँ तो इसमें तो कोई सोल्यूशन आया नहीं था। यहाँ से आ रहा है 0,0 और -2, नहीं हो रहा बच्चों कोई भी केस रिपीट। यहाँ से a का वैल्यू 0,0, यहाँ से -2, यहाँ से 1,1, तीनों अलग अलग केसेस हैं।
ठीक है अंजीव, आई होप दिस इज क्लियर, राइट? In this question we have to find the positive largest positive integer and for which there exist positive integers x, y and z satisfying this thing. देखिए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जीसीडी बेस्ड क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि लेट जीसीडी ऑफ x, y, z इज सम k, ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसा हो जाएगा कि n इंटू के इज जीसीडी ऑफ x प्लस 2y। अगर जीसीडी ऑफ x, y, z k है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि x इज सम के ए, y इज सम के बी एंड z इज सम के सी, वेयर ए बी सी आर को प्राइम नाउ, ए बी सी आर को प्राइम, है ना। नॉर्मल तरीका है जीसीडी के सवालों में, हम ऐसा करते ही हैं। तो जीसीडी ऑफ x प्लस 2y क्या हो जाएगा? जीसीडी ऑफ x है के ए और 2 के ए प्लस 2 के बी, के ए प्लस 2 के बी, फिर के बी प्लस 2 के सी और के सी प्लस 2 के ए, इसका जीसीडी। अब देखो बच्चों सभी में के कॉमन आ रहा है, मतलब है ना, तो तीनों मतलब जीसीडी ऑफ दिस ऑल दिस 3 टर्म्स और सब में के कॉमन आ रहा है, तो के को अपन बाहर निकाल लेते हैं जीसीडी से। तो के टाइम्स ऑफ जीसीडी ऑफ ए प्लस 2b, b प्लस 2c एंड c प्लस 2a। तो k से k उड़ जाने से थोड़ा सा काम आसान हो गया बच्चों, एक काम तो ठीक हो गया, इक्वेशन थोड़ी सी आसान होगी। नाउ n इज जीसीडी ऑफ a प्लस 2b, b प्लस 2c एंड c प्लस 2a। अब बच्चों ये कह रहा है कि जो n है ना, वो इन तीनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है, मतलब n जो है इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, n इज डिवाइडिंग ऑल द 3 टर्म्स। सो n आई कैन से दैट अगर n इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो जो n है वो इनके सम या डिफरेंसेस को भी डिवाइड करेगा। तो अपन ले लेते हैं कि n मस्ट डिवाइड a प्लस 2b प्लस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 2c प्लस 4 टाइम्स ऑफ c प्लस 2a। I mean to say that if n is the GCD of all the 3 terms, then n should divide this term plus some k times of this term plus some m times of this term। मतलब इसको अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी तो ये नंबर जो है वो n से डिविजिबल ही होगा ना। लेकिन ऐसा करने से अब जबरदस्त ऑब्जर्वेशन होगा बच्चों। देखिए a और 4 2 जा 8 है, तो ये कितना आ जाएगा 9a प्लस, अब देखो क्या बच रहा है, 2b प्लस 2b is 4b and 4c plus 4c is 8c। तो 2b plus 2b, so 4 times of b plus 2c बच रहा है बच्चों, देखो ध्यान से 9a plus 4 times of b plus 2c। Now n is dividing this thing and b plus 2c is already divisible by n। b plus 2c तो ऑलरेडी n से डिविजिबल है, क्योंकि इसका जब सबका जीसीडी निकाला था तो n आ रहा था, यानी कि n b plus 2c को ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है। तो क्या मैं यहां से क्लेम कर सकता हूं कि हेंस दिस n डिवाइड्स 9 है। सो कैन आई से दैट n डिवाइड्स 9a एंड सिमिलरली आई कैन राइट दैट n डिवाइड्स 9b एंड n डिवाइड्स 9c। भाई इसी लॉजिक से due to symmetry I can claim that n divides 9b and n divides 9c। So n divides GCD of 9a, 9b, 9c। So n divides 9 times of GCD of a, b and c। But GCD of ABC is 1। GCD of ABC is 1। So 9 divides, मतलब n divides 9। तो स्मॉलेस्ट n की पॉसिबल वैल्यू क्या है, मतलब लेट्स टेक n इक्वल्स टू 9 ईयर। स्मॉलेस्ट तो नहीं बोलेंगे बट बोल लेते हैं कि लेट चेक n इक्वल्स टू 9। अब n इक्वल्स टू 9 चेक कर लो बच्चों, n की वैल्यू 9 डाल के देख लो कि क्या आपको कोई ऐसा पेयर मिल रहा है।
बिकॉज आप यहां से ये क्लेम कर सकते हो कि जो n है वो 9 से छोटा या बराबर होगा। एक बार 9 ही डाल के देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, तो लार्जेस्ट पूछा है तो एक बार 9 ही डाल करके देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो डाल के देखो n का वैल्यू 9 पे क्या आ रहा है। एक्स वाई जेड को आप ले लो 1, 4 और 7। वन 4 7 पे अचीव हो गया। देखो बच्चों, एक्स को 1 ले लो, वाई को 4 ले लो, जेड को 7 ले लो, इट इज अचीवेबल। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, सो हमारा आंसर आ गया 9। बोलो बच्चों, मजा आया? समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? जस्ट राइट डाउन उड़ान इफ यू हैव अंडरस्टूड फास्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहे हैं। अब अंजीव को उड़ता हुआ उड़ान आया है। n 18 तो हो ही नहीं सकता, 9 से छोटा या बराबर ही हो सकता है, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता भाई। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। लेट x0, x1, x2 बी ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर सच xk इज आइदर 0 और 1। ये xk है। So for each positive integer n defined Sn is k equals to 0 to n minus 1 xk 2 की power k. Suppose 7Sn minus 7Sn is congruent to 1 more 2 की power n for all n greater than or equals to 1. What is the value of sum x2025, x2, x2026 and फलाना फलाना। तो देखिए बच्चों, Sn ये दे रखा है आपको, है ना। तो मैं अगर एक n+1th टर्म लिखना चाहूंगा तो इस Sn में मैं क्या ऐड कर दूंगा, xn 2 की पावर n को ऐड कर दूंगा। Sn+1 विल बी Sn प्लस xn 2 की पावर n। समझ में आई आपको? मतलब nth टर्म में मैं n को, मतलब यहाँ पे k को n डाल दूंगा तो xn 2 की पावर n मेरा Sn+1 होगा। और ये जो डेटा दे रखा है ना, इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। अगेन ए वेरी नाइस प्रॉब्लम बच्चों, और जबरदस्त तरीके से वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो वी कैन राइट दैट 7Sn minus 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod n। तो मान लेते हैं कि दिस इज kn 2 की पावर n। ये बात चमकी आपको। 7Sn minus 1 इज 0 mod 2 की पावर n, मतलब 7Sn minus 1 पूरी तरह से 2 की पावर n से डिविजिबल होगा, तो मैंने उसको मान लिया कि इट इज सम kn 2 की पावर n। तो 7Sn तो हमारा ये बन गया। ओके, अब वी हैव टू फाइंड ऑल दिस वैल्यूज x20 to 5। तो बेसिकली अपन को इसको कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट करना होगा हमारी फॉर्म में। तो अगर मैं Sn+1 की वैल्यू निकालता हूं, इस वाले में मैं Sn+1 की वैल्यू है मेरी Sn प्लस xn 2 की पावर n, और मेरा 7Sn minus 1 जो है kn 2 की पावर n आया हुआ है। तो 7 टाइम्स ऑफ आई कैन राइट Sn प्लस 2 की पावर n xn minus 1 is kn+1 2 की पावर n+1। ये वाला स्टेप चमक रहा है क्या बच्चों? देखो तो ये मैंने Sn+1 को लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब आप ये समझ लो कि ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, अगर आप n को 1 से इंक्रीज करोगे तो 7Sn+1
-1 इज kn+1 2 की पावर n+1। तो ये 7sn+1 तो मेरा ये बन गया क्योंकि sn+1 ये है, -1 इज kn+1 2 की पावर n+1। तो यहां से विल गेट 7sn इक्वल्स kn+1 2 की पावर n+1 +1 माइनस 7xn 2 की पावर n। मतलब ये 7xn 2 की पावर n को भी उधर ले जाके माइनस कर दिया मैंने। और 7sn जो है ना वो है मेरे पास, 7sn जो है वो kn 2 की पावर n +1 है। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं kn 2 की पावर n +1 इज इक्वल्स टू kn+1 2 की पावर n +1, kn+1 2 की पावर n +1 +1 माइनस 7xn 2 की पावर n। ऑलराइट, तो 1 and 1 गेट्स कैंसल्ड आउट। 2 की पावर n से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो kn आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ kn+1 माइनस 7xn। देखो बच्चों ये वाली इक्वेशन आपको चमक रही है क्या? बेसिकली ये एक इस फॉर्म में अपन ने रिकरेंस बनाया। अब देखो बच्चों इसमें कुछ क्रांतिकारी सा काम, खैर 5 मार्कर है तो हर 5 मार्कर में कुछ ना कुछ क्रांतिकारी करते ही हैं अपन। इधर देखेंगे तो RHS जो है वो इवन है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ kn+1 मीन्स इट इज एन इवन नंबर, सो LHS शुड ऑल्सो बी एन इवन नंबर। And in the question it is said that every xk is either 0 or 1, right? So this xn can be either 0 or 1. RHS is even, so LHS should be even. If kn is odd, then we'll take xn to be what? अगर ये odd आ जाएगा तो इसको भी odd ही बनाना पड़ेगा हमें, तब जाकर के odd plus odd even बनेगा। तो अगर इसको odd बनाना पड़ेगा तो हम xn को 1 लेंगे। एंड इफ kn इज इवन, अगर kn का वैल्यू इवन आया, इवन, तो फिर xn को हम 0 ले लेंगे बच्चों, तब जाकर के इवन प्लस इवन इवन बन पाएगा। अगर मैंने xn को 1 ले लिया तो इवन प्लस ऑड फिर ऑड हो जाएगा, जो गड़बड़ है। तो हम विल टेक xn टू बी 0। ये अपन ने डिसाइड कर लिया बच्चों। यहां तक आपको चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, देखो ध्यान से। अब अगर अपन यहां पे रिकरेंस शुरू करें, क्योंकि इनको 0 से शुरू करना है अपन को, k = 0 से कहानी शुरू करनी है। अच्छा ये स्मॉल k है और ये जो मैंने अजम्पशन कराया ना वो कैपिटल k है बच्चों। ये दोनों k यार मेरे को पता नहीं था इधर भी k है, ये कैपिटल k लिख लेना, ये कैपिटल K लिख लेना बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वो K अलग है, ये K अलग है। ओके, एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा देख लेना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो ठीक है, तो 7sn - 1 इज kn 2 की पावर n। अगर मैं n को 0 डालता हूँ इस वाली इक्वेशन में तो 7s0 - 1 इज k0 2 की पावर 0। देखो बच्चों 7s of 0 - 1 is k0 2 की पावर 0। now 2 की पावर 0 is 1 और s0 का मतलब क्या हो गया, s0 का मतलब हो गया x0 2 की पावर 0 और वो क्या हो जाएगा 1, तो 1 ही हो जाएगा। तो बेसिकली k0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, s0 का वैल्यू हो गया x0 और ये हो गया, तो ये हो गया बच्चों 0, s0 हो गया 0, s0 इज 0, तो k0 आ गया बच्चों -1। ये हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए थी, तो k0 आ गया -1। अगर मुझे k1 निकालना है, देखो kn+1 को मैं क्या बोल सकता हूं, kn+1 इज kn
प्लस 7 टाइम्स ऑफ एक्स एन बाई 2। अगर मैं n को 0 डालता हूं तो k1 मेरा क्या आएगा, k1 इज k नॉट प्लस 7xn बाई 2। अब मेरा जो k नॉट है वो ये -1 लिखेंगे अपन, जो k नॉट है वो ऑड है, -1 ऑड है। तो जब मैंने डिसाइड किया कि अगर kn ऑड होगा तो xn को मैं 1 लूंगा, तो ये मेरा 1 हो जाएगा। तो ये -1 प्लस 7, तो 7 - 1 6 बाई 2 3, ये मेरा 3 आ जाएगा। अब मैं k2 पे आता हूं, k2 इज k1 प्लस 7, और उसको भी n की जगह पे मैं जीरो लिख लेता हूं। फिर इसको मैं लिखता हूं k1 प्लस 7x1 बाई 2। अब मेरा जो k1 है वो ऑड है, अभी भी ऑड है, तो ऑड है तो x1 को मैं 1 ही लूंगा, तो 3 प्लस 7 10 बाई 2 5। फिर से ऑड आ गया, तो k3 मेरा आएगा k2 प्लस 7 टाइम्स x2 बाई 2। तो ये मेरा बनेगा कितना, x2 को फिर से मैं 1 ही लूंगा, तो 7 प्लस 5 12 बाई 2 6। अब इवन आ गया बच्चों, तो k4 क्या आएगा, k3 प्लस 7 टाइम्स ऑफ x3 बाई 2। अब चूंकि इवन है तो इस बार मैं क्या लूंगा, इसको 0, x3 को 0 लूंगा ना, तो k3 मेरा 6 बाई 2 यानी कि 3 आ जाएगा। और बच्चों यही क्वेश्चन खत्म होगा। क्वेश्चन यहां खत्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि 3 रिपीट हो गया। देखो 3 5 6, फिर 3 5 6, फिर 3 5 6, फिर 3 5 6। यही इस क्वेश्चन का चार्म था बच्चों। अब आपको चमक गया क्या सीन है कि हमने एक्स नोट को क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पे 1 ले रहे हैं, यहाँ 1 ले रहे हैं, यहाँ 0 ले रहे हैं, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। तो हमारा एक्स आई का साइकिल विल गो लाइक दिस, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि जब जब थर्ड सिक्स मतलब x3 x6 ये सारे के सारे 0 होंगे, x3 m टाइप के टर्म्स तो सारे 0 होंगे, बाकी सारे x3m प्लस 1 और x3m प्लस 2 ये वाले सारे टर्म्स 1 होंगे। तो 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 0 होंगे, बाकी सारे 1 होंगे। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है 2 0 2 5, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, ये 3 का मल्टीपल है तो ये 0 हो गया। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये 1 हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 2, इसका हो गया 4। 2 0 2 8 देखो 8 और 2 10 और 2 12, ये 3 का मल्टीपल है तो ये हो गया 0। तो इसका आंसर फाइनली क्या आ गया बच्चों, 2 प्लस 4 दैट इज 0 6। बोलो बच्चों ये वाला भी मस्त बाउंसर गया होगा, चमका किसी को क्या? बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है बच्चों, बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है। अब जिसको नहीं समझ में आ पाएगा तो एक बार वापस से बच्चों इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज रही है, बाकी के 3-4 सवाल हो रहे हैं वो भी कर लेते हैं। बट वापस से मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप एक एक काम किया है। जब आप वीडियो को दोबारा देखोगे, देखिए बहुत सारे बच्चों का उड़ान आ चुका है, कुछ का बैन आना था, वो मैं जानता हूँ बच्चों, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, बट मैं कह रहा हूँ वापस से वीडियो को देखोगे तो चमक जाएगा। एस नोट 0 होगा क्योंकि जब आप n को 0 डाल रहे हो यहाँ पे, तो एस नोट बेसिकली इट इज सिग्मा नो। तो जब आप n को 0 डाल दोगे तो 0 से -1 तक का सम तो क्या ही आएगा, 0 ही आएगा ना। तो इसलिए एस नोट 0 हो गया, उस केस में k नोट आ गया। ये k n जो मैंने इंट्रोड्यूस करा ना बच्चों, ये बहुत ही मतलब डिसाइडिंग फैक्टर रहा इस क्वेश्चन के लिए,
ये जबरदस्त इसने काम करा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नंबर obtained from the last two non-zero digits of 90 factorial is equals to n। अब थोड़ा सा देखिए, मैं तेज करवा देता हूँ चीज़ों को, मतलब मैं समझाऊंगा, लेकिन जो इजी होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि प्रोसेस क्या रहेगा। अब ये कह रहा है कि 90 फैक्टोरियल के लास्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स बताओ। तो बेसिकली आप क्या करो कि 90 फैक्टोरियल में जीरो कितनी बार आ रहा है वो निकाल लो। 90 फैक्टोरियल में जीरो कितनी बार आ रहा है वो निकाल लो। तो वो कैसे निकाल सकते हैं अपन? देखिए 90 फैक्टोरियल में 2 तो बहुत सारी बार आएगा, लेकिन 5 जो है वो 2 से थोड़ा कम बार आएगा। तो इसमें 5 कितनी बार आ रहा है वो पता लगा लेते हैं। चाय भी आई हुई है, थोड़ी सी पी लेते हैं बच्चों, क्या बोलते हो? बहुत देर पहले आ गई थी, ठंडी हो गई, हल्की ठंडी हुई है, वैसे काम चला लेंगे अपन। सो 90 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा ये जानते हो ना? ये वाला फॉर्मूला क्या नाम है इसका? कुछ तो नाम भी है। 5 क्यूब की करने की जरूरत नहीं, ये निकाल लेना। लीजेंड रेस, यस लीजेंड रेस। तो 21 आता है क्या? 21 आता है। तो 21 जीरोस आ जाएंगे बच्चों। 21 जीरो आ गए तो आप बेसिकली क्या करोगे? 90 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंस टू वाट मॉड 10 की पावर 21 चेक कर लोगे, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं इसको छोड़ दूं बच्चों, कर लोगे क्या? इसको यू कैन सॉल्व इट, राइट? सर मेरी चाय में मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया। सो सैड यार, सो सैड। चलो आगे बढ़ते हैं। उड़ान आ चुका है बच्चों, बहुत सारे बच्चों का। सोनल का भी उड़ान आ गया है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बेटा। चलते हैं आगे। Let n be a positive integers and d be a digit such that the value of the numeral 32d in base n equals 263 and the value of the numeral 324 in base n equals the value of the numeral। ये वाला मतलब बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इसको भी मैं आपको इसकी वो कहानी समझा देता हूँ तो भी खत्म हो जाएगा 2 मिनट में क्वेश्चन। लेकिन बेस नंबर पे सवाल आ जाता है IOQM में, तो बेस नंबर को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। मैंने आपको शुरुआत में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बेस वाले करवाए थे, राइट? So let n be positive and d be a digit such that the value of the numeral 32d in base n। base n में जब इसको लिखोगे 32d को base n में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 3 into n square यानी कि 3n square plus 2n plus d। तो उसने बोला कि 263 के बराबर है, ठीक है। फिर उसने बोला इन द वैल्यू ऑफ 324 इन बेस n, 324 इन बेस n इज इक्वल्स टू 11d1 इन बेस 6, 11d1 इन बेस 6। तो ये तो बन जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4, ये बन जाएगा 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6d प्लस 1। सो 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4 इज 216, 216 और 36 और 1 कितना होता है? देखो 12 और 1 13, 253 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर। अब अच्छी बात देखो कि 3n स्क्वायर प्लस 2n ही आ गया दोनों तरफ ही, तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। अब ये बेसिकली 3n स्क्वायर प्लस 2n की जगह रख दो 263 माइनस डी। यहाँ पे 263 माइनस डी इज इक्वल्स टू 253 माइनस 4 इज 249 प्लस 6d। तो डी में एक इक्वेशन ही बन गई, खत्म हो गया ना क्वेश्चन। अब क्या बचा इसमें? 7d इज इक्वल्स टू 263 माइनस 249, 14 होता है, तो डी आ गया 2, डी आ गया 2। बाकी सब कुछ आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ये चमक गया बच्चों, आसान सवाल था मतलब ये। नेक्स्ट 59 पे बढ़ते हैं।
Call a positive integer n a 7 10 double if the digits of the base 7 representation of n form a base 10 number that is twice n. For example, 51 is a 7 10 double because its base 7 representation is 102. Let the largest 7 10 double be k. Find ये वो, ठीक है सर। 10 की पावर 23 लेना पड़ेगा ना, 10 की पावर 23 लेना पड़ेगा क्या? कितना कितना 5 आया था बच्चों? 21 5 आया था क्या? हाँ 21 आया था तो 23 ले लेना, क्योंकि अपने को तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए ना। बिल्कुल सही बात पकड़ी आधी आपने, क्योंकि 10 की पावर 21 में तो फिर खत्म हो गया ना, सारे जीरो गायब हो गए। 10 की पावर 23 ले लेंगे, ठीक है सर। ये तो 2 मार्कर के लायक भी नहीं है। अच्छा इतना भी आसान नहीं है वैसे तो ठीक है। अच्छा इससे पहले वाले को कह रहे होंगे आप लोग, हाँ ये पता नहीं ये यहाँ 5 मार्कर में क्या कर रहा है बेचारा, इसको उधर 2 मार्कर में होना चाहिए। और वो 2 मार्कर में जो एक गंदा सा सवाल करा था अपन ने, वो कुछ तो अपन ने GIF में बांटा था, CABC वाला है ना, डायफेंटाइन थी 2 इक्वेशन, उसको यहाँ होना चाहिए। सही बात है। अब जिसने भी बनाया होगा तो पता नहीं क्या सोच के बनाया होगा, मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ सवाल ही। चलिए, कॉल ए पॉजिटिव इंटीजर n as 7 10 double if the digits of the base 7 representation of n form a base 10 number that is twice n। तो कुल मिला के 7 10 डबल ऑफ द डिजिट्स, मतलब वो ये ऐसा कहना चाह रहा है। अब इसमें डिजिट्स भी नहीं दे रखे बच्चों, मतलब ये थोड़ा सा समस्या वाली बात है। तो आप मान लो कि जो n है वो कुछ an माइनस 1 अप टू a2 a1 a0 इस फॉर्म का नंबर है। तो वो कह रहा है कि जब आप इसका बेस 7 में लिखोगे तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ an माइनस 1 अप टू a1 a0 इन बेस 7 is equal to an minus 1 up to a2 a1 a0 in base 10। अब ये क्वेश्चन खत्म है बच्चों। इसका बेस 7 रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप क्या लिख दोगे अब यहाँ पे 2 इंटू 7 की पावर n an प्लस 2 इंटू 7 की पावर n माइनस 1 an माइनस 1 एंड सो ऑन। और उसी तरीके से वहाँ पे लिख दोगे 10 की पावर n an प्लस 10 की पावर n माइनस 1 an माइनस 1 एंड सो ऑन। और कंपैरिजन करोगे अब इन सारे कोएफिशिएंट्स के, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा बच्चों। अब इसके बाद की कहानी आप लोग कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। फाइनली क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। अच्छा, ज्योमेट्री की पीडीएफ मिल गई। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ज्योमेट्री की पीडीएफ में 17 क्वेश्चन क्यों हैं हर सेक्शन में, 20 की जगह, इन टोटल 45 से 60 की जगह। सब जानते हैं कि जियो के 60 क्वेश्चन बर्दाश्त नहीं होंगे और वो 12 बजे तक जाएगा तो जो अर्जब तेने सवाल पूछा है ना, उसका जवाब भी तेने दे दिया भाई तो जिसने भी जियो की पीडीएफ डाउनलोड करी होगी उसको 45 सवाल मिले होंगे, वो इसीलिए तो जो अर्जब कह रहा है कि अगर उसमें 60 होते तो कहानी 12 1 2 बजे तक जा सकती थी, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए उसमें सवालों की संख्या थोड़ी सी कम करी गई है सोच समझ के। क्योंकि हमने 8 घंटे 6 घंटे की मैराथन सोची थी, 8 घंटे से ज़्यादा चल रही है, तो ज्योमेट्री में अगर 60 सवाल होंगे तो भाई साहब स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसलिए अपन उसमें 45 सवाल करेंगे। बट मैंने जैसा आपको कहा है कि ज्योमेट्री की क्लास में, ज्योमेट्री मैराथन में यू विल गेट वन अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मतलब ऐसा सरप्राइज मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज यू विल गेट। तो हाँ भाई सोनल, तुम्हें अभी से सब कुछ पता करना है, सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देते हैं। 3 तारीख वाले सेशन में पता चलेगा तुम्हें। नहीं, हरीश सर भी नहीं है।
चलो बच्चों, बातें बाद में करते हैं, अब अपन बहुत करीब आ चुके हैं, आखिरी सवाल पे हैं, इसको भी खत्म कर ही लेते हैं, राइट। सो लेट a be a real number such that a की पावर 4 gif of a की पावर 4 माइनस some of the students are saying कि सर कौन आ रहा है, कोई शाहरुख खान आ रहा है क्या? सिट्टू आएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, सिट्टू आ सकता है यार। सिट्टू को आती ज्योमेट्री, तुमको पता ही ना, वो जब मैं क्लास लेता था तो कुछ कुछ तो करता रहता था वो। चलिए वो सरप्राइज ही रहने देते हैं। सो व्हेन यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, दिस इज लाइक दिस, 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू GIF ऑफ a की पावर 4 प्लस GIF ऑफ a माइनस 1। अगर आपको चमक जाए बच्चों कि जो RHS है ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, तो ये एक इंटीजर है बच्चों। तो इसका मतलब पता है बच्चों क्या है कि a भी एक इंटीजर है। भाई 4 तो इंटीजर है ही ना, तो 4 तो इंटीजर है, a भी इंटीजर होगा तभी जाकर के कहानी बैठ पाएगी। तो ठीक है, ये जैसा भी है। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ GIF ऑफ a की पावर 4 प्लस GIF ऑफ a माइनस 1 बाई 2। उसको क्या चाहिए, देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल सच रियल नंबर्स a, मतलब a के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज आएंगे उन सबके स्क्वायर्स का सम चाहिए उसको। तो a की वैल्यू बेसिकली ऐसी कुछ तो आ रही है, राइट। अब अपन बहुत ही बेसिक मगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात वो ये कि एनी a कैन बी रिप्रेजेंटेड एज GIF ऑफ a प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a। So this fractional part of a can be represented as a minus GIF of a, and we know that the fractional part of a always lies between 0 and 1. So with this we can say that a minus GIF of a will always lie between 0 and 1. Right? A minus GIF of a is the fractional part of a. So fractional part always lie between 0 and 1. So this thing also lies between 0 and 1. And a is this thing. एक बार प्लस वाला केस ले लेते हैं। So स्क्वायर रूट ऑफ GIF ऑफ a की पावर 4 प्लस GIF ऑफ a माइनस 1 बाय 2 माइनस GIF ऑफ a, दिस शुड लाई बिटवीन 1 and 0। भाई दो केसेस ही तो बन रहे हैं, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो दोनों केसेस ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो बच्चों, GIF ऑफ a, मतलब GIF ऑफ a बेसिकली a ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो इंटीजर है। a अगर इंटीजर है तो वो GIF ऑफ a इज इक्वल टू a ओनली। बट अगर अपन यहाँ पे बाउंडिंग भी देखें कि ये एक्सप्रेशन 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ पे GIF ऑफ a की वैल्यू एक बार आप 2 डाल के देखो, जस्ट चेक फॉर a इक्वल्स टू 2, तो GIF ऑफ a इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है। देखो यहाँ पे ये 2 की पावर 4, 16 प्लस 2, 18 माइनस 1, 17, रूट 17 बाई 2 माइनस 2, ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है बच्चों। देखो रूट 17 इज 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग बाई 2 इज 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग माइनस 2 इज समथिंग लाइंग बिटवीन 0 and 1. But once you take GIF of a greater than or equals to 3, once you take GIF of a greater than or equals to 3, this complete thing will tend towards greater than 1. मतलब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू रेपिडली तेज होगी, ये तेजी से बढ़ेगा, उसके कंपैरिजन में ये उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, तो ओवरऑल इसका वैल्यू 1 को क्रॉस करेगा। मैं डाल के दिखा देता हूँ। GIF ऑफ a को आप 3 डालोगे तो 3 की पावर 4 81 प्लस 3 माइनस 1, मतलब 81 प्लस 2 इज 83, 83 का स्क्वायर रूट 9 ले लेते हैं, 9.1 ले लेते हैं, तो 9.1 बाई 2 इज 4.6 ले लेते हैं, और ये अपन ने 3 लिया है तो 4.6 माइनस 3 चमक रहा है आपको, 1.6, 1 से बड़ा। उसी तरीके से GIF ऑफ a को 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो,
ये तेजी से बढ़ेगा, उसके कंपैरिजन में ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, और ये हर बार 1 को क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब है कि द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर GIF ऑफ A इन दिस सिचुएशन टू बी 2 ओनली। GIF ऑफ A को आप 1 भी लेकर के देखोगे तो 1 + 1 - 1, तो ये 1 हो गया, 1/2 हो गया 0.5, -1 ये नेगेटिव हो जाएगा। तो GIF ऑफ A 1 तो होना नहीं है। 2 पे अपन ने चेक कर ही लिया, GIF ऑफ A जो है वो 3 या 3 से ज्यादा नहीं हो पा रहा है, वो अपन ने यहाँ पे देखा ऑब्जर्वेशन। देन इस तो GIF ऑफ A का वैल्यू 2 आ गया एक तो अपना, है ना। और माइनस वाला केस भी एक बार चेक कर लो, तो माइनस ऑफ GIF ऑफ A की पावर 4 प्लस GIF ऑफ A -1/2 माइनस GIF ऑफ A, दिस शुड ऑल्सो लाई बिटवीन 0 and 1। देखिए ये है ना क्वेश्चन, आप वापिस से देखो कि आपकी जो A की वैल्यू है वो प्लस माइनस में आ रही है, तो एक बार प्लस वाला केस लोगे, एक बार माइनस वाला केस लोगे। अब इसमें अगर आप GIF ऑफ A की कोई पॉजिटिव वैल्यू लेते हो, अगर आप इसमें GIF ऑफ A की कोई पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब ऐसे समझ लो कि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों को जब आप करोगे तो नेगेटिव 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 हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में नहीं रहेगा। तो GIF ऑफ A को आप पॉजिटिव ले नहीं सकते हो, GIF ऑफ A को नेगेटिव ले लो, तो वापस से उसी लॉजिक से यहाँ पे GIF ऑफ A की वैल्यू जो है वो -2 पे बैठ पा रही है। GIF ऑफ A की वैल्यू -2 इसको सेटिस्फाई कर जा रही है, सेम लॉजिक है, वही लॉजिक है। और GIF ऑफ A की वैल्यू यहाँ पे -3 से छोटी नहीं हो सकती, अगेन विद द सेम लॉजिक। कुछ चमक रहा है क्या बच्चों? मतलब बहुत बेसिक सी अपन ने ऑब्जर्वेशन है, ज्यादा कोई बहुत क्रांतिकारी ऑब्जर्वेशन नहीं है। ये हम इसलिए भी कर पा रहे हैं ना क्योंकि GIF है, इंटीजर है, इंटीजर है तो इंटीजर में तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं बच्चों। अगर इंटीजर दिख जाता ना तो अपना आधा खेल वहीं खत्म हो जाता है। तो अपना फाइनली GIF ऑफ A की वैल्यू +-2 आ गई, और GIF ऑफ A की वैल्यू +-2 आ गई, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ जाएगी? A की वैल्यू आ जाएगी +-2 डालो एक बार, तो 2 की पावर 4 16 + 2 18 - 1 √17/2, तो एक तो आ जाएगी √17/2, और एक वैल्यू जब आप माइनस डालोगे तो ये तो 16 ही हो जाएगा, मगर ये -2 -1 तो √13/2, मगर माइनस साइन के साथ, -√13/2। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उनके सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल सच रियल नंबर, तो स्क्वायर्स का सम करोगे तो 17/4 + 13/4, तो 30/4 15/2, और वेयर एम एन फाइंड m + n, तो 15 + 2 17 इसका आंसर होगा। बोलो बच्चों, ये वाला भी चमक गया क्या? तेजी से उड़ान लिख दीजिए, फटाफट उड़ान लिख दीजिए, इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सिट्टू और शिवोम का कोलैब करवा दे कुछ भी भाई, कुछ भी। सर आप नेक्स्ट सेशन में रहोगे क्या? हाँ मैं तो रहूंगा बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। इवन मैं ज़्यादा दिखूंगा आप लोगों को, मतलब शायद 2 मार्कर और 3 मार्कर्स तो सारे मैं कराऊंगा। अभी एक्चुअली इट्स नॉट डिसाइडेड, बट वन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वी कैन से, GOAT, मेरे भी गुरु जिनसे मैंने सीखा है, ही विल बी अवेलेबल इन दैट सेशन। तो उस सेशन को तो भाई मिस ही मत करना, उनसे पढ़ना ही अपने आप में एक प्रिविलेज है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड एवरीवन अंडरस्टूड द प्रोसेस कि क्या हुआ कैसे हुआ।
बच्चे ए इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है, 4a² इंटीजर होगा, ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है, 4a² विल बी इन इंटीजर। तो आप देखोगे ना तो 4a² इंटीजर ही आ रहा है, 4a² इंटीजर ही आ रहा है। हाँ, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन किया आपने। तो गाइस लेट्स वाइंड अप टुडे सेशन। इसके बाद की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है। ये जो आंसर की है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार के लिए। ये आज जितने भी अपन ने क्वेश्चन करे हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो बच्चों, आई होप नंबर थ्योरी भी आप लोगों को कुछ कुछ चमका होगा। बहुत डिटेल में हमने किया है, बहुत ताकत लगाई है, बहुत मेहनत करी है, एंड आई रियली हेड्स ऑफ टू यू ऑल्सो कि आप लोग अभी तक हो और मेहनत कर रहे हो, मेरे साथ लगे हुए हो। सो ये मेहनत बच्चों रंग लाएगी, लगे रहो। थर्ड वाला सेशन भी आप ज़रूर अटेंड करिएगा। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भाई साहब वैसे ही खतरनाक होती है, लेकिन हम लोग जितना हो सकता है हमसे हम लोग उस वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को लेकर के आएंगे जो अल्टीमेटली आपको IOQM में काम आएगी। एक बहुत मुझे आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग जो भी मैराथन सेशन हो रहे हैं उसको आप वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, उस पर कमेंट्स नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो वीडियोस, वो लेक्चर्स आप लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंस हैं, आपको कितना सीखने को मिल रहा है। जस्ट प्लीज़ गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन, बताइए, हमको उसी से पता चलेगा कि क्या हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। एलन ने कभी ऐसा नहीं किया था, एलन फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा है, तो आगे भी हम ऐसा करें क्या? RMO में भी हम ऐसी मैराथन सीरीज़ लाएं क्या? इनमो में भी हम ऐसी मैराथन सीरीज़ लाएं? उसका मोटिवेशन हमको आपके कमेंट सुन के ही पता लगता है कि आप लोगों तक हमारा जो कंटेंट है वो पहुंच रहा है क्या, जो हमारा इंटेंट है वो पहुंच रहा है क्या। कंटेंट तो बहुत पूरी दुनिया करा रही है, और आपको भी पता है कि अगर कोई भी बच्चा अगर ओलंपियाड मैथ्स को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, लिटरली अच्छे से पढ़ रहा है, तो वो ये जजमेंट कर पाएगा कि बाकी जहाँ पे भी दूसरी जगहों पर भी अगर इस टाइप की चीज़ें होती हैं या ओलंपियाड की पढ़ाई, मैथ्स ओलंपियाड, IOQM की पढ़ाई हो रही है, तो उनके लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स में और हमारे लेवल ऑफ कंटेंट में कितना डिफरेंस है। यू कैन जज दैट, आपको आइडिया लग जाएगा बच्चों। मतलब एलन, मतलब जब बाकी के लोग ओलंपियाड्स की ABC भी नहीं जानते थे, तब एलन XYZ जानता था ओलंपियाड्स का। मैं 2013 से ओलंपियाड्स ही पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे खुद को ही बच्चों 13-14 साल हो गए ओलंपियाड्स पढ़ाते हुए। मेरा जब मैं एलन गुजरात में था, मेरे को 13-14 साल लगातार एलन में ही हो गए। आई हैव नॉट वेंट एनीवेयर एल्स। और यहाँ पे जो क्राउड है, जो बच्चे हैं, इतने ज़बरदस्त धुरंधर बच्चे हैं, उनको पढ़ाते हैं, और अल्टीमेटली RMO, इनमो, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं और बहुत बढ़िया परिश्रम ले रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हम लोग लिटरली बच्चों बहुत वर्क करते हैं, बहुत काम करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए, और वो एक ही माध्यम है, कमेंट्स। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए बच्चों आप लोगों को हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर उसमें कुछ गुंजाइश है, अगर हमको और इम्प्रूवमेंट करना होगा, डेफिनेटली हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे। बट आगे भी ऐसी सीरीज़ लेकर आए या ना आए, इसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे, आप लोग हमें बताएंगे। एक और बात मुझे इम्पोर्टेंट आपको बतानी है कि अगर उस दिन मेरे से मिस हो जाए बात बतानी, तो इसलिए मैंने आज ही ये बात यहाँ पे आप लोगों के सामने रख दी है कि 6 तारीख को, एक तो आप लोगों को 2 बातें याद रखनी है। 6 तारीख को अगर आप ऑथेंटिक सोल्यूशन देखना चाहेंगे IOQM का, तो प्लीज़ समय का, थोड़ा सही समय का इंतज़ार करिएगा। जब एलन का IOQM सोल्यूशन अपलोड हो जाए वेबसाइट पे, तो एलन के सोल्यूशन को ही देखिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अगेन वापस ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि बाकी लोग भी कर रहे होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, बट भाई जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो सही में, मतलब मैंने बहुत देखा है बच्चों। मैं आपको कभी फुर्सत से बताऊंगा कि कौन कौन से जगहों के आंसर क्यू में कितने करेक्शन और सॉल्यूशन में कितने करेक्शन आते हैं। बट एलन के सॉल्यूशन से आप बहुत 100% अपने आप को रिलाय कर पाएंगे कि हाँ, ये सॉल्यूशन है तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन है, सही है, इनके आंसर की है तो सही आंसर की है। तो 9 बजे तक, शायद 10 बजे तक, जब भी वो एलन की आंसर की अपलोड हो जाए, सॉल्यूशन अपलोड हो जाए, वहाँ से आप वेरीफाई करिएगा।
और अगर आप अपने अपने स्टेट्स के लास्ट ईयर के कट ऑफ जानते ही हो, अगर आप उस कट ऑफ्स को क्लियर कर पा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि अच्छे ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, IOQM क्लियर हो जाएगा, तो इसके लिए मैं अभी से जानकारी दे दूँ। ये बाद में भी मैं एक बार आकर के बताऊंगा आपको। मैं 6 तारीख के बाद शायद 7 तारीख को आप लोगों के साथ लाइव होऊंगा और उसमें मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। हर स्टेट्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ वील डिस्कस, तो उस दिन मैं इस बारे में बताऊंगा। बट मैं एक बार अभी बता देता हूं कि वी आर स्टार्टिंग RMO वर्कशॉप ऑल्सो, और ये 15 सितंबर से वी आर स्टार्टिंग। इसकी फीस है 1000 रुपीज़। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसको आप स्कैन कर सकते हो। और ये जो क्लासेस होंगी 5 क्लासेस होंगी हर वीक में। क्लास का टाइम रहेगा रात को 9:30 to 10:45 एंड इट विल गो टिल योर RMO एग्जामिनेशन। तो जो भी बच्चा IOQM क्वालिफाई करता है अपने अपने स्टेट से, जिसको भी फीलिंग आती है कि ही इज़ गेटिंग और हर इज़ गेटिंग अ गुड दैट नंबर, कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन दिस वर्कशॉप। और इसमें हम लोग, आप लोगों अगर 3 मैराथन देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या लेवल ऑफ कंटेंट हम लोग देते हैं। तो RMO में क्या पढ़ा रहे होंगे आप लोग इमेजिन कर पाएंगे, इनमो में हम लोग क्या पढ़ाएंगे आप समझ ही सकते हैं। सो बच्चों यही वाली बातें हैं आपको जो समझनी है। सो बच्चों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए मैं ये वाइंड अप करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एल्जेब्रा वाले वीडियो में भी जा करके कमेंट करिएगा, इस वाले वीडियो में भी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपने जान पहचान के लोगों को ज़रूर बताइएगा कि एलन क्या काम कर रहा है ओलंपियाड्स में, IOQM में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बोलो भारत माता की जय।